a devil, I know. Look, I am just a man on a mission. If I want it, then I get it, I go. And if you're trying to test me a beast, you gon' need Liam Neeson. The chance that you taking is flagrant. You're testing your luck. If you think you make it out, then you're sadly mistaken. Careful what you putting your stake in, cause I ain't got no patience and no limitations. You trying to figure me out and I know I don't make sense, but no one's there when you call like you're trapped in the Matrix. You need to take a break from it, I think you should take 6. Cause yes, I hold a throne and no one else can replace this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever met, it's time that you face it, so tell me. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All the hate is in heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Cause I'm looking like Wesley, test me. Don't make me lose my mind, cause I'm looking like Wesley, test me. Yeah. 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 The rise before the fall, the glide before the rule, the eyes that saw the soul, the cheer before the goal. I'm here to let you know. Yeah. I'm here to let you know. Yeah. I sky gaze over my tape. Like Peter, this is my space. I'm spacey, I'm crazy over breakbeats. Space gazing in my safe haven. I make statements that embrace waking. Awaken, I'm woke. Taking the road to pull you ashore. A celestial scope. The stars explore in your inner. The starts at the core. Inner space and more. Your body's a planet for sure. Nurture it with the words I've written. Scribe like highlights. Flying saucer. Supply the order, it's the author. Walking on air. Walking on water, blending between borders to let you know this is here to support you. The blend, the blend, the blend, the blend, the blend, the blend, yeah, yeah. Well, hello ladies and gentlemen, आप सभी का स्वागत है वापस से वैलोरेंट चैंपियंस टूर VCT APAC Challenger Stage 2 पे। मेरा नाम है कैप्टन प्राइस और मेरे साथ जिस पे जुड़ते हुए Sam and Mamba. First of all, both of you, how are you doing today? Starting off with Sam. देखिए, आज का दिन कहीं ना कहीं हमारे लिए शुरुआत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ आवर एनर्जी, जैसे हम ऑलरेडी बात भी कर रहे थे, बट आज का जो मैच भी रहेगा, जो अगला मैच, दैट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट डिसहार्टनिंग, क्योंकि अभी एलिमिनेशन का सिचुएशन आ चुका है कैप्टन. सो आई एम राइट नाउ ऑन द बैलेंस ऑफ स्वॉर्ड. देखिए यार, बात करें लो ब्रैकेट के बारे में, इट्स समथिंग दैट विल हैपन इन अ टूर्नामेंट, राइट? एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, एक टीम आगे बढ़ेगी, एक टीम लो ब्रैकेट में जाएगी. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, एनिग्मा गेमिंग ने कल जब खेला था मेड इन थाईलैंड के खिलाफ, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने. क्लोज मैचेस थे, ऐसा नहीं कि वो डोमिनेट हुए थे. अब बात करें उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में, जो डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जरूर, बट ऑल इन ऑल आई एम स्टिल फीलिंग वेरी पॉजिटिव फॉर देम, बिकॉज उन्होंने प्रॉमिस बहुत ज्यादा दिखाई है. Of course, and अगर आप promises की बात करेंगे, I'll tell you one little thing. देखिए, एक तरफ कल उनका जो मुकाबला हुआ था मेड इन थाईलैंड से, they are right now the best team in their entire group and they've already qualified for the group stages. So that tells us कि कितना ज्यादा strong contention हमें एनिग्मा गेमिंग से देखने का मौका मिला. Well, आज एनिग्मा गेमिंग का मैच है सर्बरस के अगेंस्ट में. सर्बरस ईस्पोर्ट्स जो कि बूम ईस्पोर्ट्स से पहले हारती हुई नजर आई थी, एंड बूम ईस्पोर्ट्स दे लॉस्ट अगेंस्ट मेड इन थाईलैंड एज वेल विनर्स ब्रैकेट फाइनल में. सो इट्स अ गुड थिंग, यू कैन से कि एनिग्मा गेमिंग एंड सर्बरस काफी कंटेंशन वाला मुकाबला रहेगा. बट इफ एनिग्मा विंस टुडे, दे हैव टू फेस ऑफ बूम ईस्पोर्ट्स, जिन्होंने सर्बरस को ऑलरेडी हराया हुआ है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन आज इस मैच में. बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला रहेगा, मैप पिक्स रहेंगे, एजेंट सिलेक्शंस, एवरीथिंग इज गोना गो डाउन. बट वंस अगेन, मांबा, कमिंग बैक टू यू, व्हाट डू यू थिंक, लाइक एनिग्मा गेमिंग के चांसेस क्या रहेंगे आगे बढ़ने का? बिकॉज
based on yesterday's performance, and on paper, I think Enigma Gaming, they are relatively stronger compared to the other teams. ऑन पेपर आप बात करें एनिग्मा इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, आप बात करें जो मूड है हमारे व्यूअर्स का, आप जाएंगे फोरम्स पे भी देखेंगे एनिग्मा को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे. एनिग्मा आर लुकिंग लाइक द हॉट फेवरेट्स टू विन दिस मैचअप, बट एट द सेम टाइम आप दूसरी टीम से कुछ ले नहीं सकते. यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द अदर टीम एज वेल. बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस के बारे में, श्योर ये दोनों टीमें अलग अलग टीम्स के खिलाफ खेली है. अब आखिरी 10 गेम की बात करें सर्बरस के बारे में, तो आखिरी 10 मैचेस में से वो 8 मैचेस जीती है कंपेयर टू एनिग्मा जो 7 जीती इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन 2 लॉसेस उसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाफ थे और एक मेड इन थाईलैंड के खिलाफ था. अपार्ट फ्रॉम दैट वो डोमिनेट करते हैं अपने कंपटीशन को. सो आई वुडंट लुक टू मच इनटू द नंबर्स राइट नाउ बिकॉज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ऑल इन ऑल जस्ट जो उनका एक कहते हैं ना जज्बा है जीतने का, वो काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है. एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल टू सी कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई इंडियन टीम वहां पे बाहर जाके खेल रही है. I agree with you. I mean, जो Enigma यहाँ पे प्रदर्शन करके नजर आ रही है, and also they're looking better. जैसे हम overall कल के मैच में भी अगर बात करेंगे, they improved very good. But जी हाँ, हम जरूर बात करेंगे इन दोनों के बीच में. बट जो पिछला मैच हुआ था, हम चलेंगे उसके हाईलाइट्स की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो टीम जो अभी अपर ब्रैकेट, जो हम कल के दिन भी देख रहे थे, RRQ versus Bleed, इन दोनों के बीच में. And I don't know, just somewhere along the line, Bleed again was just able to turn this game around. I remember starting off my notes, I was thinking, okay, Bleed is overcommitting, they're not as coordinated, and for some reason, somewhere in there, especially when RQ had double digits, a switch turned on, and they're like, you know what, we need to play together, we need to be more disciplined, we can't just keep giving them these rounds, we can't just keep pushing them in hopes to catch them off guard because they're expecting it, because truth be told, when I think Bleed Esports, that's actually what I think. I think these aggressive players, you know, the kind of players that even on the defender side, they're going to do their best to take control of the map, as we've seen Darion do time and time again. Of course, Darion, no surprise here, unless you guys want to do a fake cast. Oh my god, Darion is the series MVP? No way! I did not see that coming. Haha! No, but kidding aside, you know, Darion definitely deserved this. From the very first map, the second map, the third map, every other map that we see this guy on, he's just so explosive. Give him the operator, he's gonna get those picks. Fluffy, give him a judge, he's gonna pop heads, he's gonna make everybody scramble on the opposing team, and he just gives his team the man advantage every single round. Yeah, having a confident and competent duelist like Darion, I think in this series he played both the Jet and the Raze, truly does give you an advantage when he does get those opening picks, and also the man with no fear to enter this site for the team, creating the space that allows him to move more freely, is one of the key aspects of playing a duelist. And especially on the defensive half, yes, he kind of is the more explosive duelist, I would say, in this matchup. But the team, especially on the defense, really set him up, especially on, I think it was Ascent, to really make a lot of plays for himself and be able to get a lot of these opening picks that we see him known for. Definitely. The casters mentioned earlier on that, you know, these matchups now. Well, once again, we are back. myself Captain Price, मेरे साथ Sam and Mamba Senior यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ते हुए. एंड यू नो हम बात कर रहे थे पिछले मैचअप की. आई मीन ऐसा लग रहा था कि RRQ they're just gonna dominate because उन्होंने पहले दिन डोमिनेट किया था जरूर, बट when push comes to shove, लीड वो आखिरी राउंड को क्लोज करना, आखिरी मैप पे हेवन का मुकाबला था, ऑलमोस्ट एक कमबैक सिनेरियो में देखने का मौका मिला था. 12-11 was the score, but Bleed did manage to close it up, and then it was a 13-11. So what do you have to say about that, Mamba? Because Bleed के लिए, I think it was a pretty lucky victory if you ask me personally. See, luck is a factor that हम कितनी भी बारे में उसके बारे में कितना भी चर्चा कर ले, we can't decide upon that, right? क्योंकि मैच के अंदर क्या होता है वो प्लेयर्स को मालूम होता है, क्या डिसीजंस लेती है. कई बार आप अब जब दूर से देखते हो आप सोचो कितना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन है या फिर कितना अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, बट जो रियलिटी होती है सर्वर की वो कुछ और ही होती है. बट फॉर इट टू बी अ 3 मैप शायद हमने सबने एक्सपेक्ट किया था. शुरुआत में जब पहला गेम देखा तब नहीं किया था क्योंकि हम आए थे सेटिंग फॉर अ ड्राई रन एंड टेक चेक, एंड हमने सोचा कि शायद ये 2 मैपर होगा, बट नॉनदलेस वो 3 मैपर हुआ था. एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स थी जरूर देखने के लिए, लेकिन एक्शन काफी अच्छा देखने मिला. वी सॉ बोथ दीस टीम्स गो अप अगेंस्ट ईच अदर. एक के बाद एक, ऐसा नहीं था कि वन साइडेड अफेयर था पूरा, बैक एंड फोर्थ मैच हो रहा था. सो इट वाज वंडरफुल टू वॉच. Of course, and you know, I'll just say कि हमने जिस तरीके से आज कल मैचेस विटनेस किए थे एनिग्मा गेमिंग के, आज भी वैसे कंटेंट मैचेस आज है, बट रॉस्टर्स एंड ये देखिए
देख सकते हैं RRQ, I mean they have been such a strong team as well, so let's not forget कि RRQ का जो सफर है वो अभी जो है बहुत दिक्कत में हमें देखने का मौका मिलेगा जरूर, बट लेट्स टॉक अबाउट Cerberus once again. Cerberus के साथ साथ आज हमारा ये मुकाबला है. Cerberus की बात करेंगे, आकाशी, डाइक्यूटे, किशी, लोकी एंड सुका, very very talented players, and इनके अगेंस्ट में जाने वाले हैं the big five from the Enigma game. Captain, I want to say one thing. हर वक्त जब भी हम प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं फ्रॉम रोस्टर, देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स यू नीड टू वॉच आउट फॉर, एंड यहाँ पे दो खिलाड़ी है. डाइक्यूट, ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन द ड्यूलिस्ट, तो एंट्री फ्रैगर तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्पॉटलाइट जरूर रहेगा, बट उनके साथ आकाशी, ही प्लेज दैट मेन इनिशिएटर रोल, मेन सोवा रोल यहाँ पे खेलते हुए नजर आते हैं, एंड उनके साथ में ही बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मैचअप भी करते हुए नजर आते हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ दीस टू प्ले आउट इन द ओवरऑल पिक्चर. एंड जी हाँ, साथ देते हुए नजर आएंगे सुका, लोकी एज वेल एज किशी थोड़ा रोल चेंज करते हुए नजर आते हैं. ही जस्ट play as the secondary initiator, but उसी के साथ लोकी is their main controller जो switch up करते हैं ओमन के बीच में, Astra as well as Viper coming through depending on the maps, and then Suka जैसे हम बात कर रहे थे, he's going to be the sentinel, strong holding sides, but as I said, the first two players उनके ऊपर जरूर नजरे रहेगा, and you can see those players are ready geared up for the match, क्योंकि उनको भी पता है ये आसान नहीं होने वाला है. जी हाँ, बिल्कुल आसान नहीं हो रहा है, लेकिन आप कंपेयर करें कल की मैच के हिसाब से, देखिए अब मेड इन थाईलैंड की हम बात कर रहे थे, जब एनिग्मा के खिलाफ वो खेल रहे थे, तो बड़े स्ट्रक्चर्ड रोल्स थे, बड़े स्ट्रिक्ट रोल्स थे कि ये प्लेयर इनिशिएटर खेल रहा है, ये प्लेयर ड्यूलिस्ट कर रहा है मोटा मोटा, लेकिन सर्वरिस की हम बात करें वहाँ पे वैसे नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी अमंग्स देमसेल्व्स. यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्राइमरी ड्यूलिस्ट सिर्फ ड्यूलिस्ट खेलेगा. वी हैव सीन इनिशिएटर रोल्स कम इन, वी हैव सीन सेंट्रल रोल्स कम इन एज वेल. आप बात करें सुका की, वो आपको रेयरली लेकिन दिखाई देते हैं रेस खेलते हुए भी, इवन दो साइफर का पिक उनका सबसे ज्यादा रहता है, पिक परसेंटेज. सो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, एंड एट द सेम टाइम रोल्स बहुत फ्लूइड है इनके. Of course, forget कि this team comes from all the way वियतनाम की ये टीम है जरूर, लेकिन अभी देखिए APAC में I don't think यहाँ पर your countries matter as much as your regions do, especially अगर खुद की बात करेंगे, they have to be careful about what they're trying to do, because ये एलिमिनेटर मैच है. जो भी हारते हुए नजर आएंगे उनके लिए इस सीजन अगर आप बात करते हैं, इट्स गोना बी स्टेज 2 में तो उनका सफर खत्म हो जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, स्पेशली जब वो आखिरी राउंड आ जाए. इफ द एसए टीम दैट्स गोना बी एनिग्मा गेमिंग लीड पे रहते, विद इट्स कल 12-9 से जाके ओवरटाइम तक पुश इन किया था, and I mean made in Thailand they did a fantastic job. Enigma Gaming साथ ही साथ जो भी टीम्स है, I think every team has to work on one simple thing, 12वें के बाद वो 13वां राउंड कैसे क्लोज किया जाए. Sam, what do you think, like how can that be possible? I mean, this is a situation जो हर एक रीजन में हर एक टीम फेस करती है, एंड उसी के वजह से I want to put another point here कि ये दोनों टीम्स जो एक दूसरे के बीच में यहाँ पे मुकाबला करने वाला आज के दिन में, दोनों अपने अपने रीजन्स के रनर अप्स थे. सो राइट नाउ Cerberus seeing they are also runner up of Vietnam region, और यहाँ साउथ एशियन रीजन का Enigma Gaming being the runner ups. तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो मुकाबला होने वाला है, इट्स गोना बी क्लोज काउंटर. एंड जी हाँ, जिस पूछा that 12-9 kind of, जैसे हम बात करते हैं ना 9-3, 8-4 these kind of curses, I think 12-9, 12-10, 12-8 का ये कहीं ना कहीं कर्स हो सकता है, क्योंकि अगेन reiterating जो पिछले वाला मैचअप था वहां पे भी वो हुआ था, RRQ could not close it off. But now as we were talking about the lineup itself, Enigma Gaming हमारे सामने रहने वाला, starting off with their Sara EGL Antidote, उसके पीछे यहाँ पे Xkali, who we saw yesterday, who was completely free flowing when he got the opportunity, and Raw Fuel Mamba, I'll hand it over to you. देखिए रॉ फ्यूल और Xkali मेरे हिसाब से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज की मैच के लिए, बिकॉज़ आप बात करें आरवी के रेक्स और एंटीडोट के बारे में, दे बीन सुपर कंसिस्टेंट. रॉ फ्यूल और Xkali दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्स फैक्टर है ये टीम के लिए. आप आरवी के को भी एक्स फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो उनको अलाउ नहीं करता वो चीज करने के लिए. बट Xkali एंड रॉ फ्यूल रॉ फ्रैगर्स है, एंड फायर पावर सबके पास है, बट द रोल्स आर सच कि ये दो प्लेयर स्टेप अप कर सकते हैं जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ती है. हमने Xkali को देखा ऑन Qeon, किस तरीके से उन्होंने खेला था, किस तरीके से डोमिनेट किया था. रॉ फ्यूल की अगर हम बात करें, वो स्टेप अप करते हैं जब टीम को जरूरत होती है, मल्टी किल निकालते हैं. बट दिस इज माय ओपिनियन, राइट? इट्स बेटर टू गेट 1 kill every round rather than getting 4 kills in 6 rounds. आप 5 राउंड में किल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन छठे राउंड में जाके आप 4 के निकालेंगे. श्योर अपनी टीम के लिए आप क्रूशियल राउंड निकाल रहे हैं, बट जो कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, एक there's this comfort, आपको पता होता है कि नहीं ये प्लेयर हमने यहाँ पे स्टेशन किया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे तो ये समय बाय जरूर करेंगे, हमारे लिए पहला पिक निकाल सकते हैं, they might get the first blood. बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट, ये प्रोफेशनल टीम्स है, ये प्लेयर्स बहुत समय से खेलते आ रहे हैं, तो जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो सिनर्जी की बात है,
this team is gelled well, really well, like very well as a matter of fact. तो सवाल ये बनता है कि क्या रॉ फ्यूल आज अपने पोटेंशियल पे खरे उतर पाएंगे, क्या एक्सकैली उतना कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे? अगर ये दो प्लेयर्स कंसिस्टेंटली खेलते हैं, इट कुड इवन बी अ 2-0. Of course, it's highly possible कि it can be a 2-0 in favor of Enigma Gaming. देखिए कल का जो मुकाबला था, लाइक अभी इस ग्रुप के सबसे जो टॉप नॉच टीम है मेड इन थाईलैंड, उनको एक चैलेंज दिया था एनिग्मा गेमिंग ने. इनफैक्ट मजबूर किया था उन्होंने कि मेड इन थाईलैंड जस्ट कम्स इन विद एवरीथिंग दे हैव एंड दे डिड सिक्योर द मैच फॉर देमसेल्व्स. लेकिन एनिग्मा गेमिंग के लिए जैसे आप बात कर रहे थे, आई टेल यू कि एनिग्मा गेमिंग का प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा था. दे डिड लूज अगेंस्ट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इन एससीएस. एक 2-3 का स्कोर लाइन हमें देखने का मौका मिला. वेल द लास्ट गेम आई मीन इट वाज अ प्रीटी क्लोज वन, बट यू नो लेट्स नॉट फॉरगेट कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स को भी हराया. वेलोसिटी गेमिंग इन दैट सेम रीजन, साउथ एशियन रीजन में, साथ ही साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को भी उन्होंने ऑलमोस्ट मात दिया था. बट पहले तो ऑलरेडी वो मात देते थे, एंड दैट्स रिजल्ट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स केम ऑल द वे फ्रॉम द लूजर ब्रैकेट्स एंड टुक देयर रिवेंज, एंड इसीलिए वो डायरेक्टली ग्रुप स्टेज तक पहुंच पाए हैं. सर्बरस की बात करेंगे. सर्बरस however had a very crushing defeat in their regional qualifiers. Fancy United Esports के अगेंस्ट में एक 3-0 का डिफीट उन्हें फेस करना पड़ा था. एंड आई थिंक अगर बदला लेना चाहते वो फैंसी यूनाइटेड Esports के अगेंस्ट में सर्बरस, ऑल दे हैव टू डू, दे हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आज वो मैच जीते एनिग्मा गेमिंग के अगेंस्ट में. देन दे विन अगेन टुमारो, गेट क्वालिफाइड इनटू द ग्रुप स्टेज एंड होप दैट दे मीट अगेंस्ट फैंसी यूनाइटेड Esports. सो सैम, डू यू थिंक क्या यही जो सेम चीज है एनिग्मा गेमिंग भी दोहरा पाएगी आज लूजर ब्रैकेट में आके? देखिए योर राइट नाउ स्टोरी यहाँ पे बता रहे दोनों टीम्स का, इट इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर. जी हाँ, एक तरफ सर्बरस दे हैड अपर ब्रैकेट थ्रू आउट देयर क्वालिफायर जर्नीज, एंड ये एक्सपीरियंस होता है कि जो भी टीम यहाँ पे अपर ब्रैकेट में थी, स्पेशली क्वालिफाइड फर्स्ट एंड बिकम द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ द रीजन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर ब्रैकेट में थी, क्वालिफाइड फर्स्ट एंड बिकम द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ द रीजन, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड फाइनल्स हार चुकी है बिकॉज़ ऑफ दैट. जैसे आपने पूछा, आई वुड नॉट ओनली सर्बरस बट यहाँ एनिग्मा भी वो कहीं ना यहाँ पे ढूंढने निकल चुकी है कि दे आर टू मीट अप ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, उनको भी हराना है. सो दीस टीम्स विल बी लुकिंग आफ्टर देयर नेम फ्रॉम देयर रीजन कि कब उनके साथ मुलाकात होगा एपैक में, एपैक मात कब देंगे. एंड लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है. दैट्स व्हाट दे हैव टू ओवर टू लीन ओवर टू. कि देखिए टीम जीतेगी वो जरूर आगे बढ़ेंगे, को एक और मैच खेलना पड़ेगा व्हिच इज गोइंग टू बी द डिसाइडर, जहां पे ऑलरेडी इंतजार कर रही है बूम. आई मीन बूम विल नॉट happy, right? Somebody took them down after winning, and boom abhi intezar kar rahe. They all head over to the group stages, so immediately after winning whichever team it is, उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. पॉसिबल है ये चीज, पॉसिबल है. बट हियर्स द थिंग, राइट, लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू क्या ब्रैकेट्स होंगे यहाँ पे, बिकॉज अब ये दोनों टीम्स की बात करें, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे अगर हारेंगे तो फिर इट्स गेम ओवर, राइट? तो आपको मैच भी नहीं, हर एक मैच को इंडिविजुअली लेना, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन फर्दर टू सिंगल राउंड्स, क्योंकि मैच में होगा आपके पास जब आप गलती करेंगे, एक आध दो गलती की वजह से आप राउंड हारेंगे. बट लेट्स मूव ऑन टू द वीटो. या सात चीज़ों के बारे में चर्चा करें. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ. फ्रैक्चर इज द फर्स्ट बैन, अंडरस्टैंडेबल, बट आई रियली वांट टू सी एसेंट कमिंग इन एज अ बैन, बिकॉज हमने देखा था कल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एनिग्मा एसेंट के ऊपर. तो सर्बरस क्या ये चीज़ को देख क्या नोटिस कर पाए, क्या एनालाइज कर पाए, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है. Well, we all know कि Breeze permanent ban किया जाता है Enigma Gaming के द्वारा. I think they haven't still, you know, made up that much momentum कि हाँ Breeze जाके वो जीत सकते. But however, Cerberus, in fact, Qeon pick करते हुए नजर आएंगे. Enigma Gaming starting off on the attacker side. Enigma selects Ascent, and I hope Cerberus don't have to pay the price जो कल, you know, made in Thailand को झेलना पड़ा था वो Ascent का defeat. Well, the ban comes in. It's going to be fine. I want to see Split. I want to see Split. Mama, what do you think? Will we get to see Split as a decider? Oh yes! Oh yes! There we go. Split हमें नजर आने वाला है. Haven, Ascent and Split. Haven, I still believe काफी ज़्यादा strong map है Enigma के लिए. But at the same time, एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी थी कल, उनका जो प्ले स्टाइल था फर्स्ट हाफ में, स्पेशली स्टार्टिंग ऑन अटैक, राइट? एनिग्मा ने यहाँ पे अटैक वापस पिक किया है. अगर वो सेम प्ले स्टाइल के साथ खेलेंगे, देन आई बिलीव सर्बरस यहाँ पे शायद उनको आउट प्ले कर पाएंगे, बिकॉज फ्रेश आ रहे हैं. एक दिन में आप इतनी ज़्यादा नई स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते अनलेस ऑफ कोर्स आपने सेव करके रखी हो स्ट्रैटेजीज को. बट जब आप मेड इन थाईलैंड जैसे टीम के सामने खेल रहे होते हो, यू गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग. अब यू डोंट हैव द लीवे कि आप स्टार्स बचा के रखो. तो यहाँ पे पेस किस तरीके से कंट्रोल करते हैं गेम की, किस तरीके से रोटेशन मैनिपुलेट करेंगे पहले 6 राउंड में, बिकॉज हमने देखा है कल 2 मैचेस में, पहली 2 मैचेस में उनकी शुरुआत बहुत ज्यादा शानदार थी, बट मिड गेम प्लस लो है, एंड गेम ऑफ कोर्स हमेशा से स्ट्रगल करता है ये मैच क्लोज करने के लिए.
बट सवाल ये बनता है, क्या आज हमें सिमिलर प्ले स्टाइल नजर आने वाले या फिर हमें कुछ और दिखाई देगा? बिकॉज अगर सिमिलर प्ले स्टाइल है then I'm sure Cerberus have done their homework, वो यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे उनको, स्पेशली इन द ड्राफ्ट। तो यहाँ पे ड्राफ्ट किस तरीके से होता है, एजेंट सिलेक्ट किस तरीके से होते हैं, वो बहुत जरूरी होने वाला है। एंड इज देयर गोइंग टू बी अ स्पैनर थ्रोन इन द वर्क्स, वो हमें पता चलेगा थोड़ी देर में। लेकिन आई डू बिलीव यहाँ पे एक एक्स फैक्टर की जरूरत पड़ने वाला है। आई रियली वांट टू सी अ नियॉन। हमने देखा था रॉफिल जेट खेले थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई फील लाइक वो शायद नियॉन से ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। अगर रॉफिल को नहीं खेलना, एक्सकाली को दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप फास्ट पेस गेम प्ले खेलने वाले हो, अपने फ्लैश एंड डैश की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कल लूज पर। एन एजेंट लाइक नियॉन, आप स्काई ब्रीच कॉम्बो के साथ आप खेल सकते हो। आप इनिशिएट ऑफ कोर्स यू हैव सोवा एज वेल, बट नियॉन बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए, एंड परेशानी जरूर होगी उसको काउंटर करने में। आई एग्री विद यू। आई मीन अगर नियॉन का पिक देखने के लिए मौका मिला, आई थिंक एनिग्मा जैसे हम बात कर रहे थे, वेल प्रिपेयर्ड, जिससे ऑडियंस भी यहाँ पे उनको ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे ऑन पेपर ऑल्सो, आई थिंक दे आर वन ऑफ दोज टीम्स लाइकली टू पुल इट ऑफ। क्योंकि जितने बार जब भी स्टैट्स देखे एंड ऑल द प्ले स्टाइल्स कमिंग फ्रॉम सर्बरस, उन्होंने जब भी डाइक्यूट को उतारा है, दे ऑलवेज मेड श्योर ही प्लेस ऑन जेट। सो उनसे साइड से ज़्यादा हमें चेंजेस देखने के लिए मौका नहीं मिला। एंड इवन बीइंग द फर्स्ट मैचअप, आई थिंक जेट तो आने वाला है, बट अगेन can Rafuel again come on the jet, या Neon आएगा एक डबल ड्यूलिस्ट सेटअप के साथ Enigma? I'm just looking forward to it. What do you think, Captain? I think double duelist Enigma शायद ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे, because देखिए Enigma has sufficient duelist as of now। हमने देखा है अगर Rafuel नहीं खेलते हैं, it has to be Xcali। अगर Xcali नहीं खेलते हैं, then Anti, man, it's time to get back on the driver's seat again, duelist के लिए। But I don't think Anti इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं रिस्क लेना चाहेंगे, because Antidote as a whole he has to guide the team। and अगर वो अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करने जाते हैं, then उनके टीम गाइडेंस को ओवरऑल एक झटका पड़ता है। We did see this happened back I think 5-6 months ago। ये Velocity Gaming के साथ हुआ था when the IGL of the team Amit Ras used to play the duelist। जब से उन्होंने वो सिंगल duelist स्टार्ट किया है, they did just counter back। but Enigma Gaming अभी तक Antidote को हमने एक भी duelist पे नहीं देखा। it might come in as a surprise pick, so we just have to wait and find out क्या वो surprise pick हमें देखने का मौका मिलेगा। double duelist maybe Antidote stepping in as the jet once again, because he still has that AWP online। Okay. and AWP के साथ भी he's proving to be very deadly। what do you think about that, Mamba? I think it's highly unlikely, possible है, sure, but I'll tell you what comp I have in mind for Enigma। जिस तरीके से उन्होंने कल खेला था, Neon, Breach, Chamber, Sova and Omen, ये कॉम्बो के साथ वो खेल सकते हैं, because it's a very fast paced play style जो कल खेल रहे थे, and this perfectly goes into it। अब ओमन की बात कर लीजिए, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम प्ले रियली एग्रेसिव अगर आप चाहते हो, आप फ्लैश भी कर पाएंगे श्योर, बट एट द सेम टाइम आपके पास ब्रीच होने वाला, आपके पास नियॉन होने वाला है। फास्ट लेन का इस्तेमाल करके जब आप आगे पुश करते हैं, एंड यू हैव ब्रीच एज वेल, आप एक एरिया पूरी की पूरी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हो मैप को। आप सी साइड की बात करें, आप ए साइड की बात करें, फास्ट लेन का इस्तेमाल करके आप दो पास में डिवाइड करें साइड को, एंड यू कैन डू इट। अब बात करें चेंबर के बारे में, डिफेंस में बहुत ज्यादा आपको काम लगता है टू होल्ड ऑफ एरियाज, एंड आई डू बिलीव अगर ये कॉम्प वो खेलते हैं, देन इवन इन डिफेंस उनको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली खेलना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं खेल पाएंगे। एंड अगेन अगर सामने वाली टीम सर्वरस पिक करती है नियॉन को, सेम थिंग गोज, रिएक्टिव नहीं खेल सकते, उनको प्रोएक्टिव खेलना पड़ेगा, बिकॉज टू रिएक्ट अगेंस्ट एन एजेंट लाइक नियॉन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ रिएक्टिव गेम प्ले, सॉरी रिएक्टिव गेम स्टाइल अगेंस्ट नियॉन। एडिंग ऑन टू दैट माम्बा, देखिए ये मैप भी वो कहीं ना कहीं आपको मौका नहीं देता है टू प्ले रिएक्टिव। इट्स 3-sided मैप। आई मीन कहीं ना कहीं डिफेंस को थोड़ा प्रोएक्टिव बनना ही पड़ेगा, आइदर फॉर इन्फॉर्मेशन और फॉर द फर्स्ट ब्लड। अगर उनके साइड में कुछ गलती हो गया, दे माइट लूज इट। एंड एज वी आर टॉकिंग विद एजेंट, चलेंगे एजेंट सिलेक्शन की तरफ। आई फील लाइक जो एजेंट सिलेक्शन सर्बरस की तरफ से आएगा, इट शुड बी नॉर्मल, नो लाइक flashy players or flashy picks coming through. Akashi on that Soa, there was no second thought about that. Daikute on that Jet, and Suka आपको Sentinel के साथ Killjoy. On the other hand, Antidote और RVK आप देख सकते हो, RVK back on that page, and Rexy on the Omen जिसे आप बात कर रहे थे। Xcali with the Sky, कल के दिन में हम देखे थे Xcali was not flowing. Yeah, they did not change anything here. I hope Xcali is feeling better with his Sky today. I think the only reason they're sticking to the same composition is because कल का जो स्कोर था it was 13-11, Enigma did end up losing the game। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि Made in Thailand जैसे टीम को उन्होंने मजबूर कर दिया था, like I said, कि पूरा का पूरा प्रेशराइज कर दिया था उन्होंने Made in Thailand को। एंड आज सर्वरस के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखेंगे दिस इज ओनली वन डिफरेंस। वो डिफरेंस ये रहेगा कि एक तरफ आप देख सकते हैं ब्रीथ को, दूसरी तरफ आपको देखने का मौका मिलेगा वेल सी व्हाट हैपेंस देयर, बट
SKs are going to be the competition. Killjoy के साथ Omen and Omen के साथ एक Breed आप देख सकते हैं opposite side में, and इस side पे आप देख रहे थे तो Breach है, so yeah, it's going to be hard to counter the Breach as well. But do you think Sky or Breach? Sam, मेरा ये सवाल आपके लिए रहेगा. Sky or Breach, which will be more viable and valuable to use इस map में? देखिए, I would lean over to breach, जैसे माम्बा भी वहाँ पे बता रहे थे. It gives you that capability जहाँ पे opponent को either you can push back and get space for yourself or find those openings with that fault line या aftershock बात कर लीजिए, and especially his ultimate, the rolling thunder, it helps you clear off things and flashes भी है. And right now none of the teams are flash heavy teams. दोनों के पास I would say somewhere they've like balanced themselves. एक flasher है, एक informant है. So I will tend to lean over breach, the pick coming through from Cerberus. But जी हाँ, कल के दिन जैसे खेल रहे थे Excali, I think he's feeling a little bit better on that Sky and going for those pop flashes. वेल पॉप फ्लैशेस की बात करें, देखिए मैंने कल कहा था कि प्रोएक्टिव खेलना पड़ेगा. वो यहाँ पे इनिशिएटर रोल जरूर खेल रहे हैं. इस प्लेइंग स्काई उनके लिए जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपकी टीम को भी हील करना होता है. बट प्राइस, मेरा ये मानना है, अ प्लेयर लाइक एक्सकैली, राइट, ही नीड्स टू बी लेट फ्री. Of course, but we'll take a short look at a video that's ready to be played, so why don't we have a look at that? Well, here we go. In a matter of seconds, हम सीधा मैप पे आगे बढ़ने वाले. Coming back to your question again, माम्बा, देखिए मुझे लगता है कि Excali as a player, he is probably the most versatile player Enigma Gaming has. आपने उनको इनिशिएटर पे देखा है, उन्होंने बहुत ज्यादा KO खेला है, साथ ही साथ अभी स्काई पे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं. He has played on Omen probably for a longer time than anyone else has, especially Haven की बात करें तो in his former team as well. आप जानते हैं वेलोसिटी गेमिंग के पहले वो पार्ट थे, तो वहां पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ओमन खेला है इसी मैप पे. आई मीन एक्सकैली, द बीएम किंग, ओमन प्लस ओडिन, या दैट यूज्ड टू हैपन देयर. लेकिन आज शायद वो ना हो. आज रेक्सी यहां पर आपको ओमन खेलते हुए नजर आएंगे. रेक्सी यूजुअली यूज्ड टू प्ले सोवा इस मैप पे, सो काफी सारे एजेंट्स जो है वो कंपेयर्ड टू एससीएस यहां पर स्विच ओवर हुए हैं. लेकिन कल का एग्जैक्ट सेम एजेंट कंपटीशन लेके आना, एनिग्मा गेमिंग, दे हैव टू कम इन विद समथिंग न्यू एज स्टैट्स, मे बी द पोजीशनिंग ऑफ प्लेयर्स, जो लेआउट रहने वाला है. नहीं तो इट विल बी अ टेक्स्ट बुक जो आराम से सर्बरस रीड करके जा सकते हैं, एंड दे विल जस्ट डोमिनेट ओवर इन दिस एंटायर मैप. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, मामा? अगेन look, they're playing a very similar composition. As a matter of fact, same comp खेल रहे वो, बट मैंने कहा था, देखिए कल उनकी मैच हुई थी, सर्बरस के पास समय भी था प्रिपेयर करने के लिए. तो यहाँ पे इट ऑल रियली कम्स डाउन टू कितना कॉन्फिडेंट वो फील करे, बिकॉज दे वेंट इन फॉर द कंफर्ट पिक्स. आई ऑन द अदर हैंड वुड हैव रेकमेंडेड टू हैव नियॉन, बट अगेन बाहर बैठ के मेरे लिए बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि देखिए वो प्लेयर्स, दे हैव अ सपोर्ट्स आउट, दे हैव अ ब्रिलियंट कोच एज वेल वाईबी के रूप में. तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं. आई एम वेरी श्योर दे हैव अ प्लान, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी रिस्की. बट अगर आपको अपने प्लान के ऊपर भरोसा है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, देन गो फॉर इट. क्योंकि the only thing that really matters, right, is जो आप प्लान बना के आए हो, क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए मैच के अंदर. अगर आप एग्जीक्यूट कर पाए और जीते, that's a wonderful thing. लेकिन अगर एग्जीक्यूट करने के बाद आप हारे, then you shouldn't be too hard upon yourself, because that means आपका प्लानिंग गलत था. आप एग्जीक्यूट कर रहे थे अपने प्लान्स को, so it's okay, you go back to the drawing board and आप डिसाइड करते हो क्या करना है क्या नहीं करना है. बट ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मेटा एंड बी लाइक कि नहीं यार, ये फिलहाल मेटा चल रहा है, वी वांट टू मॉडिफाई, वी वांट टू डू समथिंग यूनिक. एंड वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है. बट अगेन यहाँ पे आई फील लाइक दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, व्हिच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर यहाँ पे हारेंगे फिर नॉकआउट हो जाएंगे वो. Exactly. I mean, bringing in a Neon is again change of complete synergy and also their utility play, right? अगर आप वो सोच रहे थे कि फ्लैश के साथ कहीं ना कहीं उनको पीक करने के लिए रॉफिल को मदद करेंगे, now bringing in a Neon, they might not actually need the flash, क्योंकि relay bolt है, he can slow things down, and on the other end fast lane use करके he can push up, right? So there's a complete switch off of कैसे use करते हैं utilities को. But there's one thing, as you already mentioned it, they have a coach, and जब भी Enigma they feel comfortable and they're losing rounds, immediately वो timeout call करते हैं, and after that timeout you see them again
Qeon coming up, and I think वो re-strategization बहुत ज़्यादा already वो कर चुके हैं to figure out what were the weak points yesterday on Haven, and I think they've prepared better price. कोर्स एंड साथ ही साथ हम बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे कि एक स्कैली के साथ साथ आप एक यूजुअल कॉम्बो देखते हैं, रॉ फ्यूल को वो फर्स्ट पिक देने का, एक स्कैली के फ्लैशेस एंड देन जस्ट रॉ फ्यूल पीक्स विद हिज ऑपरेटर, अगर अटैकिंग हाफ में वो ऑप उठाते हुए नजर आते हैं. फेड एज अ होल, आई लव द पार्ट कि फेड अभी अलाउ किया गया, बिकॉज फेड आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एंड फेड गेटिंग अलाउड एंड गेटिंग प्लेड इन द टूर्नामेंट, इट एड्स ऑन टू योर सोवा यूटिल. सोवा यूटिल से सिर्फ आपको पोजीशन पता लगती थी, यू डिडंट नो कि हाँ प्लेयर अगर कहीं पे मूव करके जा रहा है आफ्टर गेटिंग रिकॉन, वो आपको पता नहीं लगता था. बट बिकॉज ऑफ दैट फेड आपके पास वो ट्रेल्स अवेलेबल रहते हैं, एंड उससे आप एक जनरल डायरेक्शन जरूर पता कर पाएंगे प्लेयर्स का. एंड आई लव द अल्टीमेट ऑल्सो, आपके पास ब्रीच नहीं है बट यू स्टिल हैव अ overall almost similar to execute ultimate as in form of the nightfall, because उसको आप एक बार पॉप करते हैं, आपके पास अगर दो प्राउलर्स है, दो प्लेयर्स को आसानी से आप लिटरली प्राउलर्स की मदद से प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे. देन जो ट्रेल्स अवेलेबल रहते हैं, आई मीन इट जस्ट एड्स ऑन टू दैट ब्रीच फ्लेयर, साथ ही साथ वो डीके. आई मीन इट्स गोना बी अ हार्ड वन एनिग्मा गेमिंग अगर बार बार वो नाइटफॉल का इस्तेमाल कर पाते कि नहीं. Well, again, it's very situational, right? ये सारी चीजें हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं आउटसाइड द गेम, बट गेम के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से रिएक्ट करके खेलते हैं. बट वंस अगेन आई रियली वांट टू गो बैक टू द ड्राफ्ट, राइट? सर्बरस के पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है to sort of control the pace of the game, because उनको पता है मोटा मोटा किस तरीके से यहाँ पे एनिग्मा खेलना पसंद करती है. बट nonetheless, ladies and gentlemen, गेम यहाँ पे शुरू होने वाला है. 2-1 and we'll go. But Price, what do you think is going to happen? Lambert बहुत ज्यादा aggressive यहाँ पे bait and switch setup होने वाला है. लोग ही इंतजार कर रहे हैं Recon का, पर Recon आने नहीं वाला. We have Rishi who's going to be out there, and muscle memory वहाँ पे kick in हो गई थी. Of course, but देखिए एनिग्मा गेमिंग के लिए, look at that time, perfectly timed, but I mean RVK बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बैक ऑफ किया है. एक कैजुअलिटी अर्ली ऑन लेके जाना कोई नहीं चाहेगा. मैनेज टू पिक अगेन, गेट पनिश्ड इमीडिएटली. रॉफिल के साथ साथ आरवीके का ये पुश जो आएगा दिक्कत में लेके जाने वाला. लोकी हैज ऑलरेडी बीन डाउन, एंड सुका के एचपी देखिए हेडिंग हुए थे वो बीसीटी के साथ साथ अभी पहुंचे हुए हैं. रॉफिल गेट the side complete side moves कर रहे हैं. Still two players inside that zone. बाहर आके एक पिक मिल जाता है. That's going to be huge, but antidote immediately. Akashi का trade later नजर आएंगे. Number 3 gaming heavily in fact. You know what? Guy कुटे जिनको तो RVK flush out करके Enigma with a wonderful start in this match. Was that a teabag that I just saw? I'm not sure. Again, when it oh well, things are about to get heated up, and I love the banter, by the way. People have different opinions on that, but मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये चीज़. But अब बात करें किस तरीके का सेटअप था A long की तरफ, पैरानोया एंड अलार्म बॉट लगाया था, सीधा पैरानोया खोला गया था. यहाँ पे आकाशी की बात करें, वो गए अंदर जरूर, लेकिन जो चीज का गया था बहुत जल्दी आया था. एंटीडोट इन द मीन टाइम पत्थर जैसे खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया वहाँ पे ओपनिंग बनाने के लिए सामने वाली टीम को. एंड सर्वरस लूजिंग ऑन द फर्स्ट राउंड, लेकिन यहाँ पे बॉल लाइन खोल के बैठे जरूर है, बट नॉट श्योर इफ दैट्स गोइंग टू बी इंपैक्टफुल रिगार्डलेस. बट नॉनदलेस ये देखिए पूरा ए टेक आते हुए इस साइड को पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया इन्होंने. I think the only reason उन्होंने थॉट टाइम इस्तेमाल किया because he wanted to give away his position कि हाँ if it's a general direction he बीच यहाँ पर मौजूद है. Of course opposite side पे अटैक जाने वाला है, but Spike planted. in spite of giving out so much information, the only thing that's going to be problematic is कि 4 खिलाड़ी आ रहे हैं flank पे, and flank पे अकेले RV के हैं. Well, that's best in the turret as well. एंटी का ये टर्रेट कितनी देर तक होल्ड आउट कर पाएगा? टर्रेट हैज ऑलरेडी गिवन अवे द पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन प्लेयर. जाएगा इमीडिएटली आरवी के पनिश करते हुए नजर आएंगे, बट इट्स नॉट द स्पेक्टर, इट्स द टर्रेट जिनको किल मिलेगा किसी का. आई मीन टर्रेट ऑलवेज कम्स इन एज द एमवीपी. जी हां, लेकिन वहां पे सीज का इस्तेमाल कर सकते हो. एंड हियर्स द थिंग, उसके पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, किल भी निकाला ना. आई बिलीव यहाँ पे एग्जिट पैक कितनी भी कोशिश कर ले फीड करेंगे सामने वाली टीम को, बट एट द सेम टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली सीएस के लिए कि वो नहीं देना चाहते इतने ज़्यादा. बट टू का इन द मीन टाइम वो जाएंगे नज़दीक स्पाइक के ताकि अपने आप को सैक्रिफाइस कर पाए बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी बोनस जो उनको मिलता है. एंड फॉर ऑल द ऑडियंस मेंबर्स इट इज समथिंग दैट हैपेंस. वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले प्लेयर्स को पैसे नहीं देने, उनको किल्स देके, बट जब मौका मिलेगा स्पाइक पर सैक्रिफाइस करने का अपने आप को करेंगे, बिकॉज अदरवाइज उनको पैसे कम मिलते हैं, क्रेडिट्स कम मिलते हैं अगले राउंड के लिए. ऑफ कोर्स वो देखिए एक तरफ तो आपका वो मैक्स लॉस बोनस अगर ट्रिगर होता है यू विल बी गेटिंग अ हाफ बाई, लेकिन अगर मैक्स लॉस बोनस ट्रिगर नहीं होता है देन अगर आप वो सेव करने जाते हैं वो सेव का पेनल्टी जो होता है आपको सिर्फ 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, एंड दैट्स नॉट इनफ. वो पैसा काफी नहीं रहता है. बट दिस टाइम अ फुल बाय रोलिंग इन फ्रॉम सर्बरस.
वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, ये राउंड है Enigma कैपिटलाइज कर जाते हैं, आई वो इन नो टाइम, लेकिन उसके लिए बेटर एंड मच बेटर टू बी यू नो ऑनेस्ट गेमिंग ऑन द अटैक को तोड़ा गया है, लेकिन सुका ही हैज टू स्नीक इन। लुक देखिए ऑलरेडी वो डिफॉल्ट करके एक उठाना चाहते हैं, रन एंड गन बाय आर ऑफ फ्यूल and Anti gets one pick and Anti will be getting the second on as well. Side completely मिल चुका है, साथ ही साथ वेट भी होते हुए नजर आए। Yeah, बिल्कुल देगा, लेकिन यहाँ पे आफ्टर शॉट का इस्तेमाल करके थोड़ा सा डिले करने की कोशिश, बट इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस, बट इन द मीन किसी यहाँ पे स्नीकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देगा शॉट बस आते उनको रोकने की कोशिश, डिले जरूर होगा, रेक्स द पुश करके उनके ऊपर किल निकालेंगे, ये देखिए गार्डिंग लाइट का इस्तेमाल एंड रेक्स नोस एग्जैक्टली व्हाट डाइकू टेस डबल डोर से बाहर गए जरूर, लेकिन विश का शेयर वो किल नहीं मिस करने वाले हैं। 3-0 indeed. I mean, Enigma Gaming, they're feeling it now. जो हम डिस्कशंस कर रहे थे कि why the same justify हो रहा है because it worked out so well for them. मैच हारते हुए नजर आए but close one था जरूर, लेकिन अभी तक कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी जरूर। Enigma Gaming hosting Cerberus with eco round से निकाल के जाए 23,500 players spent, और दूसरी तरफ आप देखिए 8,700 राउंड, ये कंप्लीट इको राउंड, आर्मर नहीं रहेगा डाइकुटे के पास, बाकी सबके पास आपको हाफ शील्ड एंड शेरिफ देखने वाला है। एग्जीक्यूट लुकिंग वेरी एग्रेसिव, पिक निकालने की अटैक मिलेगी भी, एंटीडोट गेट्स शट डाउन, सिर्फ 15 एचपी का ही डैमेज वो कर पाएंगे। यहाँ पे आराम इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल के लिए अच्छी तरीके से उन्होंने गराज के लॉकडाउन करके आरवीके को देखिए, इन द मीन टाइम ही इज लर्किंग अराउंड सो मच। हमने देखा था कल भी इनको लर्क रोल में, लेकिन रेक्स परफेक्ट रीड, यहाँ पे किसी का किल निकालेंगे, बहुत ही अच्छी पोजीशन में फिलहाल के लिए एनिग्मा, एंड इट्स लुकिंग गुड फॉर देम। लेट्स नॉट फॉरगेट A1 है, अटैक हेवी मैप है, लेकिन एक्सकैली ट्रेड निकालेंगे जरूर, आईकूटा अंदर पुश करेंगे, आकाश इन द मीन हम एक्सकैली के ऊपर फ्लैग निकालते हुए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सीज का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ पे उनको हटाए, लेकिन how does Enigma lose it? How? Two reasons mainly. पहला ये कि आरवीके जब आ रहे थे he didn't get a single pick. I mean, उनका आना literally वो lurking it didn't play out. First thing. Secondly, because raw fuel को जो निकाला गया, right opening मिल चुकी थी, plus numbers game already उनके against दिखा चुका था, as soon as Anti got picked off. Rexy did a fantastic job, 2 picks जरूर में निकाल के गए, and in the end जब चारों तरफ से घिरे गए थे खिलाड़ी, Excalibur was the only one on side, and वो कुछ करके जाना, I mean it's very hard to think कि वो वहाँ पे कुछ भी कर पाते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसी के बाद में स्पैम करे यहाँ पे आरबीसी है, बिल्कुल रॉकी इन द मीटर फाइनल himself, and जी हाँ, ट्रेड्स इक्वल ट्रेड्स आते हुए यहाँ पे प्राइस क्या लगता है, यहाँ पे क्या सर्बरस आगे पुश करने की कोशिश करेगी? I think Cerberus might want to push, but over commitment बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखिए जैसे इन्फो मिलता है, Akashi gets shot, not bleeding too much though, शायद से एक कंप्लीट पैसिव प्ले उनको दिखाना पड़ेगा। Loki and Anti on the other side of that double door, whoever comes in first gets downed and out। अगले राउंड पे उनको आना पड़ेगा। जरूर दिखाने, देखिए एंटी बिल्कुल उसी का फायदा उठाएंगे, पिक निकालने के बाद इमीडिएटली रीपोजिशन कर रहे हैं। अभी बी साइड पे भी प्रेशर वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दैट किल जॉय टरेट साथ ही साथ डाइकोटे का ये पिक में लेके जा सकता है। डाउन, एंड अगर एंटी यहाँ पर शट डाउन की जाते हैं, विल डेफिनेटली ट्राई टू बैक सो सीकर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। Rockfield getting one, immediately getting shut down. Already a 3K for Daikute. One enemy remaining. Fantastic use of the shoulder steps. Akhri khiladi gets down to Stuka. I love how brave Rexy was over there. वहाँ पे उन्होंने shoulder step का इस्तेमाल किया, यहाँ पे स्टिल ब्रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिगल पीक कर रहे हैं, लेकिन पैरानोया से उनको पीछे पुश करेंगे। गाइडिंग लाइट भी अवेलेबल है, क्लोज एंगल खेलेंगे जरूर, लेकिन डू दे डू हैव शील्ड्स अवेलेबल। एक्सकैली आखिरी किल निकालते हुए, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा जो बोल्ड मूव किया था रेक्स ने, ऊपर शाउट स्टेप का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करके गए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको एनिग्मा के अंदर। यूजुअली आप देखते कि थोड़ा कंजर्वेटिव खेलते हैं, लेकिन नॉट टुडे, नॉट प्लेइंग कंजर्वेटिव एट ऑल,
वो जानते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं मैप को, वो कंट्रोल कर रहे हैं गेम को, एंड they're playing as if Haven belongs to them, to their world. Yeah, and most importantly, ये map pick उनका है ही नहीं. ये map pick Cerberus का है. Cerberus should come out more productive, but let's not be too early to say anything because देखिए हमें पता है कल भी हमने ऐसा एक scoreline देखा था from 5-1, from 7-1 rather. It was 9-7 in no time. तो लगातार वो जो rounds का streak जीत के गए थे. Made in Thailand, I mean that was made in Thailand, but Cerberus है तो इनसे भी बच के रहना पड़ेगा. Going aggressive. शेरिस के साथ जरूर ब्लेड स्टॉर्म भी अवेलेबल लेकिन पिक अभी तक नहीं. हाँ लेकिन नेक्स्ट की बात करें, इन द मीनटाइम ही इज गोना फाइंड द फर्स्ट किल ऑन द लोड. वो भी एक किल निकालेंगे जरूर. तो पेस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. यही इसी चीज के बारे में बात कर रहा था. देयर वर अ कपल ऑफ राउंड यहां पे वो तेजी से खेले ले. ओह डाइकूटे इन द मीनटाइम आरवीके को भी डिलीट करेंगे वहां पे सर्वर से. The world is going on. Actually, अचानक से swinging the game back into their favor. 3 versus 5 situation से 3 versus 6 इंतजार कर जरूर है लेकिन क्या यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. डाइकूटे मिस करेंगे अपने 9 लेकिन 2 का in the meantime एक और किल निकाल लेकिन डाइकूटे the MVP for the round. There's no doubt about that. And goal line 2-4 Enigma के फेवर में. But बात करें Cerberus के बारे में, वो प्लेट सॉन्ग का जो इस्तेमाल था शानदार तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया इस चीज का. एंटीडोट इन द मीनटाइम अच्छा एंगल होल्ड करे थे, स्लो खेला उन्होंने. अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम. बट ये जो शॉट था, आई बिलीव दिस इज वेयर द राउंड चेंज. ऑफ कोर्स एंटीडोट के ऊपर भी किल निकाला, बट ऑल इन ऑल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस. एंड जब आप गेम स्लो करते यू कैन नॉट लीव आउट दीज ओपनिंग्स जहां से सामने वाली टीम आपको पुश कर पाए. बट नॉनलेस यहाँ पे हल्का से एग्रेशन आते हुए एंड शायद देखने मिल सकता है इस शॉट की तरफ बिकॉज रॉ फ्यूल इज बीइंग रियली एग्रेसिव. ही वांट्स टू क्रीप अप. देखना चाहते हैं अगर कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. फिलहाल के लिए सिर्फ साउंड के ऊपर खेल रहे हैं. एंड लुक एट दिस, द रॉ फ्यूल इज नो वे थिंग इज गोना गेट टेकन डाउन. यहां पर उनको किल मिलेगा. यहां पे द फ्लैश पॉइंट कमिंग इन. लुक एट डिसिप्लिन लेकिन इज गोना गेट टेकन डाउन. सो अनफॉर्चुनेट ही could have had the first kill लेकिन paying the price for the trigger discipline break in the meantime to see strike निकालेंगे. Trailblazer के समान एंटीडोट यहाँ पे फ्लैंक कर रहे हैं. इन द मीनटाइम अभी भी उनको पेट करते हुए एंटीडोट knows exactly where he is. The paranoia going in as well. Kishi rotate कर रहे हैं. What in the wall is going on? Antidote is going to get taken down through the wall. वहाँ पे स्पैम किया उन्होंने लेकिन डाइकूट है आराम से डिजाइन कर रहे हैं. लेकिन स्कैली किल निकालेंगे. 2v2 यहाँ पे रीटेक करना आसान नहीं होने वाला है. बट पोस्ट प्लांट पोजीशन की अगर हम बात करें वो भी इतनी बेहतरीन नहीं है. ट्रेड पोटेंशियल नहीं है फिलहाल बिल्कुल. अगर स्कैली यहाँ पे टेक डाउन होते तो बहुत मुश्किल हो सकती है. पहला किल निकालेंगे. Very brave of him. लेकिन काशी in the meantime 1 versus 2 situation. Rex aggressive खेल रहे, अपने टीममेट के साथ खेलना चाहते हैं. Recon डार्ट आएगा 10 सेकंड के अंदर लेकिन still waiting. Smoke के अंदर किसको एक्सपेक्ट करे. Xcali playing it really smart. Guiding light available है उनके पास. Pop flash करके पीक करेंगे. लग तो वही रहा है but it's allowed to see क्या होता है. काशी टैप करेंगे स्पाइक को लेकर पीक कर रहा है. जी हाँ guiding light आएगा जरूर लेकिन डिफ्यूज नहीं हो पाएगा. Xcali को टेक डाउन किया उन्होंने. काशी will have to fall back and try and save the gun. Revealing area. What a round. Coordination की बात करें आप, distractions की बात करें, bait and switch की बात करें, antidote on the perfect plan. Xcali in the meantime guiding light का इस्तेमाल कर रहे थे and उन्होंने bait करके रखा गराज के अंदर वो प्लेयर को. ये जो बैक एंड फोर्थ चलने के लिए मौका दिखा रही है यहाँ पे Cerberus, बट उसके बाद Enigma they keeping everything under control. I mean बहुत close जरूर जा रहा है मामा round, but it's still looking like Enigma have understood what they should play around with. And जैसे यहाँ पे Cerberus को वो fake sell करवाना है where they have to kind of put their mind in kind of a chaotic situation. And finally Cerberus calling a timeout क्योंकि देखिए इतने पास लेने के बाद भी rounds को they are unable to get the points in their scorecard. राउंड डिफरेंस अभी भी है बट ऑल्सो एनिग्मा हियर यू कैन लीन ओवर टू देयर एंड आप उनको थोड़ा एडवांटेज दे सकते हो बिकॉज दिस इज एन अटैकिंग फेवर मैप. एंड अटैकिंग फेवर मैप में लीड तो लेना ही पड़ेगा एनिग्मा को एंड दे आर डूइंग जस्टिस टू इट. तो सही कहा लेकिन यहाँ पे टाइम आउट का इस्तेमाल करेंगे एंड जरूरी है टाइम आउट बिकॉज अगर अभी वो
ये पॉज नहीं लेते अभी, अगर ये मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर एनिग्मा के पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था मैंने प्री मैच एनालिसिस में, एनिग्मा स्टार्ट ऑफ रियली वेल, लेकिन मिड गेम जब आती है, द लास्ट कपल ऑफ राउंड्स इन द फर्स्ट हाफ, इन द फर्स्ट कपल ऑफ राउंड्स इन द सेकंड हाफ, वहाँ पे उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा स्लो खेलते हैं। जब सामने वाली टीम स्ट्राइक बैक करती है, दे लूज आउट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमने देखा रेक्स किस तरीके से ऊपर टेलीपोर्ट करके गए थे ये साइड में, वो चीज़ कॉन्फिडेंस दर्शाती है इन प्लेयर्स का। बट इन द मीन टाइम चेंजिंग द पेस ऑफ द गेम इवन नाउ। देखते हैं ऋषि यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं। मिड में इंसुलेशन के साथ स्पाइक में को स्काली भी तरफ आ रहा है। They want and look forward to executing the Raj, क्योंकि देखिए दो खिलाड़ी ऑलरेडी सी लॉन्ग पे रहने वाले हैं, जोन से क्लियर करने के पोजीशन पता करने के लिए पिंग कर चुके एक खिलाड़ी को, बट आवी के वो पुट हिम अंडर ट्रैप, दे वांट टू एलिमिनेट हिम, तो कोई फायदा नहीं मिला, अभी तक कोई टैग भी नहीं मिला। बट लुक एट दिस किशी, उसी टाइम पे गराज विंडो से बाहर आता है, ही स्पॉट्स द प्लेयर, बट दिस पैरानो इज जस्ट ब्रिलियंट। स्काली को फायदा मिलेगा एंड दे गेट द नंबर्स फेवर्ड अप एंड बैक टू द 4v4 सिचुएशन। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक मार चले, बाकी सारे खिलाड़ी के पास वेपन देने वाले, लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड गेट्स पनिश्ड immediately। सीकर्स का इस्तेमाल उसकी वजह से पोजीशन पता चल जाएगा, पॉप फ्लैश, बट देयर इज नोबडी दैट पुशेस फ्रॉम गराज। ऑन द अदर एंड सी लॉन्ग से पुश अप करेंगे एंड आकाशी इज डाउन एंड सी कंट्रोल मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन डाइकू उठे इन द मीन टाइम गराज प्ले How could that happen? How could that possibly happen? Player standing. It is going to happen. And it comes down to 1 versus 1 ड्रॉप की बात करें। HP नहीं उनके पास इतनी ज़्यादा, बट सूखा पुश करेंगे यहाँ पे। अगर वो स्टिक करते हैं, that could be a massive problem. लेकिन क्या पूरा का पूरा स्टिक करेंगे यहाँ पे? जी हाँ, पूरा स्टिक करेंगे। He's going to defuse the spike. And then what? And their fate and their luck. And the bad luck just continues. It's so unfortunate. It's so unfortunate. उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई एंड उनको आइडिया था कि जेट के पास एचपी इतनी कम है, इतनी ज़्यादा एचपी नहीं है, स्काई भी डाउन हो चुके थे। दिस इज कम्युनिकेशन। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको पता होता है कब आपको स्टिक करना है, कब आपको स्टिक नहीं करना है स्पाइक को। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स शो कितना लेयर्ड गेम है। यहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने टीपी किया एंड वेल गेम ऑन टॉप। अब बात करें, आपको पता था कि जेट को हील नहीं मिला हुआ है, वहाँ पे स्काई डाउन है एंड पता था कि वो रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे पीक करने का। I love it. I love the big place being used over here. लेकिन यहाँ पे आप तो इस्तेमाल करेंगे, सूखा अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। Face your fear. Get that one. Look at this trophy like pick करने के बाद आवी के भी यहाँ पे अपना अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पता चल चुका है DK is what like it is on and वहाँ पे प्रॉलर भी आएगा। Rafael trying to pick him out as soon as possible क्योंकि पोजीशन पिंग हो रहा है एंड मार्क हो चुका था एंड yes they get it। आवी के को साइड कंट्रोल मिल चुका है। But you did see Kishi, he did find a player. अभी भी देखिए, they still have the side and control. Spike plant करने के लिए भी मौका मिल चुका है। Numbers advantage पे है. They have to still recover a couple more rifles and RVK is making the heavy work and the hard work for the team. And finally RVK गिरते हुए and Rafael now coming into play. Excali उस राउंड को आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करते हुए Thrifty कंफर्म करेंगे अपनी टीम के लिए। What a play and switch coming in from Enigma है यहाँ पे मम्बा। देखिए बेस में हम हमेशा से कहते हैं इनका जो प्ले स्टाइल है वो बहुत डोमिनेंट प्ले स्टाइल है, दे लॉक टू कंट्रोल द पेस ऑफ द गेम, जो बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक्सकाई का ये जो शॉट था सैटिस्फाइंग था हमेशा। अब जब भी शेरिफ हेडशॉट देखते हैं, लेकिन 3-6 स्कोर लाइन एनिग्मा जितनी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन जितने ज़्यादा राउंड्स निकालेंगे अच्छी बात होगी उनके लिए। सेटअप की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, दोनों टीम्स के जो दोनों टीम्स का जो कॉम्पोजिशन है फिलहाल के लिए, डिफेंस में शायद दिक्कत हो सकती है, बट यू नेवर नो I really missed out on the kill joy was there. Ooh, raw fuel being taken down by the turret. That is going to chip away at his confidence. बुरा जरूर लगेगा उनको, but nonetheless फिलहाल के लिए एटलीस्ट साइड का कंट्रोल मिल चुका है उनको। इक्वल ट्रेड्स भी है, लोकी भी डाउन हो चुके हैं सामने वाली टीम की तरफ से। यहाँ पर रिकॉन आएगा जरूर, जाएगा। In the meantime, Paul इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश एंड आउट ड्रोन से काफी इंफॉर्मेशन। फॉल लाइन बहुत पुरेसी फिर भी निकाल दो। फॉल लाइन काफी एक्यूरेट था। बॉल को देके इंफॉर्मेशन निकाले, ही पुट गोइंग फॉर द वॉल बैंग, लेकिन एंटीडोट इज गोइंग टू क्लीन इट अप एंड एनिग्मा गेमिंग 7वां राउंड निकाल दो अपने आप के लिए। देखिए जैसे आप बात करते हैं मिड गेम में कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से राउंड्स देते हुए नजर आता है, बट आई थिंक दे फिगर आउट देयर वीकनेसेस। कल के दिन में भी हुआ था, वी सॉ ब्रिलियंट 6 राउंड्स ऑन हेवन एंड उसके बाद बैक टू बैक राउंड्स खोते हुए नजर आ रहे थे एनिग्मा। दिस टाइम दे लुक वेरी वेल कंपोज्ड एंड और भी ज्यादा राउंड्स उनके नाम जरूर आ रहा है, बट अगेन
it came to a worrisome situation जब डाइक्यूट वहाँ पे सीधा फैंटम को रिकवर किया when he was already backside and nobody checked, and उस फैंटम की वजह से he immediately took on Rexy. There could have been a change but it did not happen, so crossing our fingers यहाँ पे देखेंगे और भी ज़्यादा राउंड्स मिलेगा कि नहीं एनिग्मा को, या यहाँ पे मे बी एक 7-5 का स्कोर लाइन के साथ इमीडिएटली बैक टू बैक 2 राउंड सर्वर्स लेती हुई नजर आ सकती है कि नहीं, क्योंकि उनके पास अभी एक फुल बाई के साथ खेलने के लिए मौका। एंड अल्टीमेट्स का अगर बात करेंगे एक ऑलरेडी है, दैट्स गोइंग टू बी द ब्लेडस्टॉर्म, अदर वन इज नॉट फार अवे। सुका को सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए अल्टॉप, एंड सेम गोस फॉर किशी। देन विल सी द लॉकडाउन एज वेल एज द रोलिंग थंडर कमिंग थ्रू। जी हाँ, बट लुक एट दिस नाउ, पूरी तरीके से गेम को स्लो कर दिया इन्होंने यहाँ पे, एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट Cerberus might be up to। उनको पता है इची होते प्लेयर्स यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम इस्तेमाल करेंगे। इशी फॉल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पीक नहीं आई है। मैं देखे बहुत ज़्यादा मीनटाइम he's gonna get taken down। स्मोक्स आएंगे यहाँ पे, फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल, लेकिन किशी क्या यहाँ पे अग्रेसिव खेलेंगे। आई डू बिलीव ही नीड्स टू फॉल बैक, एंड एग्जैक्टली वही करेंगे, बिकॉज मतलब नहीं बनता, बट जितना समय बाय कर रहे हो एग्रेशन दिखा के वो जीतने के लिए लॉकडाउन आएगा यहाँ। लॉकडाउन का इस्तेमाल करके could very well be a fake as well। यहाँ पे फेक के पीछे अटकते, लेकिन नहीं, उनको फिक्स निकाल रहे हैं। जी नहीं, एक्सकैली कमिंग इन क्लच, डाइक्यूट को अब डाउन करेंगे, एंड लोकी इकलौते प्लेयर बाकी है जो रीटेक लिए जाएंगे। आई डोंट थिंक सो, इट मेक्स नो सेंस टू गो इन फॉर द रीटेक। एक आध दो एग्जिट फ्रैग जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज व्हाई नॉट, राइट? जब आप सामने वाली टीम की इकोनॉमी को डैमेज कर सकते हैं, तो फिर you'll try your best to do it। I mean, if he does well and good, क्योंकि एनिग्मा का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, and nobody is able to stop it। and देखिए चेक करने के लिए जा रहे थे, but not gaining any information, and raw fuel he pushes his own team smoke, and उनको लोकी का पोजीशन इमीडिएटली उनको एलिमिनेट करते हुए 8वां पॉइंट भी यहाँ पे एनिग्मा का नाम आता हुआ। and now we are at a very dominating start coming in from एनिग्मा, and also attacking half का पूरा फायदा इस हेवन के मैप में ले चुकी है। Now this is going to be the last round of this first half। देखेंगे क्या ये 9-3 हो सकता है मामा, या it's going to be an 8-4। I don't know कि यहाँ पे जो भी स्कोर लाइन है उसके स्कोर लाइन को कौन से हम कर्व मान सकते हैं, क्योंकि 9-3 में भी हमने देखा है पूरा कमबैक होते हुए, and then we see an overtime happening। 8-4 पे भी हुआ है, so it's up to these two teams। जी हाँ, हमने देखिए numbers 9-3 you can talk about all of this, but I feel like it's very superficial। ये आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कमबैक करना होता तो टीम्स तो भाई 12-0 से भी कमबैक कर लेती है, ऐसे कोई बात नहीं। We've seen 11-1 comebacks as well। Raw is being super aggressive। हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस के बारे में, but is he at the breaking point? Is he trying to push through where he's not supposed to be pushing through? Auto आएगा, होने वाले जी हाँ, पैच करके उनके पीछे हटना पड़ेगा, and he will survive this fight। Cover going out। इस्तेमाल करने पैरों ने अवेलेबल है उनके पास, रोलिंग थंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। लाइनअप के बारे में प्रॉब्लम के इस्तेमाल करके अंदर जाएंगे। डाइक्यूट के बैक साइड में अभी भी सू का इंतजार कर रहे हैं। Damn boy, that was a good round। That was a really good round। I mean, ये जो रॉ फ्यूल का फॉर्म आज देखने के लिए मौका मिल रहा है ना मामा, दिस इज व्हाट यू वर मिसिंग। I mean, हम कल के दिन जरूर बात कर रहे थे कि he was very impactful in the rounds that the team needed, but आज you can see, right, just like हम बात कर रहे थे एक्सकाली, he has his own form which he likes to run around with। वो भी देखने के लिए मौका मिल रहा है। You can see he stopped trying as well as raw fuel को भी वो जो confidence build up हो रहा था उनका, you saw he was already ready to push out from towards the defender spawn, but उन्होंने किया नहीं। He was waiting। अगर ऑलराउंड नहीं आता, maybe he would have timed it perfectly, maybe वहाँ पे पुश भी कर सकते थे। वो ऑलराउंड जो आकाशी थे उनको इमीडिएटली एलिमिनेट करने के लिए मौका ढूंढ सकते थे, बिकॉज आकाशी, लोकी as well as किशी, they're not having a great time right as of now। देखिए मैंने कहा था मैच के पहले एक्सकाली एंड रॉ फ्यूल एक्स फैक्टर होने वाले ये टीम के लिए। स्कोर लाइन देख लीजिए आप, 9-3 इन द फेवर ऑफ एनिग्मा। अगर यही मोमेंटम दोनों प्लेयर्स कंटिन्यू करके रखते हैं डिफेंस में, खास तौर पे रॉ फ्यूल, देन आराम से मैच जीत जाएंगे। वो ये पहला मैप तो डोमिनेटिंग मैनर में जीत सकते हैं। रॉ फ्यूल के लिए एक और चीज़ मैं कहूँगा विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसकी मैं कहता हूँ कि वो किल्स निकालते, कई बार निकालते तो वो 3 किल्स निकालते, नहीं निकालते तो एक भी किल नहीं निकाल पाते। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज रोल। तो ज़्यादा आई वुड से इट वुड बी अ लिटिल अनफेयर टू हिम कि जब मैंने कहा था उनके लिए कि वो किल्स निकालते तो मल्टी किल निकालते या फिर नहीं निकालते। एंट्री फ्रैगर का जो रोल होता है, मैंने पहले भी कहा था, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपको स्पेस बनानी है अपनी टीम के लिए कि अंदर जा पाए। जब वो टेरेट से भी डाउन हुए थे, श्योर
टरेट की वजह से वो डाउन हुए, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा स्पेस बनाई अपनी टीम के लिए कि वो जाके स्पाइक प्लांट कर पाए एंड एट द एंड ऑफ द डे राउंड भी निकाल पाए. सो इट रियली कम्स डाउन टू हिम बीइंग एबल टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ इनटू द राउंड, एंड अगर वो सर्वाइव करते हैं देन ऑब्वियसली वो किल्स निकाल के जाते हैं. I agree with you. I mean, it's all about कि कहीं ना कहीं आपने टीममेट्स को थोड़ा आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, स्पेशली एज यू सेड स्पेस गेन करने के लिए मौका मिला, देन द टीम विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरिंग ऑन योर बैक. एंड भैया रॉफिल बहुत राउंड यहाँ पे एनिग्मा को दिलाते हुए नजर आए, बट अभी इस बार साइड स्विच होने के बाद सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टूवर्ड टू डाइक्यूट. देखिए ऑलरेडी 14 किल्स निकाल चुके हैं डाइक्यूट सर्बरस के लिए, बट राउंड नहीं आया है. That kills will not matter until your numbers on the scorecard is seen. अगर आप kills लेते हुए नजर आ रहे हैं, then it means there's something missing in the entire team. क्योंकि अगर एक ही खिलाड़ी इतना ज़्यादा kills ले रहे हैं and बाकी सब कुछ नहीं कर पा रहे, that means कि वो opening stacked and वो space मिल रहा है, but then immediately कहने के opponent are trying to aggressive towards की तरफ से. He wanted to take effect, but मौका नहीं मिला. RVK भी बहुत aggressive गए थे साथ देते हुए. थोड़ा tag up बिल्कुल RVK उसके position यहाँ पे निकल रहा है, but Chuka finds the first, the flash is good, but he let Chuka helps him out, and यहाँ पे Antidote भी यहाँ पे down होता है. He wanted to help his teammates, and यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे. Excali goes aggressive, Daikyu was ready for that, but Rexy he's trying to hold things off. बिल्कुल भी numbers नहीं है यहाँ पे. Rexy he's making these right kicks work, but Chuka जिन्होंने start किया था 3K के साथ अंत करते हुए नजर आएंगे. मामला यहाँ 3K के साथ अंत करते हुए नजर आएंगे जरूर, लेकिन अगर वो चूका के ऊपर किल निकाल पाते तो नहीं डूब भी. रेक्स के पास बहुत अच्छा मौका था उस 1v1 को खेलने का, but it is what it is. टू लाइन होना 4 no लेकिन let's have a look at the replay what happened in the round. क्योंकि क्रॉस फायर्स की बात करें, लेकिन चूका ने जिस तरीके से खेला था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था. ओनली प्रॉब्लम वाज इनिशियल पिक नहीं मिल पाया यहाँ पे एनिग्मा को, एंड रेक्स ने कोशिश बहुत करी, बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा राइट लीड था वो कनेक्ट नहीं कर पाया. एंड रेक्स एज वेल, हम यूजुअली वी राइट ऑफ रेक्स एज अ सपोर्ट प्लेयर. मैं यही बात करने वाला था. यूजुअली वी राइट हिम ऑफ एज अ सपोर्ट प्लेयर, लेकिन वो बहुत क्रैक प्लेयर है. मैंने उनको देखा, उनको स्कोर होते हुए देखा है. इन द वॉल इज गोइंग ऑन. एक्सकैली एज वेल, एक और शेरिफ किल निकालते हुए. इट इज अ 3v3 यहाँ पे लो की रॉफी को बच्चे के साथ रॉफी को एक्चुअली चांस के वहां कोई एंगल पुश कर रहा होगा. बट लेट्स नॉट फॉरगेट RVK is providing with the sheriff along with Antidote. One enemy remaining. Antidote एक और किल निकाल दे. शेरिफ के साथ बहुत डैमेज दिया इन्होंने. RVK दो has been spotted, क्या किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, वो नहीं हो पाएगा. But I think we really need to come up with a nickname for RVK and the sheriff. I agree with you. RVK and Sheriff are just demons. I mean, it's like a demon के पास उनका जो weapon होता है ना, when they come, they get overpowered, right? They get that, I don't know what you call, but it's just that feeling that you're with one that you feel, I don't know, I'm just trying to bring it together, but जी हाँ, जैसे वो एक चीज रहता है, just make it a staff or something, that is RVK's choice of weapon यहाँ पे. जब उनके हाथ में वो शेरिफ आ जाता है, he just starts popping off. I mean, everybody from Enigma did. अभी उनका full buy का मौका है. IQ treats it well, pushes against Sugar. उनके साथ सूखा भी देते हुए RVK जरूर स्टेशन है, but he's aggressive and he's alone. Antidote साथ देने के लिए अभी भी just defend response बता रहा है, but the timing was so bad and gets punished. Antidote यहाँ पे hold करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पिक मिलेगा, and now you're back again on this advantage. जितना इकोनॉमी डैमेज करने के बाद, this would have been Enigma's opportunity to capitalize. but गलती करने की वजह से they're just losing their. We'll see a timeout. We will probably see a timeout. ये राउंड के बाद टाइमआउट की जरूरत पड़ने वाली, because जिस तरीके से टीम ने खेला है, आई थिंक उनको बहुत लंबा डिस्कशन करने की जरूरत होने वाली है. रॉ फ्यूल के पिक के बाद RVK ने जिस तरीके से पुश किया, all the picks that came in, right? ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करे पेस को, which is fine. मैं कह रहा था प्रोएक्टिव उनको खेलना पड़ेगा, which is understandable. But अगर आप प्रोएक्टिव खेले then you also need to get your pace. अगर रॉ फ्यूल एक बार पीक कर रहे हो उतना aggressively, RVK should have been able to get his pace. I can understand A long कोई देख नहीं रहा था, but अगर आपको A shot aggressive खेलना है, then you need to station somebody towards heaven या फिर बैक साइड पे जहाँ पे वो आराम से आपको बैकअप दे पाए. But we're not going to see a pause come in, which is surprising to me at least. Oh, pause आ रहा है. मैंने कहा था we will see a pause. Enigma, I mean, वो राउंड जीतना चाहिए था, but जी ये रॉफिल के पिक के बाद there was a chance where RVK could have backed off. Anti साथ दे रहे थे, but as you said, they kind of wanted to still keep pushing up and trying to hold off the force, but वो मौका नहीं मिला. सारे जगह से जो entry points है वहाँ से push up कर रहे थे. They were ready to clear out each and every angle, and Cerberus right now trying to cut close to the score of Enigma, but जी हाँ Enigma timeout लेने के बाद they will be looking forward to correcting their mistakes. क्योंकि देखिए तीनों राउंड जो अभी तक देखे हमने माम्बा, it was just them
jumping the gun whichever was coming from Cerberus. And pistol round को भी अगर बात करेंगे, they could not hold off the A push. सूका वहाँ पे 3 के निकालते हुए नजर आएंगे. उसके बाद जो हमारा एंटी को राउंड था अभी जो हम इससे पहले देख रहे थे, वहाँ पे देखिए they did cut it a little bit closer, but angles नहीं चाहिए. अगर रॉफिल एंगल चेक करते लोकी का, then maybe we would have seen that round could have come in their favor. एक thrifty निकाल सकते थे, but उसके बाद full buy, they make the mistake. But tactical timeout खत्म होता हुआ, now we'll be jumping into the game itself. There can be a chance of converting a thrifty मामा, क्योंकि देखिए back to back thrifties दोनों टीम्स की तरफ से देखने के लिए मौका मिलता है. एक टीम निकालती है and that is just immediately exchange, and उनको भी वो thrifty का realization देते हैं. But can Enigma pull it off right now, क्योंकि 3 round back to back हारी है. True, but I think ये reset के बाद I'm sure they're gonna start pulling rounds in again, because देखिए आप 9-3 curse की बात कर सकते हैं, आप castless curse की बात कर सकते हैं. Honestly, it doesn't really matter as long as you're in the server. If you're a player, you know all of this is irrelevant unless of course you're wrong, then it's a different story altogether. Then it also matters कि आपको coach कौन से booth में बैठे हुए हैं. But आकाशी की इन बात करते हैं, आप spam करेंगे next वो shot connect करेंगे, and फिलहाल के लिए this is a 3v3. और पैसा यहाँ पे एनिग्मा के पास ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी डैमेज बहुत ज्यादा डिश आउट कर रहे हैं. And RVK, he's the only person anchoring A, and वो सुवर्स पुश करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं. He can find the opportunity of picking one player, but opportunity खो बैठते हैं, and Akash immediately takes him down. A set यहाँ पे पूरा खुल चुका है, and Xkali is not that great. जी हाँ, रेक्सी को एक पिक मिला था मार्शल के बदौलत, but right now if you talk about that and try to think if they can pull the round, it's going to be very difficult. Weapon recover करने के लिए दोनों खिलाड़ी जा चुके हैं, and they should be picking up those vandals from the bodies of Cerberus players, but immediately क्या retake के लिए चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था माम्बा, 5 HP is all that you can see on Xkali. He has to go in for a pick and then go down, otherwise ये round already उनके हाथ से जा चुका होगा. जी हाँ, लेकिन रेक्स यहाँ पे क्रीप इन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे वो किल निकाल पाए, लेकिन मैं सवाल भी पूछूंगा आपसे एट द एंड ऑफ दिस राउंड, बिकॉज़ अब बात करें स्कोर लाइन के बारे में. One enemy remaining. But Loki standing ahead. I'm not sure what the idea is. Rex exit frags के लिए जाएंगे जरूर, इनमें शायद अपने आप को फ्लाइट नाउ ड्रोन में आशी यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे. So unfortunate. Well, probably get taken down. Still surviving, but yeah, he's gonna get taken down. 7-9. Enigma इस राउंड में उनके पास पैसा होने वाला है, and let me ask you a question. You think we'll still see that aggression? I think the answer already आ चुका है. रॉफ्यूल के हाथ में ऑपरेटर है. I'm hoping वो सी साइड पे जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर से पीक ना करे, because if he's going to do that, again I feel like his operator can be used a little more proactively. मैं देखना चाहता हूँ रॉफ्यूल का वो कॉन्फिडेंस, रॉ स्किल. देखिए वो सी साइड पे गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के पीक करने वाला है. It's just I can understand why you want to do it, but let's see if it works out. Exactly. I think यहाँ पे breach and sova दोनों है, तो मुश्किल जरूर हो सकता है, but immediately cover that. I think they want to recover that. No wait, actually वो बहुत ज़्यादा close up जाके उसके बाद they want to go in for a jump entry, a jump scare entry, and Rafael he has backed off a good call. साथ देने के लिए एंटीडोट जरूर गराज की तरफ से रहने वाला है. अल्टीमेट का इस्तेमाल आएगा Rafael, and उसी के ऊपर he finds one. 3-0 आएगा, but look at the number disadvantage as Loki has already found antidote. So again it looks very bad start itself. push कर चुके हैं. He might find the opportunity, but उसको भी खो बैठेंगे. Akashi, what are these reads? देखिए हर एक राउंड Akashi is just becoming a mind reader. He was hiding in shot and उनको फायदा मिलेगा. Akashi टूवर्स की तरफ से आ जरूर है. Rexy साथ देने के लिए आगे जरूर बढ़ चुके हैं. RVK trying to hold things off. Rexy भी यहाँ पे स्पाइक कर चुका है साइड में, and आखिरी खिलाड़ी Daikyu he's marked. या मार्क किया होता उनको, लेकिन रेक्स स्किल निकालेंगे Daikyu का ऊपर से. बट ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था. अब आप समझेंगे कि वो ऑपरेटर का इफेक्टिव क्यों हो जाता है, खास तौर पे जब वहाँ पे आपके पास कवर आ रहा है. बेसिकली यूजलेस रेंडर हो जाता है वो चीज़. यहाँ पे किसी ने उनके ऊपर किसी ने एक्सकैली ऊपर काफ़ी अच्छा खेल निकाला. RVK पेशेंटली खेले, उनको पता था कब पीक करना. बट रेक्स ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि रेक्स जिस तरीके से आज खेल रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है. बिकॉज आई स्टिल बिलीव रेक्स इंडिया में कम से कम ही स्टिल वन ऑफ द टॉप एमर्स इन द कंट्री. उनका जो रॉ मैकेनिकल स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है. एंड इवन दो सपोर्ट रोल खेलते, अगर उनको ड्यूलिस्ट रोल कभी खेलना पड़े, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो रोल निभा पाएंगे. बट ऑल इन ऑल आज कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. अच्छी बात है. व्हाट इज़ इवन बेटर इज़ द फैक्ट दैट उन्होंने अपना कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया. दे वर लाइक नहीं, हमारा प्लान सही था, कल शायद एग्जीक्यूशन में हमने गलती करी होगी, बट वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर प्लान एंड हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे.
But in the meantime, यहाँ पे एक balls आया. I do believe it is going to be from Cerberus. But बात करें ऑपरेटर के बारे में, सी साइड के ऊपर डार्क कवर आ जाएगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो चांस कि आप पहला पिक निकाल के आप अपने आप को ट्रेड करवाना चाहेंगे एंड देन ऑपरेटर के साथ रीटेक करना आपको पता है कितना ज्यादा मुश्किल होगा. I mean, वहाँ पे देखिए हंटर्स फ्यूरी का भी इस्तेमाल किया था to just flush out any players and Rafael fell into it. Immediately Qeon को एलिमिनेट करते हुए नजर आया. बट ये नंबर्स एडवांटेज के साथ जो आवी के शॉट पे खेले थे, just to hold things off, just to slow things down. Opportunity जब उनको मिला, kills निकाल रहे थे, and I think that's where Rexy also felt confident. Immediately heaven से jump करते हुए नजर आए. And that's what we need. कि कहीं ना कहीं जब एक duo game या tag team game देखने के लिए मौका मिलता है from two players, you need to be kind of working like I would say well-oiled machine. अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो जाता है कि एक प्लेयर आपको कॉम दे रहा है कि right now I'm seeing players they're trying to push me after getting a kill. अगर वहाँ पे साथ देने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं आता है, then one after another they'll be trying to isolate. क्योंकि अगर Cerberus isolate करती RVK को, then easily they would have had the opportunities because numbers भी था, they would have played on the trade game. But finally unpause होता हुआ we are jumping right into the 18th round. यहाँ पे दोनों के पास बाइज रहने वाले हैं. अल्टीमेट्स का अगर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंटीट्यूड के पास रहेगा on the defensive and on the attacking half. There is the same ultimate that's going to be locked down as well as the Blade Storm. जी हाँ, लेकिन यहाँ पे काफी मेथोडिकली खेल रही है सामने वाली टीम. बात करें अटैकिंग टीम के बारे में, सो द टेकिंग टाइम, लेकिन रिकॉन डार्ट अंदर जाते हैं, रिकॉन से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उनको. लाइक जैसे उनको मौका मिलेगा अंदर जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट के साथ अंदर डैश करने की कोशिश करेंगे. बट उनको अगर उनके पास एक कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन देयर इज नो चांस कि अंदर जा पाएंगे. सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है. मुझे लगता है कि वो एक कनेक्टेड डैश हो सकता है पॉसिबली, बट नॉनलेस ही वांट्स टू ट्राई एंड क्रीप अप. बट आरवीके को देखिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं. आप क्या निकाल पाएंगे, स्पॉट किया ज़रूर है, नीड्स टू फॉल बैक. लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे वो आराम से किल निकाल पाएंगे कि नहीं. इन्फॉर्मेशन है रॉफिल ने भी अपना डैश एक्टिवेट कर लिया, तो काफी अच्छा बेट इन स्विच सेटअप है. रॉफिल गेट्स वन डैश बैक, लेकिन दूसरा वापस पीक करना चाहते हैं, ओवर कमिट कर दिया वहाँ पे. डबल पीक करने की जरूरत थी एंड जो एडवांटेज मिला था वहाँ पे उनको, ही इज थ्रोन दैट अवे. एंड आई एम श्योर अगर यहाँ पे वाईबी ये राउंड देख, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी वाचिंग दिस, बट उन्होंने व्हाई इज नॉट अ डबल पीक कमिंग इन. यहाँ पे देखिए सुअर्स का कंट्रोल आविकी के पास वापस पिछले राउंड में भी बिकॉज़ ऑफ द सुअर्स पोजीशन नोबडी कुड डिनाई हिम. बट अभी आज देखिए एलिमिनेट करना चाहते हैं आरवीके को जितना जल्दी हो सके. ही इज जस्ट विद यूटिलिटीज राइट नाउ. डाइक्यूट फाइनली उनको एलिमिनेट करेंगे, बट लुक एट द टाइम. आई थिंक बाय द टाइम ही रीचेस द साइड ऑलरेडी राउंड खो चुके हैं. यहाँ एक्सकाली जस्ट टू कंफर्म वो साइड में ऑलरेडी आ चुके हैं. एक्सकाली फिनिशेस द राउंड ऑफ एंड यहाँ पे 11वां पॉइंट. एनिग्मा इज इंचिंग क्लोजर टू द मैप पॉइंट. Yeah, they are inching closer to the map point and hopefully जिस तरीके से ये इन्होंने खेला है मैच पॉइंट में मिल ही जाएगा उनको अगले मैच, अगले मैप सॉरी. अगर नहीं मिला दैट्स ओके, बट ड्रॉप ने देखिए पहला किल निकाला. यहाँ पे उनके साथ आरवीके को पीक करने की जरूरत थी. जब उनको आइडिया है कि प्लेयर है, स्प्लिट सेकंड इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी. आई स्टिल बिलीव आरवीके ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने टीममेट्स के लिए समय बाय किया, ही बॉट टाइम, जिंदा रहे, किल भी निकाला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा था, लेकिन एक्सकैली जिन्हें हम बीएम किंग कहते हैं, टी बैक करते हुए वहां पे एंड प्लेइंग माइंड गेम्स. आई लव इट क्योंकि दिस इज देम प्लेइंग द नेचुरल गेम. वो यहाँ पे एक्सेल करते हैं एंड जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर खेलें. एंड जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि कोई भी टीम आ जाए सामने फर्क नहीं पड़ता, हमें हम जीतेंगे, तो दिस इज व्हाट हैपेंस. आई एग्री विद यू मामा. देखिए when you're feeling that कि कहीं ना कहीं आप you go in for that BAM or whatever it is, it's your play style. आप कहीं ना कहीं अगर उसको restrict करेंगे, we've always talked about it कि कोई प्लेयर अपना प्ले स्टाइल रिस्ट्रिक्ट करके कि कहीं ना कहीं टीम चाहती है ऐसे खेलना पड़ेगा उनको, दे माइट प्ले फॉर द टीम, यूटिलिटीज भी इस्तेमाल करेंगे, बट इट वुड अफेक्ट इन हिज ओन स्कोर कार्ड एंड दैट एट द एंटायर एंड ऑफ द डे पूरा टीम को कहीं ना कहीं वो मैप में थोड़ा मुश्किल में लेके आ सकता है. बट हाँ, दैट इज जस्ट अ स्मॉल सिनेरियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. जैसे हम बात कर रहे थे, Enigma one round away from reaching map point, but अगर Cerberus का बात करेंगे वो अभी भी 4 राउंड दूर है.
मौका मिल सकता है, but immediately ultimate का इस्तेमाल, and look at where Loki has gone. He has control of A heaven, and वहाँ पे A side में कोई खिलाड़ी नहीं है. It's only RVK to hold things down. मुश्किल होगा उनको. Smoke आएगा, smoke के अंदर जरूर खेलते हुए नजर आ रहा है RVK. Let's see how long he can. Banner आएगा side पे, but कोई फायदा नहीं मिला. RVK right now making it work. किसी को eliminate करेंगे. आगे उनके सामने सुका जरूर रहेंगे. But antidote here. Somebody needs to clear heaven. As well as antidote hold things down strong, and antidote completely capitalizes. What a round coming through. The hold again. एक ही खिलाड़ी थे माम्बा. That was RVK. And जब उनको वो sound मिला and that dark cover inside which RVK खेल रहे थे, that was just brilliant. I mean, इसलिए हम बोलते हैं the comms needs to be crystal clear, and you need to one or the other way help your teammate. लेकिन आई थिंक यहाँ पे पहला किल निकालने बाद उनका जो प्राउलर का इस्तेमाल था वो बहुत ज़्यादा शानदार था. उनको आइडिया था कि लेफ्ट साइड पे किल जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए प्राउलर भेजा उन्होंने और सीधा पीक किया, ओवर पावर किया, ट्रेड नहीं निकाल पाया. लेकिन RVK हैज बीन रॉक सॉलिड. इवन दो उनके 14 किल्स है लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है उनके पास. इट्स इनक्रेडिबल टू सी. एंड RVK उभरते सितारे इस रीजन के. एंड अगर इसी तरीके से खेलते रहेंगे, he has great things to achieve. But in the meantime, किसी की बात पे ठीक करेंगे. क्या किल निकाल पाएंगे? जी नहीं. What the idea is, because initial, aggressive push तो नहीं होने वाले. I can understand why aggressive push उन्होंने expect किया था, लेकिन जो यहाँ पे एक डाउन हो जाएंगे. जी हाँ, एंटीडोट बैक साइड खेल रहे थे. RVK की बात करें, प्रॉब्लम अवेलेबल है पास, लेकिन ओह नो, वहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे. आई डू बिलीव प्राउलर का इस्तेमाल शायद कर सकते थे, लेकिन जो आइडिया था उनका वो आइडिया बराबर था. ही वांटेड टू गो इन फॉर ए कॉन्टैक्ट प्ले के लिए गए, लेकिन जो टैरेट था वहाँ पे उन्होंने उनका काम बर्बाद कर दिया. He gets an opportunity to get inside and ultimate को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आएंगे, but antidote he is back side. ultimate का इस्तेमाल, but antidote को पोजीशन बिल्कुल नहीं पता था because previously he picked up a kill at B side. यहाँ पे देखिए मौका हो सकता है. He goes in for a swing, but Suka उसको रीड कर रहे थे. Rexy trying to hold a push from short, but Akashi already side के अंदर से. Now they're getting 30 blanked. seconds left. Rocket on is done. 2v2 situation. Rafiel के पास जरूर ultimate है, but look at the positions coming through. Excali on a backstab. He has to just wait. Rafiel अगर wait करेंगे मौका मिल सकता है, and that's the reason he's slowing his game down. जी हाँ, गेम यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से स्लो कर देंगे. एक्सकैली इंतजार करें, उनके पास गाइडिंग लाइट भी अवेलेबल है. रिकॉन आएगा जरूर, लेकिन रॉ फ्यूल फर्स्ट कॉन्टैक्ट जाएंगे. गाइडिंग लाइट कॉन्टैक्ट मिलने पे ही यूज होने वाला है, बट एक्सकैली इज क्रीपिंग अप एज वेल. ट्रेस निकालने की जरूरत है. डैश एक्टिवेट स्पॉट हो जाएंगे जरूर. उनको पता आखिर देर कहाँ पे गाइडिंग लाइट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट स्टे अलाइव. फाइंड्स द फर्स्ट, बट नीड्स टू फाइंड द सेकंड एज वेल. रॉ फ्यूल को पता है एग्जैक्टली कहाँ पे टर्रेट अवेलेबल जरूर है, लेकिन वेस्टिंग टाइम. रॉ फ्यूल is not going to waste any time यहाँ पे किल निकालने में. Spike defuse भी कर लेंगे. Enigma Gaming is going to come out on top. Short close जरूर था, लेकिन Defenders win. मतलब नहीं है. 13-7, a dominating affair. Enigma comes out on top of this one. Oh yes, Mamba, what a play, Enigma. And especially देखिए, हम बात करते हैं impactful players का. सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे थे. There was no confusion in that. But जब चाहिए था to kind of anchor down positions, to hold off until their teammates regroup, I think Enigma की तरफ से हमने RVK को देखा, Rexy को step up करते हुए देखा, and then finally their IGL itself, Antidote. हमने देखा इस आखिरी राउंड में. He picked up a kill on Daikyu and immediately वो रोटेट करते हुए नजर आया. जैसे उनको पता चला RVK is down, he started immediately getting back to the side. और जब वो साइड में आ चुके थे, किसी को अंदाजा नहीं था. Nobody even thought of it. I think that was the surprise here, Mamba. अगर वो surprise नहीं होता for Cerberus, we might have seen another round. But जी हाँ, Enigma को close करना था Heaven का map, and I was also surprised जब Heaven का map pick आया यहाँ पे from Cerberus, because their strongholds, especially in the VCT Stage to APAC series, वो अभी भी Bind और Ascent के ऊपर था. But I kind of worried on the Heaven pick, क्योंकि देखिए कल के दिन हम ऑलरेडी बात कर रहे थे. Enigma faced loss and they're not looking forward to facing another. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन एक चीज़, let's start off from the top. हम पहले राउंड से बात करते हैं. जो हम एग्रेशन की बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं. वन प्ले दैट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी, जहाँ पे रेक्स ने शाउटेड स्टेप का इस्तेमाल किया था और हेवन के ऊपर उन्होंने टेलीपोर्ट किया था. जो एग्रेशन दिखाया उन्होंने, वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है इस टीम का. अब बात कर लीजिए RVK के बारे में. अगेन, एज कंसिस्टेंट एज ही इज, वो जिस तरीके से खेले बहुत अच्छा था. एक्सकैली की बात कर लीजिए, फ्रैग कर रहे थे आज स्पेशली स्काई के साथ. बट नॉनदलेस ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हम जरूर करेंगे. राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ रियली शॉर्ट ब्रेक. डू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक. There's a shift, set sail like shit to find other lands, the motherland, sun is glad with the words I'm writing.
I'm fertilizing the earth to rising, realizing global warming and the sea is rising. Pollution the planet needs metabolizing. It's full of fire like a dragon fighting, creating hot springs when the pressure rising. It's terrorizing, but I'm never frightened, cause the days will brighten. Yeah, the blend. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Test and she. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका वापस स्वागत है VCT Stage 2 APAC चैलेंजेस में। प्ले-इन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं एंड दिस इज एन एलिमिनेशन मैच जो चल रहा है एनिग्मा गेमिंग वर्सेस Cerberus Esports। पहला मैप यहाँ पे खत्म जरूर हो चुका है बट एनिग्मा डिड टेक अप दैट विक्ट्री, बट अभी भी 2 और मैप्स बाकी है इफ वी एक्चुअली गो ओवर टू द डिसाइडर। बट माम्बा, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि देखिए पहला मैप जो हम देख रहे थे, इट वाज लुकिंग kind of getting a little bit closer, especially after the 9-3 first half. But उसके बाद आपने ज़रूर बताया भी था, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि that pause, I think that pause worked out for Enigma to close the map as well. Oh, it did. उनको रीसेट करने की जरूरत थी वहाँ पे, बट उसके पहले let's have a look at the scoreboard right now and numbers crunch कर लेते थोड़े हमारे दर्शक के लिए। I think about 13-7 coming out on top, damage काफी ज़्यादा दिया, obviously headshot percentage भी ज़्यादा था 33.6, frag wins 9 rounds by the way। frag wins की बात करें तो इतने ज़्यादा जब फ्रैग विन्स आपके पास होती है तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आप कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव विन 3 थे, तो ऑल इन ऑल एनिग्मा आउट क्लास कर रही थी, आउट गन कर रही थी सामने वाली टीम को। बट गोइंग बैक टू द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक, राइट, कि ये जो दोनों टीम्स हैं, अब बात करें ग्राफ के बारे में, ऑल ऑफ दीज ऑब्वियसली ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको देख सकते हैं, बट आई वांट टू गो बैक टू द पॉज जो आपने मेंशन किया था। बहुत ज़रूरी था रीसेट करने के लिए, काफ़ी अच्छे टाइम पे आया था, बट लेट्स नॉट फॉरगेट, हम आपने कहा कि गेम थोड़ा सा क्लोज हो रहा था सेकंड हाफ में। एनिग्मा ने शुरुआत करी थी अटैकर साइड पे, हेवन पे। तो हेवन पे जो भी टीम अटैक करती है यूजुअली उनको वो हाफ में ज़्यादा राउंड मिलते हैं। तो मैं उस नज़रिए से नहीं देखता उस मैच को कि एंड में क्लोज हो रहा था। आई स्टिल फील एनिग्मा पूरा का पूरा टाइम एक्सेप्ट वो जो 3 राउंड थे बीच में, उसके अलावा पूरा मैच वो कंट्रोल में थे। जब डिफेंडर्स थे वो फिर भी मैच के कंट्रोल में थे, तो मुझे नहीं लगता कि सेरिब्रस कभी भी यहाँ पे कमबैक कर पाती। बट बात करें MVP के बारे में तो एनिग्मा के लिए एंज एंड सर्बरस के लिए डाइक्यूट है, जिस तरीके से भी आप उनका नाम कहना चाहें, लेकिन एंटीडोट 1.5 किल दैट
जो KD रेशियो उनका KDA as a matter of fact kills deaths and assists ACS 257 18 kills निकाले उन्होंने. But I'm glad to see Excali perform कर रहे हैं. यहाँ पे आप बात करें raw fuel के बारे में भी numbers उनके काफी अच्छे हैं. Just a little more consistency and वो 5 राउंड के अंदर आप देख सकते हो सामने टीम को डिफीट करते हुए. I agree with you. देखिए entire team जो आज के दिन में एनिग्मा का देखने के लिए मौका मिल रहा है, everybody is on the positive KD and not just positive, they're faring way better and I think उसके वजह से they're feeling very confident and जैसे हम बात कर रहे थे, they're not ready to go back, right? क्योंकि ये elimination match है. On the other hand, अगर बात कर रहे थे यहाँ पे जो हमने देखा था Cerberus, their entire KD एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव देखने के लिए मौका मिला था. बट शुरुआत I would say from the start Enigma were in control. जैसे आपने जरूर बताया था कि Enigma were controlling. They were losing a couple of rounds here and there. एक ट्रिप्टी भी गया था but I think that did not affect them. They're like एक राउंड गया है, we'll immediately try to bring things back and they were doing that. But ऐसे ही अगर एक दो राउंड मिल जाता Cerberus को, if they would have already felt confident and if Enigma kept making the same mistakes जो नहीं कर रही थी Enigma, and I think उसी की वजह से Cerberus they were unable to read them. कल के दिन में हमने देखा था Made in Thailand they were able to read Enigma जैसे वो खेल रहे थे. आज के दिन में वो मौका ही नहीं दिया Enigma ने. They were immediately well prepared and जो confidence आपने बताया था Rex के ऊपर भी वो scouted कर लिया था. Even Raw as well. He was feeling super confident. He was ready for the fights. वो आगे जा रहे थे बहुत aggressive and fight लेने के लिए. एक छोटा गलती Raw ने भी किया था but it happens, right? When you're low, you kind of contemplate between क्या मुझे peak करना है या नहीं करना है. वो maybe peak कर सकता है उस defuse पे and I think Raw was in that chaotic mind जिसकी वजह से वो C-Long का एक peak नहीं है. But nonetheless, that's just one round given, right? क्योंकि देखिए Enigma at the end they've completely capitalized on that. देखिए जी हाँ बिल्कुल सही कहा. लेकिन RVK का वहाँ पे जो प्ले था उन्होंने प्लाउलर को इस्तेमाल किया था इस 10 ओवर के अंदर से वो बहुत पिवटल था. लेकिन रॉफिल का कॉन्फिडेंस आप देखिए अंदर पुश करते जा रहे थे. उनको पता है कि डिस्ट्रैक्शन करना है. किल्स निकाले ना निकाले इट्स सेकेंडरी श्योर. बहुत सारे लोग बोलेंगे रॉफिल जेट खेल रहे तो उनको किल्स निकालने की जरूरत है. वो ड्यूलिस्ट खेल रहे. आई डिसएग्री. मैं हमेशा से कहता हूँ एंट्री फ्लैगर का काम सिर्फ फ्लैग निकालना नहीं होता है. श्योर ड्यूलिस्ट खेल रहे आपको किल्स निकालने होते हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम इज एज वेल. अगर आप स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करें, हमने सी साइड पे कितनी बार देखा स्पेशली वो राउंड में जब रॉफिल टरेट से मारे गए थे. स्पेस बनाई थी उन्होंने. इवन तो टेक डाउन हुए जरूर थे लेकिन स्पेस बनाई जिसके ऊपर टीम कैपिटलाइज कर पाई. तो ऑल इन ऑल हर एक प्लेयर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था. लेकिन I'm रियली हैप्पी टू सी विंटेज रेक्स ही यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो खेल रहे. क्रैक गेम है. मैकेनिकली इज लुकिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम. RVK हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं. एंटीडोट उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप. IGL करते हैं, किल्स निकाले उन्होंने. अब बात करें रॉ फ्यूल के बारे में तो रॉ फ्यूल स्टेप अप करते हमेशा जब भी उनकी टीम को जरूरत होती है. अगर वो एंड राउंड तक सर्वाइव करते देयर इज अ मैसिव चांस कि मल्टी किल निकाल के जाएंगे. एक्सकैली ऑफ कोर्स मैंने कहा था एक्सकैली एंड रॉ फ्यूल दो प्लेयर्स यहाँ पे एक्स फैक्टर हो सकते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. Exactly. I mean, Excali का थोड़े स्लाइड BMs भी देखने के लिए मौका मिला. I mean, he was just having fun at the end of the day of his game kill. And I think when he is doing that, he kind of functions better. तो देखेंगे Ascent में वापस वो खेलने के लिए मौका मिला क्योंकि देखिए कल के दिन में हमने देखा था with that KO pick, Excali was faring very well and वो मैप भी Enigma ही जीता था. Enigma भी यहीं पे वो Ascent का मैप जो मैप चॉइस है वो चुनते हुए नजर आया. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट बेटर कैन Cerberus डू. क्योंकि देखिए Cerberus एज अ टीम कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल नजर आता है. अगर स्पेस भी जैसे हम बात कर रहे थे जैसे रॉफिल को स्पेस मिल रहा था उसी स्पेस के आई वुड से बदौलत इमीडिएटली बाकी सारे प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे. बट दैट वाज नॉट द सेम केस फॉर Cerberus. डायक्यूट स्पेस गेन कर रहे थे. वो पहला 2 पिक्स निकाल रहे थे बट उसके बाद इमीडिएटली Enigma की तरफ से इमीडिएट काउंटर आ रहा था, रिटेलिएशन आ रहा था एंड दैट स्पेस वाज काइंड ऑफ नलिफाइड कमिंग इन फ्रॉम Enigma. बट जी हाँ एक चीज अब मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूंगा दैट्स गोइंग टू बी अकाशी फ्रॉम Cerberus साइड. वो जो प्लेयर्स को रीड कर रहे थे एवरी टाइम इररेस्पेक्टिव की आप पोस्ट प्लांट का बात करेंगे जो बैक स्टैप के लिए आ रहे थे या साइड में जो खिलाड़ी हो सकते हैं, आकाशी वाज ऑन पॉइंट विद दोस रीड्स बट वो सिर्फ प्लेयर्स को रीड कर रहे थे. आई एम जस्ट फियरिंग कि कहीं ना कहीं वो जो प्लेयर्स को अभी रीड किए हेवन पे इफ इट स्टार्ट फंक्शनिंग एंड शोज अप ऑन Ascent एज द एंटायर टीम्स रीड तब थोड़ा मुश्किल हो सकता है Enigma के लिए. बट अगेन आफ्टर Enigma विनिंग यस्टरडेज मैप वो कॉन्फिडेंस ऑल्सो अभी भी जो मैप जीता है it will be faring better for them. I think it's Enigma's game. बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है लेकिन हमने देखा था Ascent पे उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया था. अगर पहले मैच में वो इस तरीके से खेल पा रहे थे Ascent तो उनका पिक है एंड आई एम श्योर they'll be able to do wonderful over there. Aggression हमने देखा हेवन में पेस कंट्रोल करी है. सेम चीज़ मुझे लगता है वो Ascent में भी करने वाले हैं. ऑफ कोर्स रॉ फ्यूल बीइंग रॉ फ्यूल वो he's just going to go all guns blazing. यहाँ पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है. Because I still do believe he's a very momentum based player. अगर उनको
मौका मिलता है, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे आगे जाके फ्लैग्स निकालने के, वो निकालते हैं. एंड इफ ही गेट्स दोस ही इज अनस्टॉपेबल. हमने देखा इस चीज को लैंड पे होते हुए, ही इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. लेकिन वो चीज होनी चाहिए उनके लिए. I agree. I mean, he is that confidence player that he'll be looking forward to making it happen. देखेंगे क्या इस बार भी होगा. चलेंगे यहाँ पे एजेंट सिलेक्शन की तरफ. ऑलरेडी बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन से पिक्स आ सकता है. It should be the standard. No switches coming in from Enigma, but मैं देखना चाहूँगा maybe even from Cerberus. It should be a standard coming through. मुझे लग रहा है वो Killjoy पे जाएंगे. सुका यहाँ पे जरूर साइफर जता रहा है, and you can see it's going to be him on that Killjoy. And Rexy वापस अपने रोल बदलते हुए he'll be giving back that Omen and handing over. Antidote will be handing over that Killjoy back to Rexy. And देखिए no changes from both the ends. यही हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, यही एक प्ले स्टाइल के साथ नजर आ रहे हैं. I mean, this was kind of predicted. किसी के पास पिछली बार जरूर जब हम देख रहे थे he had the breach, but इस बार it is Ascent. He's going to be playing on this guy. In terms of lineup, I don't have any kind of specific speculations या maybe चर्चा करने के लिए, क्योंकि दोनों टीम से जो मैं स्पेकुलेट कर रहा था या सोच रहा था मामला, it is same. But do you have anything to say? Not really honestly, क्योंकि देखिए जिस तरीके के पिक्स है काफी स्टैंडर्ड पिक्स है, इसमें कोई सवाल नहीं है. थोड़ी देर में मैच के अंदर भी चलेंगे, लेकिन ये हमारे जो विजुअल्स आई डू फाइंड रियली कूल. काश ये सब जब मैं देखता हूँ, स्टिल आई वांट टू जस्ट हॉप इनटू द सर्वर एंड प्ले माय सेल्फ. बट आपको भी पता और हमें भी बताया वो पॉसिबल नहीं है. बट व्हाट वी कैन डू दो, maybe me, no, नहीं यार, मैं भी वॉश अप हो चुका हूँ अभी. But nonetheless, जो मैच होने वाला है थोड़ी ही देर में होने वाला है Ascent, which is Enigma Stage. पहली मैच जीत चुके हैं Enigma Haven. काफी dominating affair था. For all the viewers tuning in right now, once again, यहाँ पे Enigma on probably one of the strongest maps right here. Mind ban हुआ है, तो भाई नहीं actually मैप भी होगा if it goes to the third map. I do believe that's highly unlikely. I feel so as well. क्योंकि देखिए Ascent already Enigma जीत चुकी है एक बार, and they'll be feeling really confident as well on that. But जी हाँ, जैसे मैं initially यहाँ पे Cerberus का हम जांच पड़ताल कर रहे थे to get more idea about them. मामा, Bind and Ascent are one of their strong maps, and जब Bind देखने के लिए मौका नहीं मिला, I thought maybe they're well prepared for Haven counter कर रहे थे, क्योंकि कल के दिन में Enigma they could not fare well. They were taken down on Haven. I think उसी के सोच के साथ Cerberus आई थी, but now that Cerberus have been taken down, Ascent can be a little bit of an equal stand of दोनों teams से side में. I'm not saying at the end, but शुरुआत में दोनों teams के side में I would say it should be looking very close. But उसके बाद जो भी team momentum लेगी, जैसे आप रॉफिल के बारे में बात कर रहे थे, I think that team is going to be carrying forward the momentum and closing it off as soon as possible. I don't think it's going to be an even start. ये हमने कल भी देखा था. Enigma का ट्रेडमार्क है ये चीज़. Even start नहीं, पहले 4 राउंड में बहुत ज़्यादा, अगर पिस्टल राउंड जीतते हैं पहले 4 राउंड वो जीतेंगे ही जीतेंगे. एक आध 2 राउंड शायद बीच में हार जाए, नो डाउट, बट मोमेंटम को कंट्रोल करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वो कोशिश यही करते हैं कि दे कंट्रोल द पेस ऑफ द गेम, एंड दैट्स समथिंग विल सी. आई थिंक अभी हम गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है. हम बढ़ेंगे गेम की तरफ, जहाँ पे आपको देखने के लिए मौका मिलेगा कि गेम में ये दोनों टीम्स क्या करती हुई नजर आएंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट माम्बा की, जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि कैसे इन टर्म्स ऑफ द स्टार्ट इट कैन बी काइंड ऑफ वन साइडेड फॉर एनिग्मा, बट उसके बाद इमीडिएटली ओपोनेंट टीम कम बैक करती हुई नजर आ सकती है. बट आई थिंक इस बार भी वो जो हाफ है, इट माइट नॉट बी अ 9-3, बट आई थिंक इट शुड बी अ 7-5 कमिंग. Sure, it's a more balanced map, उस हिसाब से आप कह सकते हैं. देखिए Haven again attack heavy map है, so that's the reason why ये score lines आपको देखने मिलती है. But Ascent 7-5 seems very likely. Maybe let's just hope for कि देखिए 7-5 as you said, it's some जो map है यहाँ पे अगर बात करते हैं Ascent, it's kind of a vanilla map जो हम देख रहे हैं. But as we said, गेम तैयार हो चुका है. विल बी जंपिंग राइट इन द गेम. 20 seconds on the clock, and इस बीच माम्बा आपके साथ जुड़ने वाला है हमारे कैप्टन प्राइज, who will be walking alongside and also on the driver's seat for Ascent. जी हाँ प्राइज, वेलकम बैक टू द शो. लेकिन 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे राउंड शुरू होने वाला है. एंड वंस अगेन अ स्टैंडर्ड सेटअप कमिंग इन. सवाल ये बनता है क्या एग्रेशन आने वाले डिफेंडर्स की तरफ से. वी हैव रॉ फ्यूल गोइंग इन, लेकिन आई थिंक लाइट के इस्तेमाल करके उनको डिले जरूर किया जाएगा. It's the basics. We are back to the basics, right? सिर्फ KO एक add-on रहेगा जरूर, but वो KO versus Sky, I think he has the upper hand in map, and
basically जो भी कॉम्प हमने देखा है एनिग्मा की तरफ से Placing swarm. well, Swarm they grenade have done out. well, but on the other side, देखिए एक पुश आने की कोशिश की जा रही थी, पुश करवाने की कोशिश की जा रही थी, but every time Cerberus is trying for that push on B main, हर बार धकेला गया है एनिग्मा के द्वारा, and Enigma right now they can just wait it out. A side पे ऑलरेडी देखिए कमिटमेंट आ रहा है, रॉ फ्यूल उनके साथ साथ एक्सकैली तैनात है, you do get to see RVK as well, and Antidote, he has to be smart whether he just wants to hold that flank या फिर आपको उनके साथ कमिटमेंट देखने का मौका मिलेगा. थोड़ी देर में पता चल जाएगा. लेकिन आकाशी की बात करें, वो अपने टीम के साथ जाएंगे. रेक्स अभी भी बी मेन होल्ड करे, लेकिन इन द मीन टाइम देयर इज अ पुश कमिंग इन टुवर्ड्स मिड की तरफ से जाएंगे, लेकिन अलार्म बॉट लगा जो ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन रिले जरूर होगी, बट रेक्स को यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. पहला किल निकालने की कोशिश करे और राइट क्लिक किया जरूर, लेकिन शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए. इन द मीन टाइम एंटीडोट जितना कंसिस्टेंटली वो खेलते हैं, अब आई डू बिलीव स्मोक में हल्का सा गैप जिसकी वजह से शायद टेक डाउन हो सकता है, लेकिन अभी भी शॉट कनेक्ट करते जा रहे हैं. वो जो की पैरानोया का इस्तेमाल करेंगे, पहला किल निकाल जरूर पाएंगे, दूसरा नहीं निकाल पाएंगे. रॉ फ्यूल ट्राई का कंट्रोल लेते हुए, लेकिन आईकूटे इन द मीन टाइम आरवीके को टेक डाउन करेंगे. रॉ फ्यूल को स्पाइक ऑन द कॉर्नर एक बॉल किल निकालेंगे अपने आप के लिए, बट अनफॉर्चूनेटली Enigma is going to lose out on the first round. Well, if it isn't Ascent, I mean Ascent पे देखिए कल भी राउंड था, we didn't think कि Enigma को हारती भी नजर आई थी. मेरी Thailand did secure that one. Enigma के लिए Ascent you can say it's a jump start, and वो jump start का usage उन्हें करने का मौका मिला, so they have to just wait it out. काफी patiently game दिखाना पड़ेगा, but once again it's Enigma, it's recalled Enigma. जैसे pistol round हारते you get to see shellets from their end. Excali however अकेले classic पे खेलने वाली, he has all his utilities. Raw fuel with a Marshall, high hopes for that Marshall. Specifically अगर आप बात करेंगे ट्री पे जो पीक आएगा, but there's two guys coming in from B main, वो पुश अगर रोकने में सक्षम हो जाते किसी तरीके से Kishi, that's going to be huge. But Rexy थोड़ा सा डैमेज डील किया गया है. RVK already sneaking in out to tree. Suka इनके अगेंस्ट में रहेंगे जरूर. RVK the sheriff master Suka इनका बैकअप करना पड़ेगा, but पीछे से IQJ he did manage to sneak up mid से, and उनको एक pick already मिलता. वो looking to another one as well, but Raw Fuel waiting it out patiently, connects at Crispy. Last player standing. Connects another one, and that's classic Raw Fuel for you. That's the authentic Raw Fuel. एक shot connection आएगा, but दूसरा shot connect नहीं हुआ. अगर हो जाता then it could have been a troublesome situation for Cerberus. I think अगर वो शॉट कनेक्ट हो भी जाता तो ट्रेड निकल जाते. So all in all Enigma राउंड हारती जरूर, लेकिन डैमेज काफी ज्यादा डिश आउट कर पाती. बट अब यहाँ पे जब Cerberus सोच रही होगी कि शायद वो बोनस राउंड खेलेंगे, यहाँ पे वेपन्स एडवांटेज कम से कम Enigma के पास होने वाला है. एंड रॉ फ्यूल मतलब क्रिस्पी दिखाते हुए showing us why is where he is, right? एंड हमने देखा मैकेनिकली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये. एक और ऑफ मिलेगा उनके पास, ब्लेड स्टॉर्म भी आ जाएगा जो इको राउंड में इस्तेमाल कर पाएंगे, इवन इफ दे एंड अप लूजिंग दिस राउंड, राइट? रेक्स इन द मीनटाइम होल्ड करे बी मेन की तरफ, एंटीडोट शॉट रिसेप्ट का इस्तेमाल करके टीपी करेंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाए. ए लॉन्ग ये देके पीक करेंगे, पहला किल निकालेंगे. ब्लाइंडिंग लाइट आया जरूर है. यस इंडीड ही इज गोइंग टू गेट स्पॉटेड. दो किल निकाल दो. ए साइड की तरफ यहां पे शायद हमें क्विक रोटेट देखने जरूर मिल सकता है. आरोना को वॉइड करेंगे, एक किल निकालेंगे अपने आप के लिए, लेकिन सूखा इन द मीन टाइम फिर निकाल दो. यहाँ पे फ्लैश बैंग स्कैली वंस अगेन फ्लैश इस्तेमाल करेंगे, क्या पीक करेंगे? जी नहीं, स्टक इन देयर, लेकिन नैनोक्रॉम की वजह से शायद उनको दिक्कत हो सकती है. अभी भी हाउ इज स्टिल सर्वाइविंग. एक्सी बैकअप देते हुए, हाउ इज एक्सकैली स्टिल अलाइव? हाउ इज ही स्टिल अलाइव? Teammates. I'll just say teammates and cover fire. Let's see, देखिए इंतजार कर रहे थे. इनफैक्ट कोच शिप्स थी सुका की डाउन कर पाए रेक्सी, बट जी नहीं. I mean he's एजेंट इवन says कि it hurts, लेकिन in the end Enigma Gaming gets the first round. Possible by round था. It was a probable one as well, because आप देख रहे थे कि most of the buys जो भी लिया था, buys बिल्कुल नहीं थे. It was a bonus round जो Cerberus निकालना चाहते थे, but वो नहीं हुआ. And in the end Jack, it was a well played round by Enigma Gaming. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. बट Enigma उनके पास देखिए वेपन्स एडवांटेज था. मैंने कहा था कि वो राउंड शायद मोस्ट लाइकली निकाल पाएंगे, बट इन द मीन टाइम यहाँ पे Cerberus have decided to go in for a half pie, which is very interesting to me because मुझे लगता है ऑपरेटर के लिए शायद वो टेक कर रहे हैं एंड हल्का सा एग्रेशन दिखाएंगे. सो Cerberus यही करने की कोशिश करेंगे जो Enigma ने इवेंट पे किया था अटैकिंग साइड में, लेकिन दिस टाइम राउंड वो टेबल टर्न करना चाहते हैं RVK. इन द मीन टाइम ए लॉन्ग होल्ड करेंगे, एक इंपॉर्टेंट हल्का सा स्प्रे वहाँ पे रंगोली बनाते हुए at the end of the day. और कनेक्ट किए जरूर है उन्होंने. One enemy remaining. No charges left. Nasty.
That's just raw fuel. I mean, that's just raw fuel, and he's good taste. And raw fuel finally shut down भी करेंगे एक और खिलाड़ी को. There it is. 4K. I mean, raw fuel starting off really strong. देखिए पहले राउंड में उन्होंने कुछ ज्यादा करके नहीं दिखाया, but immediately after that, especially getting 2 frags, and जैसे चौथा राउंड आता है, जैसे एनिग्मा गेमिंग के पास वो weapons आते हैं, it's there. It's an equalizer already. It is an equalizer already, लेकिन ऑफ की अगर हम बात करें, देखिए मैंने कहा जब भी वो एंड राउंड तक सर्वाइव करते हैं, मोमेंटम फील करते हैं, अनस्टॉपेबल हो जाते हैं. हमने यही मैप पे बाय द वे देखा था उनको परफॉर्म करते हुए, यहाँ पे 8 के बॉडी वो निकाल चुके हैं. Are we going to see one of those performances again from Raw Fuel? थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा. Scanning ahead. यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, रिकॉन बोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. अलार्म बॉट भी उन्होंने स्पॉट किया हुआ था, लेकिन आउट जोन के साथ कोशिश की, वो फ्लैश बैंग की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली उनको. Perfectly timed. I mean, that's Antidote, that's Excali. Rexy जैसे और उठाने जाते हैं, शॉक डार्ट का हल्का सा झटका पड़ेगा, दोबारा से वो उठा लेते उस ऑर्ब को. लॉकडाउन जितनी जल्दी हो सके लाना चाहते अपने फेवर में. Kishi has given away his position. शोल्डर पिक कर जरूर है, but RVK he's sneaking in. गार्डिंग लाइट आएगा, डॉज करेंगे. इन्फो नहीं मिला किशी को. And that's the huge, and it is RVK, you sneaky bugger. That's how you just play patient and get the first pick in your team's favor. I was a little concerned over there कि आप क्या बोलने वाले हो, but nonetheless यहाँ पे recon bolt अंदर जाके close किया. मेरा डाइक पे एक निकालते लोग की वापस जाते हुए, पर रेक्स इक्वलाइज करेंगे सिचुएशन को. एंड फिलहाल के लिए आई डू बिलीव राउंड थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, लेकिन वीक कमिटमेंट क्या हमें देखने मिलेगा. 30 seconds left. ये सवाल होगा, बिकॉज़ बात करें तो एक फ्रैगमेंट अवेलेबल है एक्सकैली के पास, उनके पास फ्लैश भी है, एंड रेक्स does have the turret available. दो डार्क कवर एंड श्राउड is there. वो कॉन्टैक्ट लेके लिए जाएंगे, लेकिन ये आइडिया नहीं है, लेकिन turret डिसेबल करने की कोशिश करनी जरूर थी, लेकिन वो नहीं होने वाला. 10 seconds और the and they go in. One enemy remaining. Could be the rush into the side. All right. Oh my goodness. सीधा टेलीपोर्ट किया उन्होंने अपनी मौत की तरफ, and straight to the graveyard he goes. Unfortunate for Antidote. 3-2. Cerberus. For now they're doing good. For now they're doing really good. The defenders half में देखिए, I'll always say कि Ascent as a defender-oriented map, mid control सबसे valuable रहेगा. And अब तक हमने almost सारे के सारे rounds में देखा है that Jet will come in mid पे, किसी भी तरीके से वो आते हैं and they just get the mid control. And Cerberus का यही mid approach रोकना पड़ेगा Enigma Gaming को, अगर वो और भी ज़्यादा rounds निकालना चाहते हैं attacking half में. Yeah, but I do believe they can control the game यहाँ पे, क्योंकि I feel like fairly balanced map है यहाँ पे. लेकिन 4 rounds आपको देखने जरूर मिल सकते हैं, but meantime पूरी की पूरी कोशिश करें मार्केट पे प्रेशर बनाने के लिए. Antidote in the meantime टेलीपोर्ट करेंगे RVK, डाकू लेकर किल निकालते हैं उनकी बन है, लेकिन आउट के साथ आएंगे. हम जरूर हो रहा है डाकू के अंदर, लेकिन काफी नहीं है ना ज़्यादा नजदीक है. That was very smart. Spike planted. There it is. Spike has been planted and एक 3v5 का retake. I don't think यहाँ पर कमिटमेंट लेना भी चाहिए Cerberus को, but they are Cerberus. I mean, they will try to wreak havoc अगर उनको मौका मिलता है. उसके लिए first pick बहुत important रहेगा. And look at Excali. Excali just waiting. वो बस patiently इंतजार कर रहे कि कब कोई खिलाड़ी उनके ऊपर आए भी थे, लेकर भी चले गए. Excali को रेड सिंह बीच में लेके जाएंगे. Raw Fuel आखिरी खिलाड़ी काशी बहुत एक पिक निकलेगा, दूसरा भी मिलेगा उनको, बट पैरानोया से पुश बैक करवाया जाएगा. एंटीडोट आरवीके स्टिल सर्वाइविंग. वेपन ड्रॉप्स अगर करवा पाते हैं आकाशी, अगर यहाँ पर इकोनॉमी डेंट करवा पाते हैं एनिग्मा गेमिंग की, जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक इट कैन बी अ ह्यूज वन. और कोई अप्रोच लिया नहीं जा रहा है. दैट्स इट. एनिग्मा गेमिंग इक्वलाइज इट वंस अगेन. यार इक्वलाइज करेगी जरूर इसको. बहुत देखिए Ascent is very good to watch. जब भी आप एज ए स्पेक्टेटर आप देखते हो या फिर इवन एज अ स्टोरी टेलर आप ये मैच को कास्ट कर रहे होते हो, बैक एंड फोर्थ राउंड्स आपको दिखाई देते हैं. हेवन जैसे मैच की दिक्कत ये कि इट्स यूजुअली वेरी वन साइडेड, राइट? क्योंकि जब आप अटैक कर रहे होते हो आपको मोटा आइडिया होता है कि राउंड्स कहाँ पे जाने हैं. किसी नहीं है, देखिए उनका वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेल था. उनको आइडिया रहता है कि हमेशा प्ले राउंड एक तो चीज़ करना ही बेटर है. ऑल इन ऑल Enigma played like a unit, and राउंड जीता उन्होंने अपने आप के लिए हारा. आज अगर हम बात करें प्रीवियसली कौन कितनी अच्छी नहीं.
स्कोर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, एंड सीधा पुशिंग किया जा रहा है, चेक दैट कॉर्नर, एंड कॉर्नर चेक नहीं किया गया, कैन द ह्यूज स्कोर दिस टाइम, बट ऑलराइट, इजी मैनेजिंग टू गेट 2 पिक्स, लेकिन पहले 3 शॉट्स मिस करना, इट कुड हैव बीन very heavily punishable on the other side. देखिए already touch the air, Rafael does want to get that pick, लेकिन मिलेगा नहीं, जैसे ही क्योंकि कोर को स्टेबलाइज करने जाते हैं वहां पे मौका मिला, but directly and that flank will be denied by RVK, and that's it. Only one player stands between that lead जो Enigma Gaming को पहले राउंड से ही चाहिए थी, उसका शट डाउन किया जाएगा RVK के द्वारा, and that's the lead coming in for Enigma Gaming. Enigma Gaming is sent पे already. देखिए अगर हम सिर्फ stats की बात करें, let's just talk about stats. Yes, on paper, overall, stats ये कह रहे हैं कि Cerberus is better than Enigma because उनका win percentage ज्यादा भी नहीं है. I mean 71% win ratio रहेगा Cerberus का, but Enigma Gaming के पीछे नहीं है. 69% हमें उनकी तरफ से भी देखने का मौका मिलेगा. I mean that's a great number, 69 though. But on the other side, देखिए Enigma Gaming लीड फाइनली लेते हुए आपको नजर आएंगे 4-3 ऑन द स्कोर कार्ड. Cerberus के लिए एक और राउंड अगर वो हारते हैं, which is going to be how far is it? Okay, no, it's full by. I thought that was a Marshall on that UK, but जी नहीं, इस बार एक ऑप रहेगा, and इस ऑप को शट डाउन करना प्रायोरिटी लेना पड़ेगा Enigma Gaming को. फुल बाय Enigma Gaming की तरफ से भी है. आरवीके की थोड़ी सी एचपी जरूर डाली हुई है, पर यहाँ पे 2 खिलाड़ी पुश करने वाले बी मेन को, एंड ये पुश काफी डेडली हो सकता है अगर पिक मिल जाता है. फ्रैगमेंट से सबसे पहले तो मार्केट का अप्रोच जो है डिनाई किया जाएगा. सूका विनिंग डाउन फर्स्ट लेन, अगर फर्स्ट लेन से ये पिक मिल जाता है उनको, इट्स गोना बी अ मैसिव वन. Akashi patient, but Suka as soon as he gets a frag immediately steps back, and Rockfield का ये स्निकी अप्रोच डिनाई किया जाता है. Akashi still there, he is like a pillar अभी जो एंट्री डिनाई कर रहे हैं बीच साइड on the other side. देखिए Enigma Gaming हर बार बी लॉबी में बस वेट करते हैं कि कब कोई अप्रोच आए, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाया. कमिटमेंट का पनिशमेंट एलक्यूजे का ऑफ डिनाई किया जाएगा एंटीडोट के द्वारा, एंड दैट इज Enigma Gaming equalizing all the numbers. Antidote gets another one. IGL diff happening here, and साथ ही साथ Excali. I mean Excali and Antidote की अगर आप बात करते हैं, they are probably the second best duo from Enigma Gaming after RVK and Rexy. Finally, it's down to just 2 players. Suka and Kishi, but Suka gets denied. And it's Kishi only left alive. Kishi की position को तो कोई नहीं परख पाए, but Antidote using that crowd step just to get away. कोई भी रीड नहीं है उस आखिरी खिलाड़ी के पास. Do you think he'll be able to do some economic damage Enigma के ऊपर? What do you think, Mamba? Well, there's not a lot left to think, right? यहाँ पे Antidote ने 4 के निकाला है. And round जीते Enigma 5-3 score line. I think अगर 2 और round निकाल लेते यहाँ पे they are in the driver's seat. में यार they have a lot of work to do, but in the meantime Antidote ये round की बात करेंगे हम. जितने भी kills निकाले थे काफी impactful kills से लग किया था उन्होंने, काफी smart position थे. आप देखेंगे नोटिस करेंगे flashy kills नहीं थे इनके, और Antidote के usually flash kills नहीं होते. बहुत ज़्यादा sharp player है, बहुत ज़्यादा smart player है, and अपने आप को उस पोजीशन में डालते हैं जहाँ पे डैमेज लेना पॉसिबिलिटी भी ना हो. फॉरगेट टेकिंग हेड ऑन फाइट, फॉरगेट टेकिंग 50-50 फाइट, वो अपने आप को 50-50 डालते हैं जहाँ पे उनको डैमेज ही ना पड़ता है. इसकी वजह से दो स्किल्स लुक सो इजी, लेकिन ये आसान नहीं होता ऐसी पोजीशन ढूंढना एंड टू रीड द गेम बैक वेल. हाल भी है अगेन Cerberus के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है. वी विल सी सम शेरिफ्स बीइंग पुल्ड आउट वेयर लो की मार्क होंगे, लेकिन यहाँ पे आई डू बिलीव हल्की सी और उनके ऊपर लेकिन बहुत सारे मिसाइल लॉकडाउन आएगा यहाँ पे. मीन टाइम गोना मेक इट उनको कथा तो उनको तो वो शॉट को भी वो क्या के निकाले कोशिश नहीं निकाल पाए. Spike planted. Well, numbers are equal, लेकिन weapons का heavy disadvantage है अभी Cerberus के पास. ठीक लास्ट रूम को जरूर तोड़ेंगे, लेकिन जो दिक्कत रहेगा अभी एक ही दिक्कत हो सकता है Enigma Gaming के लिए, if they give away the picks, if they manage to give away a single pick, बहुत मैचिव रहेगा. In fact, आकाश की कंट्रोल गार्ड Rexy को डाउन करेगा. Kishi एक डाउन एंड ओवर है, लेकिन Excali immediately RVK के साथ बैकअप देने के लिए तैयार है. लॉकडाउन इज आल्सो प्रेजेंट, लॉकडाउन को तोड़ना है जरूर. लॉकडाउन को क्या तोड़ा जा सकता है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं. आकाशी surviving with 2 HP, all hope right now on RVK, लेकिन उनको भी डाउन किया जाता है. I was telling you कि फर्स्ट पिक किसी भी हाल में नहीं देना Enigma Gaming को, वही गलती कर बैठते हैं, and there's enough time to defuse the spike as well. चौथा राउंड Cerberus के खाते में. Enigma Gaming एक राउंड लीड अभी भी है. They won't want कि किसी भी हाल में Enigma Gaming
guy. And Cerberus, they can make it a 7-5 if they are consistent all throughout the remaining rounds in the first half. जी हाँ, बात वहाँ पे रॉकेट का जो प्ले था वो बहुत दूर साबित हो सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाया वहाँ पे। Enemy remaining. ऑल इन ऑल जो आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था। काफी की बात करें, 3K निकाला, अपनी टीम के लिए स्टेप अप किया उन्होंने। फिलहाल के लिए वी हैव Cerberus विद द टाइम आउट, व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू मी एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ पे उनको जरूरत नहीं थी। बट रॉ फील्ड की अगर हम बात करें, पिछले 3 राउंड में आई बिलीव उन्होंने सिर्फ 1 किल निकाला। इसी चीज़ के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। वो अपने आप को ऐसी पोजिशन में डालते जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशंस होती है। इनकी मैकेनिकल स्किल भी है इनके पास वो बैकअप करने के लिए, बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी की कहीं ना कहीं ज़रूरत है उनको, बिकॉज कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, बट इफ़ यू कान गेट दोज राउंड्स कंसिस्टेंटली, अगर आप वो किल्स कंसिस्टेंटली नहीं निकाल पाते तो फिर दिक्कत होती है। एक्सकैली एज वेल असिस्ट दे रहे अपनी टीम को, ज़्यादा स्टेप अप नहीं कर पाया। इट्स बीन 9 राउंड्स ऑलरेडी। किल्स के मामले में थोड़ा सा पीछे रुके हुए यहाँ पे, बट आई डू बिलीव इट्स स्टिल वे टू अर्ली इन द गेम। अभी भी ये किसी का भी मैच हो सकता है। Cerberus, Enigma are more or less on an equal plane right now, and अगर Enigma यहाँ पे और राउंड्स निकाल के जाती है, then they might have easy second half, but not easy, but at least a more favorable second half. Yeah, on my way. On the other side, he went to get one, but दूसरा pick के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन भी नहीं। क्यों से They just small down Enigma, giving एक बेहतरीन रिट्रीट आता हुआ। Rexy, however, अपनी दुनिया में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि रेक्सी के लिए, रेक्सी एंड आरवी के बोथ ऑफ देम एक्चुअली, वो अपने दुनिया में खेलते हैं, अपने दुनिया में राज करते हैं, एंड अभी तक उसको कोई तोड़ नहीं पाया है। Stuck in a 1v3, रेक्सी, he has everything he needs, सारे के सारे यूटिल्स उनके पास अवेलेबल है, लेकिन स्पाइक डाउन है। एंड टू माय अटर सरप्राइज, Cerberus, they don't even care कि स्पाइक गार्ड करना है। देखिए वो कंप्लीटली अभी साइड को एंकर कर रहे हैं, एंड दैट is a very smart move coming in from them. जी हाँ, लेकिन Rex and 1 versus 3, it's still possible for him to pull this off। यहाँ पे 50 सेकंड अभी भी क्लॉक के ऊपर है, एंड स्पाइक भी उनके पास है, तो धीरे धीरे मेथोडिकली एक एंगल यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हो, लेकिन मैप कंट्रोल नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। अभी भी हाई मिड पे अटके हुए हैं। अगर वो आके पुश करने की कोशिश करेंगे वॉक करके, तो उनके पास शायद 17 या 18 सेकंड बची होगी बाय द टाइम ही गेट्स टू ए शॉट, और वहां से उनको एंगल क्लियर करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड वहां द मोमेंट ही गेट्स देयर उनको पुश करना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट, पहला किल निकाला जरूर है, उन्होंने अपनी लोकेशन दे दी, लेकिन अभी भी वॉक कर रहे। देखिए अंदर जाएंगे, उनको पता नहीं अगर ए साइड पे कोई है कि नहीं। टैरेट अवेलेबल जरूर, अलाहाबाद भी उनके पास अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर हेवन क्लियर करके ही वो प्लान करेंगे। फेक किया जरूर है, लेकिन नाउ ही डज नॉट हैव द टाइम। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है। Next, could have actually pulled it off. But Akashi, that's a huge misclick. That's a massive misclick. Hunter shooting उन्होंने इनिशिएट कर दिया था, एंड ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो अभी करते हुए नजर आए। Cerberus, Akashi, Hunter's Fury literally waste हुआ है because of that one misclick. अगले राउंड्स में I'll just say it right here, देखिए अगले राउंड्स में Akashi, he's gonna miss that Hunter's Fury जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। Possible, but there was a massive chance कि यहाँ पे वो राउंड निकाल सकते थे अगर Rex वो शॉट कनेक्ट कर लेते and round block करते। then Cerberus, I do believe they were at the breaking point वहाँ पे को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया। आगे का रोल बखूबी निभा जरूर रहे, लेकिन किल्स नहीं निकाल पा रहे, which is understandable, लेकिन स्टेज नहीं बना पाए इस बार। जरूर करे थे, लेकिन गेम के अंदर बरकरार है। कर दिया आ जाएगा इस्तेमाल करके, तो Scally is just playing on an I don't care strategy. You come in front of me, मैं आपको shut down करने वाला हूँ। आखिरी खिलाड़ी सूखा बचे हुए ना 1v3, and Scally he is on his ace right here. एक ace निकल सकता है जरूर, लेकिन क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे Enigma Gaming? We have seen them like just give away the ace because उनके लिए राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। Rexy लेकिन स्पॉट किया गया, शट डाउन किया जाएगा सूखा को। Enigma Gaming have the 6th round in their half. Last round in the half. Oh well.
नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपनी टीम के लिए एंड इटली एज वेल लास्ट राउंड में काफी ज्यादा बैकफुल किल्स निकाले थे उन्होंने जब भी उनको जरूरत थी फ्रैगमेंट का भी काफी ज्यादा शानदार इस्तेमाल किया उन्होंने किल्स बनाने के लिए। आई डू बिलीव 0 पॉइंट भी था उनके पास सामने वाले प्लेयर को डिसेबल करने के लिए, जिसका इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से किया। एंड कॉल फ्लैश बैंग्स वर ऑलवेज देयर। Well, revealing area. Vietnam versus India, it's happening right here and मुकाबला टक्कर का है। आप चाहे तो कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए लग रहा है it's a one-sided game for Enigma Gaming, then अगले कुछ राउंड्स में it's a one-sided game for Cerberus, but कांटे की टक्कर है। देखिए अटैकिंग हाफ में जहां पर एनिग्मा गेमिंग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंडिंग हाफ में भी कुछ खिलाड़ी तंग करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली अकाची एंड जाइकुटी। Kichi waiting it out, बैक ऑफ करने की कोशिश, लेकिन Kichi मेक श्योर कि एक्सकाली इस बार बच के निकल ना पाए। स्ट्रीकर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे तीनों जो रिमेनिंग खिलाड़ी हैं उनके कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आएंगे। Spike down Be a mid. 6-6, most probably it's going to be a 6-6, but it's RVK, the Sheriff Master himself, who's left alive alone. 50 seconds on the clock. क्या ये क्लच करके जा सकते हैं? बहुत impossible एक टास्क रहेगा जरूर ये। I mean, next to impossible, not an impossible one. But we'll see what happens. We'll see what happens. 1 versus 4. अभी भी मौका जरूर है उनके पास, स्पाइक है लेकिन समय इतना ज्यादा नहीं है। सूखा अगर पीक करते हैं, इवन इफ लॉन्ग ट्रेड जरूर निकल जाएगा उनके लिए, लेकिन वो की पीक नहीं करने वाले। I'm sure आगे के यहाँ पे ट्रेड एक्सपेक्ट कर जरूर है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन किसी नहीं मिस करने वाले। एंड unfortunate but nonetheless 6-6 स्कोर लाइन है even and इन बाकी है। एक चीज जरूर कहूंगा मैं, दिस इज व्हेन रॉ फ्यूल नीड्स टू स्टेप अप, स्पेशली डिफेंस साइड में, बिकॉज़ अटैक में श्योर आप पेस बना रहे अपनी टीम के लिए, यू कांट ऑलवेज गेट किल्स। डिफेंस में रो ऑन द अदर हैंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। आप जेट खेल रहे हैं, कंफर्ट पिक है आपका, एंड I'd love to see some aggressive hopping, I'd love to see some aggressive sniping। अगर वो हमें देखने मिलती है तो असली इंपैक्ट इनका हमें पता चल सकता है। Of course, defending half में that killjoy can be the anchor of B side, लेकिन लगातार B side पे रेक्सी आपको डिप्लॉय होते हुए नजर नहीं आएंगे। एंटीडोट का कुछ स्पेसिफिक कॉल आउट्स रहता है कि अगर पहले राउंड पे वो B साइड खेल रहे हैं, दूसरे राउंड के बाद इमीडिएटली स्विच ओवर करके A साइड पे वो सेटअप करते हुए हमें नजर आते हैं, एंड दैट सेटअप आई लव इट। आई मीन देखिए, आप ट्री एरिया पे अलार्म बोर्ड देखेंगे, थर्ड विल बी प्लेस्ड हाई ऑन राफ्टर्स, एंड साथ ही साथ नैनोसोन ग्रेनेड्स डिफॉल्ट प्लांट रोकने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। बट क्योंकि पिस्टल राउंड है, बी साइड पे अगर पुश आता है, रेक्सी हैज एवरीथिंग ही नीड्स टू स्टॉप द पुश फ्रॉम सर्बरस। लेकिन हमें पता है कि किलजॉय डिफॉल्ट बी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए शायद से आपको ये राउंड पे एग्जीक्यूट जो है सर्बरस की तरफ से ए साइड पे ही देखने का मौका मिलेगा। द जेट एंड किलजॉय स्टिल लर्किंग अराउंड इन स्पॉन। क्या एक सिमिलर स्प्लिट हमें देखने का मौका मिलेगा एनिग्मा गेमिंग, जो बार बार कर रहे थे अटैकिंग हाफ में, दो खिलाड़ी स्पेशली द इनिशिएटर एंड द डुअलिस्ट लर्क करवा रहे थे वो बी लॉबी पे। क्या सिमिलर एक अप्रोच रहेगा सर्बरस का भी, और इज इट गोइंग टू बी अ कंप्लीट रश ऑन टू द ए साइड एटलीस्ट इस पिस्टल राउंड पे? आई थिंक फिलहाल के लिए रश तो नहीं करेंगे, वो स्लो खेलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं वी डू सी अ स्प्लिट कमिंग अप, एंड डिफॉल्ट है ये इनका, डिफॉल्ट खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अर्ली एग्रेशन आता है कि नहीं कहीं पे, बट हमें पता है कि मिड पे किस तरीके का क्रॉस फायर होता है, तो परफेक्ट रीड आते हुए वापस एनिग्मा की तरफ से। आई डू बिलीव अगर रीप्लेस कोशिश करते हैं मिड पे जाने की, देन it could definitely be a meat grinder. You know, ये पिस्टल राउंड पे आई डोंट थिंक मामला कुछ कहना, I mean, कुछ भी हम प्रेडिक्ट करते हैं पिस्टल राउंड के लिए, it might just all go in vain. मिड कंट्रोल अभी तक तो I mean, it's highly likely कि हमारे सब बातें सही निकले। हमने सेटअप देखा हो इनका, it's a setup we've seen for a very long time। एनिग्मा देखिए हमेशा दो प्लेयर्स खिलाती है, पीछे से मार्केट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है। एक शॉट पे भी आरवी के हमेशा पीक करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत ज्यादा होती है, उनको पता है मिड कंट्रोल कितना ज्यादा पिवटल है, स्पेशली पहले राउंड में, जो बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। But the heavier presence आपको ए में नई लॉबी पे देखने का मौका मिलेगा। देखिए जो किलजॉय एंड जेट थे, Suka and साथ ही साथ Daikyu, they're also making their way towards the A side. ये recon bolt को तोड़ देना, will give out some information. Yes, it's going to be an A execute. Pistol round है तो slow भी जा सकते हैं,
because Enigma Gaming they won't push in the pistol round. ये लिखा हुआ है कि Enigma Gaming अगर डिफेंडर्स हाफ पे है एंड अगर पहले 30 सेकंड के अंदर कोई भी साइड पे कमिटमेंट नहीं आता है, Enigma they won't push from either side. लेकिन मिड, जैसे मैं कहता हूँ एसेंट पे मिड रोटेशन को कट ऑफ करने की पूरी कोशिशें चलती थी. Enigma Gaming एक्सकैली जस्ट रशिंग इन एंड लुकिंग के सामने रहेंगे, जरूर शॉट मिस करेंगे. एक्सकैली के साथ एटीट्यूड आ गया कि ये पिक अपने नाम करके जाएंगे, लेकिन साइड कंट्रोल नहीं मिला है. Rexy still there on B, but Daiku के manages to sneak up onto A, gets a pick for himself. Rexy सीधी से सुका का पिक निकाल जाएंगे and Kishi is left with only 28 HP. Enigma Gaming के लिए ये राउंड is more than doable, but will they make a mistake or not? A few seconds to find out. Blinded. Last player standing. रीटेक होने वाला है ना. मिस्टेक्स फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करके यहां पे बैक क्लियर कर किसी को टेक डाउन करने लेकिन राशि बी की तरफ है. ज्यादा कुछ नहीं करते हैं हम. श्योर एक्सकैली बी करेंगे. डिंक किया जरूर है उन्होंने, लेकिन defeated. Scanning ahead. राउंड अपनी टीम के लिए बचा जाएंगे. बट ओह माय लॉर्ड, क्या शॉट कनेक्ट किया उन्होंने एक्सकैली के ऊपर. 7th round for Enigma Gaming. Pistol round पहले हाफ में तो जरूर हारते हुए नजर आए थे. इस हाफ पे क्या प्लेस किया Enigma Gaming ने. डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप रहता है ओवरऑल, बट लेट्स जस्ट से कि Enigma Gaming अगर वो रोटेशन को कट ऑफ नहीं कर रहा, आई मीन सी दे डिडंट टोटली कट इट ऑफ, एक्चुअली जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया था कि नाउ यू हैव टू गो टू बी, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कमिंग बैक टू ए बिकॉज़ ऑलरेडी मिड हमें मिल चुका है. आप मिड पे जाएंगे, यू हैव टू क्रॉस ओवर ए लॉबी पे, वहीं पे शट डाउन किया जा सकता है. वो मजबूर करना Enigma Gaming they have proved out over and over again कि कैसे वो किया जाता है. Enigma Gaming however और it's a good shot from Daiku. ओके रहना एक्सकैली को भी फ्रैगमेंट उनके पास अवेलेबल है. बैक ऑफ कर जाते हैं. नीचे क्लाउड बर्स्ट से पुश करवाने की कोशिश. शॉक डार्ट्स लैंडिंग आउट ऑफ ब्लॉक. एम को मिले बट नहीं, एक पे चलेगा ऑफिल गुड बाय स्कोर. थर्ड वन इज वेल, लेकिन वो नाकाम रहेगा. सुका विद हिज क्लासिक making things a little bit problematic and dramatic as well. Lekin I think Enigma Gaming have more than enough to touch down, but Phoenix Loki shuts down Rexy. I mean the classics and the connections from Cerberus are absolutely insane. You can't be losing these fights, man. Enigma ये फाइट्स आप नहीं हार सकते. श्योर रॉफिल का जो डिंग था वो कनेक्ट हुआ था वेक्टर के साथ, किल नहीं निकाल पाए, अंडरस्टैंडेबल, बट एक और किल क्लासिक के लिए देना is unacceptable. एंड यहाँ पे आई डू बिलीव जीते की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि समय नहीं उतना उनके पास. यहाँ पे एंटीडोट कितनी भी कोशिश कर ले उनके पास समय नहीं होने वाला है. एंड नैनोफॉर्म की वजह से उनको पीछे हटना पड़ेगा. ये राउंड एनिग्मा I really can't understand how they lost this round. Last player standing. That was 50. कुछ भी बाइंग नहीं है. आप देखिए there was not a single sheriff or a frenzy or even a post. In fact, second round is a thrifty seesaw game आ रहा है. जरूर Enigma Gaming slight over commitment there, but देखिए over commitment से ज़्यादा I think Cerberus deserves the credit of this round. They deserve it because classics के साथ-साथ against all aim duels जीत के जाना, स्पेशली रॉफ्यूल जो दो पहले पिक्स निकाल के गए, नंबर्स का एडवांटेज आया उन्होंने अपने फेवर में, बट स्टिल Enigma Gaming they just fell short. इस बार एक सेट पे कमिटमेंट आ रहा है एंड शेरिफ जरूर, बट ही जस्ट वेटिंग के सामने आएगा एंड सूका यूटिलिटीज के साथ-साथ ये कॉम्बो वॉम्बो का इस्तेमाल करके सीधा साइड के अंदर पहुंच गए, बट रेक्स इज स्टिल देयर, विल बी शट डाउन. Jenny Arvik Pink Larvik, but they have the sight. Another round probably rolling. जी हाँ, एंड देखिए यहाँ पे शायद वो पॉज ले सकते हैं. एनिग्मा को ये पॉज की जरूरत पड़ने वाली, बिकॉज़ दे हैव अ लॉट टू डिस्कस फ्रॉम दैट राउंड. श्योर आप उसको शेक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ ज्यादा जरूर करी, लेकिन नहीं था भाई. 7 Cerberus, क्या ये कमबैक है? वो 2% का जो डिफरेंशियल है ओवरऑल विन रेशियो में, कैन दिस बी समथिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टू से कि या इवन इफ इट्स 2% it matters. It does. It really does. But
क्या यहाँ पे एनिग्मा चीजें स्लो करेगी या फिर आर दे जस्ट गोइंग टू शेक इट ऑफ? आई थिंक दे जस्ट वांट टू शेक इट ऑफ. रॉ फ्यूल यहाँ पे शायद एक एग्रेसिव पिक निकालेंगे, लेकिन गाइडिंग लाइट से इंफॉर्मेशन निकालेंगे जरूर अपने आप के लिए. इन द मीन टाइम रॉ फ्यूल देखिए अभी भी इतना ज्यादा क्लोज खड़े हैं. उनको पता है कि शायद वहाँ पे उनको एक पिक मिल सकता है. एंटीडोट के पास पैटर्न है अवेलेबल है, यूज कर सकते हैं उस चीज का, डबल पीक कर सकते हैं. बट क्या वो करेंगे अभी के लिए? अभी भी इंतजार करें. जैसे ही उनको एक भी क्यू मिलता है, साउंड क्यू, कोशिश करेंगे. रॉ यहाँ पे पहला पिक निकालेंगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एनिग्मा नीडेड. एंड देखिए ए मेन की तरफ पैरानोया प्राइम है, लेकिन रोटेशन आ रहा है फिलहाल के लिए बी की तरफ. High the risk, high the reward. Raw fuel armor नहीं लिया था उन्होंने because he wanted that op so badly. And देखिए उसका फायदा मिला. I did get that first pick. Antidote, I mean, that's some patience, man. वो कितनी देर से पैरानोया को रेडी करके बैठे हुए हैं. He's like कि okay, आने दीजिए. And this can be massive. This can be actually massive. लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रेल चीजर रहेगा and साथ ही साथ Seekers का भी इन्वेस्टमेंट आएगा. But Seekers यहाँ पर परफेक्टली टाइम डिप्लॉय किया जाएगा. Suga के straight on to Antidote, but next he brings it out, gets a double for himself. Loki अकेले बचे हुए हैं. Then lockdown is still there to help him out. लेकिन क्या इससे कोई फायदा रहेगा? जी नहीं. Rock's operator will be shutting down Loki, and that's the equalizer for Enigma Gaming once again. ओके, एनिग्मा गेमिंग को जरूरत थी उस चीज के बारे में. मैंने कहा था देखिए जिस तरीके का सेटअप था, परफेक्ट सेटअप किए थे तो वो आनंद के निकाले जरूर. एक बहुत पिवटल 2 के था. पैरानोया का भी शानदार इस्तेमाल ऑफिस की बात है. ऑपरेटर के साथ इन्होंने वो किल्स निकाले जो दो जरूरी किल्स थे. पहला किल मुझ की तरह एंड इस बार शायद एग्रेशन एक्सपेक्ट करेंगे. तो आई डू बिलीव ऑफिल शायद एक दूसरा में खेलना पड़ेगा. बट लेट्स सी क्या वो हीट बन के वापस मिड पीक करना चाहते हैं आपने. हर बार डाइक्यूटे को whether it was defending half or attacking half में ही आपको देखिए वो mid छोड़ा जा रहे हैं. Enigma Gaming they just leaving out mid, but Raw Fuel, it's a very very sneaky angle. No one usually checks this, no one does, but डाइक्यूटे has to be aware कि कोई तो इंतजार में है. In fact shut down किया जाएगा किंशी को, and there's the attackers Hunter Fury coming in. उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा. डाइक्यूटे he snuck up onto the doors, and ये door ये मिड मार्केट एरिया बहुत वैल्यूबल है. मिल जाता है. जी हाँ वो मिलेगा भी. एंटीडोट नाउ अवेयर की ऑलरेडी एक खिलाड़ी मिड मार्केट तक पहुंच चुके हैं. रॉ फ्यूल के साथ साथ एंटीडोट दोनों खिलाड़ी इस एरिया को गार्ड करते हुए नजर आएंगे. वेरी स्लो, वेरी स्लो. एनिग्मा को मजबूर किया जा रहा है कि थोड़ा वो बेचैन हो जाए. नार्वी के आई मीन देखिए डाइक्यूटे ही सैंडविच राइट नाउ. ही हैज टू गेट आउट ऑफ दिस पैटी and become a bun himself. One down. Block in sight. What is that even supposed to mean, Bryce? I don't know. Regardless. Yeah. Rick यहाँ पे लॉकडाउन का इस्तेमाल करेंगे. तो साइलेंट नहीं going to get taken down. यहाँ पे लॉकडाउन तो होने भी वाला था. अगर कुछ करेंगे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे. लेकिन लॉकडाउन डिस्ट्रॉय हो जरूर जाएगा. और in the meantime, क्यूट है. अंदर घूमते जा रहे हैं. यार दिया एंटीडोट एंड रॉ फ्यूल for a 2v4 retake. क्या लगता है कि ये कर पाएंगे? I mean anything's possible, but Raw Fuel, I think safe call आ चुका है. Yes, safe call आ चुका है. And Akashi he's already read की backing off. Raw Fuel, hey, you don't hunt this guy down because most of the time जब भी हमने देखा है कि Raw Fuel is being hunted, the hunter actually gets hunted. So that's something जो हर बार हुआ है. And Raw Fuel has made it happen over and over again. But देखिए लीड फिर से Cerberus छीनते हुए नजर आएंगे. Still not too bad from Enigma. I mean देखिए this is anyone's game right now, right? So very hard to say in fact कि is Enigma gonna get back into the game and दोबारा से क्या लीड ले पाएंगे वो? Just एक राउंड का डिफरेंस है and plus attacking, defending half advantage भी Enigma के पास. They need to slow things down. They really do need to slow things down. यहाँ पे उनको पॉज की जरूरत है अगर उनके पास अवेलेबल है तो. एंड ये जो कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा गैप था. बिकॉज रॉ फ्यूल मार्केट होल्ड कर जरूर रहे थे लेकिन एक्सकैलियन रॉ फ्यूल के बीच का जो कम्युनिकेशन था, जो मैप अवेयरनेस थी, वाज नोवेयर टू बी फाउंड बिकॉज रॉ फ्यूल व्हाइल वो होल्ड कर रहे थे मार्केट, वो सेकंड लेन से कर रहे थे. एक्सकैलियन एक्सपोज थे वहाँ से. एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. अनलेस एंटीडोट फिलहाल के लिए अपना डार्क कवर डालेंगे ए शॉट की तरफ. यहाँ पे स्पॉट जरूर होंगे बट एग्रेशन टुवर्ड्स बीम एंड रॉ फ्यूल यहाँ पे भी करने की कोशिश करें. अगर इनको यहाँ पे ये बिग पीक मिलता है they might be able to manipulate some rotations. I tell you, if Enigma Gaming loses this round, that timeout is coming. That Lucas buff is needed at this moment. Enigma Gaming,
थोड़ा मिड उनको लाइक यू नो कंट्रोल दिखाना पड़ेगा. मिड कंट्रोल डिनाई होते ही इट सीम्स लाइक एवरीथिंग फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग्स पूल जस्ट फॉल्स ऑफ. फिलहाल के लिए बहुत स्लो राउंड होने वाला है. वी हैव किशी जो पीक करने की कोशिश करेंगे. इन्फॉर्मेशन का इंतजार करें. बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे यहाँ पे सूखा. इन द मीन टाइम मिड पे खड़े होके वो भी इन्फॉर्मेशन का इंतजार करें. लेकिन रेस के कॉन्टैक्ट पे खेलेंगे या फिर प्रोएक्टिवली खेलने वाले. रिकॉन डॉट की बात करें, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. आर के इन शॉट है. बैकअप जरूर मिलेगा उनको. लेकिन आउट हो रहा है क्रॉस बुलेट के साथ along with the trailblazer. क्विक एग्जीक्यूट टुवर्ड्स ए. लेकिन आईक्यू के अंदर जाएंगे जरूर. स्पॉट हो चुके हैं उनको. बैकअप की जरूरत. एक्सकैलियन रेक्स बोथ फाइंडिंग अ पुश फॉर देमसेल्व्स. लेकिन रेक्स एक और किल निकालेंगे. पुश करेंगे. वन एनिमी फ्रैगमेंट से किल निकालेंगे यहाँ पे लोकी के ऊपर. And it all comes down to Suka in a 1 versus 4. And that's just beautiful the way Rexy उन्होंने इंतजार किया. एक्सकैली का बैकअप आया. वो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर एक्सकैली वो फर्स्ट पिक नहीं निकाल पाते दिस राउंड द साइड वुड हैव बीन गिवन अप. एनिग्मा वो साइड लॉस करते हुए नजर आते बिकॉज़ देखिए ऑलरेडी आरबीपी का पोजीशन निकल चुका था. एंड रेक्सी वाज इन सच अ पोजीशन जो प्रेडिक्टिव रहता है. सूका इज द फाइनल प्लेयर लेफ्ट अलाइव. सेव कर रहे हैं. एंड एनिग्मा गेमिंग दे डोंट वांट टू रिस्क एट ऑल बिकॉज़ उनकी इकोनॉमी अभी तक स्टेबल नहीं हुई है. आई मीन इट्स जस्ट शैटर्ड सो फार. नाउ इट्स एन इक्वलाइजर वंस अगेन. इक्वलाइजर हो ना हो अभी यहाँ पे डिपेंड करेगा इकोनॉमी के ऊपर. इकोनॉमी के ऊपर हम नजर करेंगे और देखेंगे कौन सी टीम यहाँ पे कौन सी टीम के पास अपर हैंड है. कि while both these teams can buy, मुझे लगता है Cerberus यहाँ पे कोशिश करेंगे हाफ बाय के लिए. एंड अगले राउंड में वो पूरा बाय करेंगे. बट फिलहाल के लिए वी हैव अ टाइम आउट कमिंग इन. तो डिस्कस करेंगे जरूर हाफ बाय करके वो. सो यूजुअली देयर आर टू वेज यू कैन अप्रोच दिस राइट. आप अगर आपके पास पैसा नहीं ऑब्वियसली आप फुल इको करते हैं. हाफ बाय में भी आप आर्मर लेके यू गो विद शेरिफ्स एज वेल. बट देयर आर दीज रेयर अकरेंसेस जहाँ पे आप वैंडल या फैंटम उठाते हैं विदाउट आर्मर क्योंकि आप अगले राउंड में फिर भी बाय कर पाते हैं. समटाइम्स दैट कुड बी द डिफरेंशिएटर. मैं देखना चाहता हूँ इनका अप्रोच ये राउंड में क्या होता है. बिकॉज गन्स वो ड्रॉप जरूर कर पाएंगे लेकिन अगर ये राउंड वो हारेंगे तो फिर गेम उनके हाथ से निकल जाएगा. तो बहुत फ्रैजाइल सिचुएशन है ये. बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है सेरेब्रस के लिए. एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पे उतना बाय करेंगे. चाहे तो इको निकाल सकते हैं तो किसी भी हाल में. देखिए whenever it comes to tactical FPS we all know कि you always think of one round ahead क्या हो सकता है. and वहाँ पे जाके committing everything you have when you know कि अगर आप ये राउंड हार जाते हैं it's easy map point, it's easy series point for Enigma Gaming. So Cerberus, let's see what buys they go for. In fact they're committing everything. I mean not surprised it's Cerberus after all. Kishi still hasn't taken any buy. एक pause हमें जरूर देखने का मौका मिलेगा. Maybe some tech issues from Cerberus or not. But Raw Fuel still ready with the op. As soon as Raw Fuel आप देखते हैं डिफेंडिंग हाफ में स्विच ओवर करते हैं वो ऑप से he's shown his dominance. RVK however कल he was the top notch player. आज इस मैप पे इनफैक्ट पिछले मैप पे भी was not his overall best day. But the impact he has overall पूरे दिन में I think वो impact बहुत कुछ कह के जा सकता है एनिग्मा के लिए आज दिन के अंत तक. जी हाँ. लेकिन देखिए यहाँ पे टेक्निकल पॉज आएगा. आई एम रियली सरप्राइज कि सेरेब्रस ने डिसाइड किया कि ये राउंड वो पूरा का पूरा पुश करेंगे. सो दे गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग. यहाँ पे बात करें डाइकूटे के बारे में उनके पास ब्लेड सॉर्म अवेलेबल है तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पे ये राउंड हारते हैं एनिग्मा के लिए स्कोर लाइन हो जाएगी 11-9 एंड वहाँ से कम बैक करना सेरेब्रस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रॉ फ्यूल के पास भी ब्लेड सॉर्म रेडी है तो अगर वो एग्रेशन दिखाना चाहे अनलेस ऑफ कोर्स वो वैसे एंगल्स खेल रहे जहाँ पे उनके ऊपर रश नहीं आ सकता. बट अगर उनके ऊपर रश आता है देन आई डू बिलीव ऑप के साथ वो ब्लेड सॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. कितना एग्रेसिव खेलना चाहेंगे वो मैं जरूर देखना चाहूँगा. बट इन द मीन टाइम यहाँ पे डाइक्यूटे धीरे धीरे ये शॉट पे कीप अप करते हुए लोग की बात करें वो भी करने की कोशिश करेंगे. Daikute on the blades. Loki has a guardian to work with. किसी भी हाल में अगर वो एंटी का पिक मिल जाता है ये राउंड Cerberus किसी भी हाल में तब निकाल के रहेंगे बिकॉज वी हैव सीन देम एक पिक मिलते ही दे जस्ट रश इनटू फाइट एंड तब जाके एनिग्मा गेमिंग के लिए कोई जवाब नहीं रहता है. Raufil takes the first shot, backs off immediately, but Daikute being very patient. उन्हें पता है कि अगर ये मेन पे थोड़ा नॉइज आता है then Enigma usually have a tendency वो ट्रे एरिया को चेक करने के लिए खुद आगे बढ़े.
And Antidote, he's coming in. ये duel बहुत important रहेगा. Anti versus Daikyu. Anti is looking in the other direction. वापस से अपने आप को पीछे लेके जाएंगे. And looks to be a rotation onto the B side. Is Rexy ready? Yes, he's ready well, and he backs up immediately into the side here. उनके पास lockdown अभी available नहीं है, so it'll be a difficult one. But Hunter Fury immediately main पे ही डाला जाएगा जरूर RBK की तरफ से. कुछ results उस Hunter Fury से बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन the side commitment, it's here, and it's going to be just mere seconds before all hell breaks loose on the side. ये all hell लेकिन IQ यहाँ पे अंदर पुश करेंगे जरूर. बेस ऑफ का इस्तेमाल करते हुए Scally is going to get taken on as well. लेकिन क्या वो रिस्क करने वाले हैं? ये ऑपरेटर को स्पाइक प्लांट हो चुका है. It does look like he wants to go in, but IQ थे. ये देखिए मिड की तरफ जाएंगे, क्या किल निकाल पाएंगे? He's going to get caught off guard. I'm not sure वहाँ पे 90 जहाँ पे आते हैं, लेकिन वो oh my lord, IQ थे. उनके बाद भी बैंडल हो गए थे. I'm not quite sure why would you want to risk with the play from Bangladesh? Enigma के पास पैसा अभी भी actually as a matter of fact they don't have the money. So ये जो risk लिया था Cerberus ने, it's going to work out in the favor. It did, but देखिए कल भी Ascent पे यही हुआ था. Lead नहीं ले पा रहे थे Enigma Gaming until that map point. Until that map point. वो lead मिल ही नहीं रहा था Enigma Gaming को. एक ही बार ले पाए थे, and that's already happened. एक Marshall, एक Spectre, दो Sheriffs के साथ तैयार, and Raw on that things. I mean, whenever Raw gets on the lead, I think the opponents need to worry a bit. फिलहाल के लिए IQ डे की बात करें, लोग के अंदर जाएंगे पुश. क्या वो इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाना चाहते हैं? Raw पहला किल निकालेंगे, दूसरा भी किल निकालेंगे. Connecting the headshot onto Akashi. And ये राउंड वापस किल हो सकता है. उनके लिए फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं रेक्स, लेकिन सॉरी स्कैली बट रेक्स भी निकाले जरूर है, लेकिन फ्यूल को देके रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहते. गाइडिंग लाइट अवेलेबल. स्कैली ओवर कमिटिंग और आरवीके ट्रेड निकालेंगे. And advantage था उनके पास. You did not have to push in over there. I'm not quite sure what the idea was. Enigma ने वहाँ पे push क्यों किया, but regardless अभी भी Enigma control में है. But Rexy is with 9 HP. 9 HP. एक wall bang from a classic will shut you down. वो सिनेरियो पे है. B side completely vacant है. Dark cover deploy करके immediately B side control मिल सकता है. All that 30 seconds left is getting the spike, and that they get it. उनको मिल जाता है वो from the shadows के इस्तेमाल से. And B side is open. Plant भी होगा. Weapons है बेनिका टीम के पास. Probably एक रीटेक की कोशिश रहेगी, and वो कोशिश अभी चाहिए भी, because ये राउंड हारते हैं Enigma Gaming, they'll be in a very very fixed situation. Let's not forget nano swarms इधर लगे हुए थे, लेकिन टारगेट का इस्तेमाल कर सकते. They have the reach and order along with the dark cover. तो बहुत ज़्यादा तरीके यहाँ पे जिस तरीके से वो खेल सकते हैं, पर लोकी को समाप्त करना पड़ेगा. लेकिन नानो स्वाम जो जो पुश होंगे पीछे, लोकी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर. डार्क कवर का भी शानदार इस्तेमाल होते हुए, क्या रिकॉन का इस्तेमाल करता है, ये वाटर इस्तेमाल हो चुका है. आरवीके इज गोइंग टू गेट टेकन डाउन. रेक्स भी टेक डाउन हो जाएंगे. वहाँ पे एंटीडोट डिप्लॉय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काउंटर समय है फिलहाल कि इनको क्रीप इन करना पड़ेगा. डजंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क विद. लोकी यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हुए, लेकिन क्या किल निकाल पाएंगे? निकाले ना निकाले मतलब नहीं बनता है, लेकिन is going to come on top. 11-9. Are we going to head into the third map? देखिए पिछली बार भी पिछले मैप पे भी हमने almost एक similar approach देखा था कि Enigma Gaming कुछ देर के लिए लग रहा था that comeback was happening. Cerberus वो comeback करके दिखा रहे थे. Immediately I think that's going to be Enigma's attack इस half के जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, but Rawfield did open it up. He opened it up so big कि वो mid पे थोड़ा सा over commitment भारी पड़ गया इस round पे Enigma Gaming. कुछ देर में ये टाइम आउट खत्म होगा. कुछ डिस्कशन के बाद बैक अगेन, बट अगर ये राउंड हारते हैं, we might as well say GG Enigma at least for this map. Not really. They won't have buy. They're gonna be broke. True, but let's be honest, equal round में क्या क्या हो सकता है आपको मालूम है. I do believe यहाँ पे Enigma का टाइम आउट थोड़ा लेट आया. They could have taken a little earlier, क्योंकि जब उनके पास मोमेंटम था, एक राउंड हारे थे, वहाँ पे मोमेंटम ब्रेक कर सकते थे. बट नॉनदलेस दे डिसाइडेड कि वो राउंड शेक ऑफ करके वो जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. बट फिलहाल के लिए 11-9 एंड Cerberus की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा. जितना ज़्यादा रिस्क उन्होंने लिया था, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन थी उनके लिए, वो फोर्स बाय करना, एंड उन्होंने वो निकाला. लेकिन Enigma के लिए हम जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं,
छोटे छोटे प्लेस, जब आपको मालूम है प्लेयर लेफ्ट में फंसा हुआ है, पुश करना है, तीनों प्लेयर्स को एक साथ पुश करना है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अब कुछ कितने भी फ्लैशेस का इस्तेमाल कर ले, अगर आप लेट अब प्रॉपर पॉप फ्लैश नहीं फोड़ रहे हैं, लेट फटने वाला, आपको पता है कि प्लेयर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो टाइमिंग जो है, ट्रेड का टाइमिंग स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा ऑफ है। आई थिंक सर्बरस अपने हर राउंड पे जिस तरीके से अप्रोचेस को बदल रहे हैं, वो ट्रिगर्स को हर राउंड पे जैसे बदल रहे हैं, इट्स हार्ड फॉर एनिग्मा टू एक्चुअली रीड इट, बट दिस राउंड माइट बी द ऑपोजिट। स्कैली होल्डिंग पॉकेट, 4 एजेंट्स का प्रेजेंस उन्हें पता लग जाए। आरवीके विद दैट ड्रोन, कॉर्नर चेक करना है जरूर। देखिए को अटैक करते हैं, बैक ऑफ करेंगे, सिर्फ शॉक डार्ट डिप्लॉय किया जाएगा, बट वे बिहाइंड, लेकिन हेडशॉट हेडिंग कर जाते हैं। नॉट इनफ, शट अ प्लेयर डाउन, बट बिल्कुल है, इसीलिए फुल एचपी तक आ पाएंगे, आर्मर नहीं रहेगा। एंड नाउ इस्तेमाल करेंगे, बैक ऑफ करने की कोशिश, बट रॉ फ्यूल को डाउन किया जाएगा स्मोक के थ्रू। Some problems arising in Enigma's camp. I think it's going to be a little more than some problems arising for them over here, because Qeon के अगर हम बात करें फिलहाल के लिए जरूर है, लेकिन Rex is going to find a big dive. In the meantime, he's going to get taken down low की यहाँ पे टीम होल्ड कर रहे हैं। Rex पे एक और पिक की जरूरत है, एंटीडोट को एक किल निकाल देंगे, डार्क टावर का इस्तेमाल करेंगे, लो की शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वहाँ पे एंटीडोट को, और यही चीज की तो जरूरत थी उनको, एंटीडोट किल निकालेंगे जरूर, लेकिन सूका स्टक हाथ में यहाँ पे बात coming in. And Bryce, you might be right. यहाँ पे आप इनके पास पैसा नहीं होने वाला है. This is going to be a team upper. Yeah. Enigma Gaming, they almost had it. They almost had it. वहाँ से जाके मैप पॉइंट तक पहुँच चुके हैं अभी Cerberus. 39, is this going to be it? या फिर Enigma will be fighting it out. Will Enigma actually have a comeback? क्योंकि देखिए उसकी जरूरत है। भाई की बात करेंगे, एक जज है, 2 बुलडॉग्स है, एंड 2 ही टाइटल से देखने का मौका मिलेगा। सूगा फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे हैं। बी मेन का कोई भी पुश अगर आता है, लेकिन इन द मीन टाइम हम बात करें स्कैरी के बारे में, तो देखिए किस तरीके का एंगल होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक से कर रहे हैं जज लेके। उनको पता है अगर बी मेन आते तो ये राउंड बहुत पिवटल होने वाला है उनके लिए। कैश की अगर हम बात करें, इवन इफ सर्बरस एंड्स अप लूजिंग दिस राउंड, अगले राउंड के लिए उनके पास पैसा होने वाला है। पैरानोया आया ज़रूर है, लेकिन बहुत होगा। आप स्मोक करके अंदर टेलीपोर्ट कर जाएंगे वापस, सबका इस्तेमाल करके अपने आप किल निकालेंगे एंड डिफेंडर किल जो ये अल्ट है लॉक्ड आउट, उसकी वजह से पुश बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। RVK, oh my god, this guy is unbelievable. He's unbelievable. देखिए इतनी देर तक हम बात कर रहे थे कि RVK is not in his best form, and immediately when it's needed, that impact, जो impact रहेगा उस frag का बहुत बड़ा रह सकता है। Antidote, his position has been predicted. In fact, she checks it, and Anti gets punished as well. Bulldog will be connecting a headshot immediately. Tailwind से जरूर कर जाते हैं, बल्कि मेक्सिको शट डाउन करेंगे। बहुत कम मौका रहेगा इस राउंड को निकाल के जाने का, but Excalibur with a classic returns the favor in two parts. जनाब भी 2 प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं, HP लो है जरूर, Rockfield coming in as a bait, but भी नहीं, गलत read. Kishi gets a 4K for himself. Loki and Kishi बचे हुए against RVK. He has to make this play work, otherwise हम तीसरे मैप पे सीधा आगे बढ़ने वाले हैं। Kishi just playing on tree and Loki swinging around on main, चेक कर रहे हैं कि RVK को कोई अप्रोच मिला है या फिर नहीं। Cloud chase collector headshot around, दोबारा से मौका, but teenage Loki secures the round and Cerberus take it to map 3. Split is inevitable right now, and split पे ही decider हमें देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ, स्प्लिट पे हमें डिसाइडर देखने का मौका मिलेगा, लेकिन I'll be honest, I'm not impressed. I am not impressed with Enigma, the way they played, जिस तरीके से उन्होंने खेला है। आप बात करें पॉप फ्लैशेस के बारे में, जब आप स्मोक के अंदर जाने वाले, पुश करने वाले डार्क कवर के अंदर, आप 2 प्लेयर्स एक साथ पुश कर रहे हैं, इंतजार करके क्यों नहीं खेल सकते? I really don't understand. अगर पॉप फ्लैश भी करना है, there are multiple ways to do it. लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे एक्सकैली ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, वहाँ पे ट्रेड नहीं निकाल पाया अपने टीममेट का, फ्री किल था वो, and that ended up costing him the round. I mean, Rockfield देखिए, he knew कि उनकी HP low है, so he went in first. All Excalibur had to do is Rockfield को as a
आप कह सकते हैं बैटिंग चिप इस्तेमाल करके आगे जाके वो पिक निकालना था, देन इट वुड हैव बीन एनिग्मास राउंड एंड who knows, maybe उसके बाद जाके एक ओवर टाइम भी हमें देखने का मौका मिलता है, एनिग्मा would have just secured this map right here and ended up winning. लेकिन देखिए अभी तक जो हमने मुकाबला देखा है, I think Enigma was way stronger on Haven compared to Ascent, and ये पिक भी Enigma Gaming का है. So what do you think about that, Sam? देखिए मैं सोच ही रहा था कि ऐसे कुछ होने वाला है क्योंकि असेंट वी सॉ देयर विक्ट्री यस्टरडे, ऑन द अदर एंड हेवन पे उनका कहीं ना कहीं हार हुआ था, सो दे करेक्टेड हेवन. असेंट इट वाज गुड, सो आई डिड नॉट फील लाइक वहां पे कोई करेक्शन देखने के लिए मौका मिला. ऑन द अदर एंड सर्बरस वर एबल टू रीड कि क्या सही हो रहा था एंड दे वर एबल टू टेक डाउन. एंड जी मैप शुरू होने से पहले मैंने बताया भी था कि बाइंड एंड असेंट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है फॉर सर्बरस. बाइंड का पिक नहीं आया बट असेंट इज हियर एंड आई थिंक दे वांटेड टू क्लोज इट एज सून एज पॉसिबल. जैसे हम बात कर रहे थे, दोनों अपने रीजन्स के रनर अप्स है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर वे इनटू द ग्रुप स्टेजेस. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन जो मैच था, एनिग्मा लगा था कंट्रोल में कि वो कंट्रोल में रहेंगे, बट नॉनदलेस इसके बारे में और चर्चा करेंगे. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक. Face coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom. Please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom. They you was on road and they start. She know this cause she is the same. She's trying to stop playing games. Where the people at, what they really wanna know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? Where the people at, what they really wanna know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, cause I'm mean. I just gotta go back, I'm a freak. Gotta go. I just wanna rap to the beat. The chains, my vest, my watch, my belt, my cheese, my house, my sneakers, my blouse. I just party hard, open the one in the chart. I've already won, babe, but then you start. Flexing on ya, flexing on me. Flexing on ya, flexing on me. I just gotta go, but I wanna hold on. I can't let you go, but I gotta stay strong. Unless you heard it from me. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका फिर से. मेरा नाम कैप्टन प्राइस और मेरे साथ डेस्क पे जुड़ते हुए सैम. VCT Stage 2 APAC चैलेंजर स्टेज 2 में ये तीसरा मैप आने वाला है. एनिग्मा गेमिंग, आई मीन दे ऑलमोस्ट हैड इट सैम, डिडंट दे? लाइक ऑलमोस्ट उनके लिए इट वाज अ 2-0 एंड आई थिंक कि आज बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि एनिग्मा गेमिंग के फेवर में आज ये 2-0 का स्कोर लाइन आएगा बिकॉज ऑफ हाउ दे स्टेप्ड अप अगेंस्ट मेड इन थाईलैंड. बट डजंट मैटर. आई मीन Cerberus, damn boys, Ascent mid, then it's a history to be told.
I agree with you. I mean, जो मैं यहाँ पे सोच भी रहा था while I was on the backlines, not on the desk, और maps को भी जब देख रहा था the plays coming through, मैं जरूर जाने से पहले भी ये बताया था Yeah. कि आकाशी is a player to look out for, not in terms of कि हर वक्त frags ही लेते रहेंगे, but it's about कि कैसे opponent को पढ़ेंगे. He was reading the players as individuals on Haven, but यहाँ पे team को पढ़ पा रहे थे. He was reading them right कि कहाँ ना कहीं उनको जो मूवमेंट्स जो एक्सप्लॉइट करने के लिए मौका मिलेगा टू गेन स्पेस, वो डाइक्यूटी को बता रहे थे. आई मीन अगेन इफ यू पे क्लोज अटेंशन, जो हम जाएंगे स्कोरबोर्ड की तरफ, वहां पे भी आपको देखने के लिए मौका मिलेगा. इट्स नॉट डाइक्यूटी ऑन द टॉप, इट्स द अदर प्लेयर्स स्टेपिंग अप. डाइक्यूटी को जो कमाल करना था इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ गो फॉर बेट एंड स्विचेस, वो करके दिखा रहे थे डाइक्यूट. बट ऑन द अदर एंड आकाशी वाज मेकिंग द प्लेस हैपन. Of course, साथ ही साथ आप देख सकते हैं डैमेज में भी डिफरेंस ज्यादा है. लाइक ऑफ कोर्स दिस वाज 39 15.3 के डैमेज ओवरऑल. उसके बाद जाके आप हेडशॉट परसेंटेज का डिफरेंस देखिए. एनिग्मा हैज अ ह्यूज एडवांटेज, ऑलमोस्ट 6.5% का एडवांटेज रहेगा जरूर. लेकिन जितनी भी देर हमने देखा था कि एक तरफ एनिग्मा गेमिंग कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर्स के एडवांटेज को निकाल पाए, बट सर्बरस ऑन द अदर साइड जिस तरीके से पहला पिक निकाल जा रहे थे, इवन दो एनिग्मा हैड द नंबर्स इन अ पोस्ट प्लान सिनेरियो, आई थिंक वहीं पे गेम चेंज हो रहा था हर बार. एंड दैट वाज नॉट जस्ट वंस, इट वाज लाइक एट लीस्ट 4 or 5 राउंड्स अटैकिंग हाफ. आई थिंक वो जो 14th राउंड भी था स्पेक्टर वर्सेस क्लासिक, आपने जरूर जिक्र भी किया था. देयर वाज नो बाइट कमिंग फ्रॉम सर्बरस, बट दे जस्ट वर्कड ऑन द क्लासिक्स, एंड उनके जो क्लासिक शॉट्स थे, दे वर सो शार्प एंड प्रिसाइज. फर्स्ट शॉट इट वाज ऑलवेज ऑन द हेड, एंड देन इमीडिएटली फॉलो अप शॉट्स थे, दे वर टेकिंग द ईच अदर डाउन. यही हम बात कर रहे थे. देखिए इवन इन द स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 13-9 का स्कोर लाइन जरूर है, बट जो प्लेयर्स को स्टेप अप करना था, डाइक्यूट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बॉटम फ्रैगर्स फॉर द टीम, बट इट एक्चुअली डिड नॉट मैटर, क्योंकि उनको जो करना था इन टर्म्स ऑफ गेनिंग स्पेस एंड creating momentum, वो करके दिखा रहे थे. Everybody else was just lifting up, and you can see Kishi being the MVP with 20 kills. Suka right behind him. आप KD भी देख सकते हैं, it's going to be very close to 1.9 का नजर आता है with a 235 average combat score. Akashi, as I said, he's also closer to a 2 KD with 230 average combat score, just 5 from Suka. And Loki भी साथ देते हुए, I mean he's a woman, you need to be helping your teammate in terms of controller, and as well as जो paranoid देखने के लिए मौका मिल रहा था, it was good coming in from Loki. But डाइक्यूट, I think जो डाइक्यूट का जो हम मामा भी जब यहाँ पे थे, while he was telling us कि it's not only that entry fragger kills लेना है, it's about creating space. I think उसके वजह से कहीं ना कहीं ये matchup, especially even though after it got closer, attacking half में it worked out better for Cerberus. But let's just be honest, देखिए I feel bad for Rex because the way he played and turned out to be the match MVP as well. कहीं ना कहीं पे तो हमें भी पता है वो जो हर राउंड पे एवरी राउंड आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए नजर आ रहे थे दोनों तरफ से. लाइक एनिग्मा गेमिंग दे वर डेफिनेटली चेंजिंग सम थिंग्स अप, बट आप देखिए अगर आप सर्बरस की बात करेंगे, एवरी राउंड एवरी ट्रिगर इज द स्विच, एंड उसी स्विचेस को एनिग्मा गेमिंग परख नहीं पा रहे थे. इंस्टेंट रोटेशन, एक कॉल आउट आता है, इंस्टेंट पूरी की पूरी टीम रोटेट कर जाती है. एंड एनिग्मा इवन दो दे हैव द नंबर्स, so many rounds, like आप ये राउंड को याद करना चाहेंगे अगर तो RBK does straight off, but what result, numbers equalize हो चुके थे, and weapons का advantage जो था उसका फायदा डेफिनेटली सर्विस ने उठा के गए. I agree with you. I mean, there were so many situations जहाँ पे उनके पास numbers था, but just because they were not taking the right corners, punish होते हुए नजर आया. And Suka, the way he played on the sentinel killjoy, exceptional. And जो opportunities वो create कर रहे थे अपनी टीम के लिए, it was just brilliant to watch, captain. मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं अगर सूका उस पोजीशन से ऐसे प्लेयर्स का पिक निकाल सकता है, that means the comms are so precise coming in from Cerberus, and वो clean था. अगर I think ऐसे आप रिले कर सकते हैं, and if your teammate is able to react, because आप ही सोचिए कैप्टन, लॉग से वो ऑलरेडी छुपे थे, a player comes out from market, antidote उस बीच में एक प्लेयर को बी मेन की तरफ से पिक निकाले थे, immediately they get a call कि Omen is coming from B main, and Suka after taking on Rexy immediately switches over to B main and then takes the last player who's coming out from defender spawn, and that tells you कि comms के वजह से कितना ज़्यादा effective हो सकता है. And the same thing, I wouldn't say कि Enigma की तरफ से comms नहीं था. Enigma were having blindsided comms, saying कि information नहीं है हमारे पास, but we look forward to getting information by pushing ourselves inside rather than using their utilities. I think वहीं पे थोड़ा और कमी महसूस हुआ Enigma का. I do feel the same because देखिए Enigma Gaming, like you said, information दिया ही नहीं जा रहा था. Cerberus, if in every round, I mean, yeah, exactly, every round they were like, ऐसा होता है ना जब आप बचपन में चलना सीखते हैं, ठीक है, तो आपको कोई चलाना सिखाता है,
It was exactly that same. Cerberus literally Enigma Gaming को सिखा रहे थे कि you know we will do something, you have to react on it. आप खुद अपने इनसे कुछ नहीं कर पाएंगे. You have to just play on those reactions, and that's exactly what happened. Especially आखिर के वो जो 5-6 rounds थे. Enigma, they should not forget कि they had a wonderful run पहले half पे. Yes. But as soon as attacking half पे switch over आया Cerberus का, they changed up everything, and that is amazing to watch. And Cerberus as a whole, as a unit function करते हुए नजर आए, unlike Enigma आखिर के at least, like I was saying, in the final few rounds. But अगला मुकाबला split का है. Split पे we all know क्या क्या compositions आने वाले. We know कि Rafael, he's gonna step back into that chamber. Excali आपको raise खेलते हुए नजर आएंगे. Antidote will be playing on a maybe an Omen. पर चाहे तो Killjoy भी खेल सकते हैं. Will RVK get back into the Cypher? Because RVK and the Cypher, I think, will be the strongest agent and player combo जो अभी Enigma ऑफर कर सकती है. देखिए जो एक्चुअल मेटा अभी एनिग्मा का था, आई मीन वी हैव नॉट सी देम कंप्लीटली कीप फंक्शनिंग ऑन स्प्लिट. जब भी आ रहा था दे वर कमिंग विद अ जीरो इनिशिएटर सेटअप, एंड आपने जरूर जैसे जिक्र किया चेंबर एंड देन द रेस कमिंग ऑन एज ऑन रॉफ्यूल एज वेल एज एक्सकैली कैन स्टिल बी पॉसिबल. बट अगेन एनिग्मा चेंज अप लेके आ सकती है, बिकॉज हु नोज व्हाट विल कम इन फ्रॉम सर्बरस. क्योंकि सर्बरस का अगर जो भी मेटा हम बात करेंगे, एजेंट सिलेक्शन का हम बात करेंगे, इट हैज बीन normal. It has not been like overpowering, or it hasn't been like something surprising out of the blue. नहीं था जो हमें लगता है कि in terms of having a double initiator, single controller, single duelist, single sentinel setup होना चाहिए on all the maps. That's what we are seeing. Maybe agent जो play कर रहे हैं उसको बदल रहे हैं, but in the other sense they're playing the same agents, they're playing the same setup and also the same meta जो हम बहुत पहले देख रहे थे, and it is working for them. I think अगर ऐसे ही खेलते रहे Cerberus even on split, it can be difficult. But again, split is not a great map for them compared to Enigma on the board. On the paper, it is better for Enigma, but again, paper and pen, it only matters after the game. उससे पहले ये सब चीज आपको गेम के अंदर ही देखना पड़ेगा, and how that team is feeling on that particular matchup of that day. Well, Cerberus के लिए अगर आप stats की बात कर ही रहे हैं Sam, then of course I'd like to enlighten the audience. देखिए split पे Cerberus का win ratio है 55%. Well, that's not too high. That's not like way high कि हाँ यार इतना ज्यादा बढ़िया खेल सकते Cerberus. But you see सिर्फ 2% का difference था जब मैं बात कर रही थी. Enigma Gaming had 69% and on the other end यहाँ पर Cerberus के पास 71% था. So of course मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि Enigma Gaming का कितना overall win percentage है. Well, split की बात करेंगे they have 60%. So on paper Enigma is stronger, and अगर आज Enigma जीतते हैं, कल उनका मुकाबला होने वाला है बूम के अगेंस्ट में. So आज जीतना मतलब कल तो और भी ज्यादा टक्कर होने वाला है. And if they win tomorrow, I mean they're into the group stages, so that's a good thing that we have. I mean जो भी मैचेस यहाँ पे खेल रहे हैं, it's all like right at the edge of the sword. अगर आप छोटे गलती करेंगे, you just get cut out of the tournament. हो सकता है, but अभी चलेंगे एजेंट सिलेक्शन की तरफ, देखेंगे can any of these teams, which of them will be making it to the next stage itself. एजेंट सिलेक्शन जैसे हम बात कर रहे थे, it should be normal जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं. Qeon will be finally switching into that chamber just as Rockfuel we speculated. Oh wait, it was just a speculation, but वो जाएंगे यहाँ पे स्टेज के ऊपर. एंड सुका, मैं जरूर जिक्र किया था शुरुआत में कि सुका जाने वाला है चेंबर पे, एंड he has switched into it. किशी brings up that raise, and जरूर इसका भी मेंशन हुआ था कि बहुत कम देखने के लिए मौका मिलता है. But yes, when the opportunity is there, Kishi jumps into the race. Coming in from, I would say, Enigma, there's only one thing जो हम थोड़ा सरप्राइज होने वाला है, वो RVK का वाइपर. No, I'm not it's surprised. still a zero initiative. I'm not in surprised. terms of him playing, but yes, setup के वजह से captain. Well, I'll tell you now, they did run this composition. They did run it in. Let me just get a recall. I think मुझे जहाँ तक याद है, group stages of STS. It was okay. It was against Global Esports. जो ये competition run कर रहे थे. Exact similar competition था. RVK decides नहीं. We have Rafael on the chamber, more than enough. हद से ज्यादा है वो as a sentinel. I mean, he's a pseudo duelist, and if you ask me personally, Rafael, I'll tell you he's a duelist. ठीक है, वो duelist है. But of course, let's not forget कि Viper का जो toxic screen रहता है, आपको पता है, आप literally sewers पे jump करके you can just lay down a straight up wall जो A side को cut off कर सकता है, especially attacking half पे. That is going to be the best play that Enigma can possibly make. But double controller coming in from Enigma Gaming, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो एक इनिशिएटर की कमी है वो दिक्कत में लेके जाए Enigma Gaming को. I mean, I'm hoping कि देखिए Enigma हर वक्त जब भी हमने इनको एक जीरो इनिशिएटर सेटअप पे देखा, I mean they've had success most of the time. एक दो बार ही हो सकता है, but it has been working for them. So they've brought in a similar setup again.
but again, this is a different scenario and also a different region they're contesting in. So APAC as well as SC are two different things. तो आप APAC में आप आ चुके हो, you're competing with the entire different region. यहाँ पे वियतनाम के साथ ये fight चल रहा है इनके बीच में. And also, this is the decider map on split. It is not going to be easy at all. I mean, हमने देखा बहुत teams Enigma के सामने initiative के साथ आए हैं, but they failed. But there are only a couple of teams जो उनके सामने आके initiative के साथ जीतते हुए नजर आए. But again, on the driver's seat अगर बात करेंगे, Enigma के पास control मिलता है captain, but as you said, Viper, I think that can be the X factor here coming on RVK. I mean, as a player, RVK के बारे में पता है. You give him a sheriff, and even certain times you don't have to kind of worry about कि RVK अकेले खिलाड़ी है. He pulls off some insane plays एक ही जगह पे खड़ी होके. He just drags the attention towards him and then starts picking off players one after another. I mean, if he gets a chance to isolate, बहुत खुश रहेंगे RVK. Well, if you're talking about Enigma's X factor, I'll tell you what the X factor on Cerberus can be. Kishi on a duelist. Kishi को already हमने देखा Ascent पे he was literally dominating. वो dominate कर रहे थे with those pop flashes, लेकिन अभी वो रेस खेल रहे हैं. I want to see some flying races. I want to see some देसी flights. And साथ ही साथ मैं जरूर देखना चाहूंगा वो जज शॉर्टी एंड बकी का एक्शन. आपको याद होगा कल जो मुकाबला चल रहा था मिथ के अगेंस्ट में, यू रिमेंबर किस तरीके से लाइक आरबीके वाज जस्ट वेटिंग विद अ वैंडल एंड देयर कम्स द फ्लाइंग रेज, उड़ के आए, बकी से फटका मार के चले गए. बट यू नो व्हाट, द गेम इज रेडी, सो विल जस्ट डाइव इनटू द गेम राइट अवे. ये मुकाबला डिसाइड करेगा इन दोनों टीम्स का फ्यूचर. एंड राइट नाउ विद मी ऑन डेस्क, Mamba will be joining us back. Sam will see you post game for a lot of discussions. Lekin Mamba, welcome back to the desk, and here we go. Thank you so much. Thank you so much. Really excited for this one क्योंकि देखिए जहाँ पे जो मैच 2-0 होना चाहिए था, it's went to the third map. What? With a crispy one tap and यहाँ पे headhunter का इस्तेमाल करके hunting heads. Kishi in the meantime अपने टीम के साथ पुश करेंगे. RVK is going to get taken down. यहाँ पे आप एक्सपेक्ट जब आपका वाइपर डाउन होता है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. एक्सकैली इन द मीन टाइम यहाँ पे ट्रेड निकालते हुए नंबर्स गेम की बात करें, रिसल इवन बोथ दीस टीम, दोनों टीम के पास 3 प्लेयर्स जिंदा है. एक्सकैली इन द मीन टाइम पेंशियल्स का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा डैमेज डिशार्ट करने वाले हैं. देखिए पेंशियल अगर नीचे नहीं जाता, लाइक द पेंशियल डिड ड्रॉप इनटू वेंट्स, अगर वेंट्स पे नहीं जाता ये पेंशियल, there could have been 2 casualties. 2 casualties आ सकते थे because एक स्लो ऑर्ब भी था जो हमें देखने का मौका मिला था लेक्सी की तरफ से. नाउ इज जस्ट अ वेटिंग गेम. बॉट लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा. आकाशी हैज द बेटर हैंड बट एंटीडोट ही स्नक अप ऑलरेडी. वो पीछे से वार करने के लिए तैयार है लेकिन एंटीडोट के लिए भी आप देख सकते हैं देयर इज किशी वेटिंग. ऑफ कोर्स होस्ट इज बेटर एट दिस रेंज, लेकिन गलत टाइम पे यहाँ पर एबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है. एंटीडोट punishing Kishi immediately. One enemy Gaming remaining. have the numbers. 30 seconds left. Heavily favoring them after this frag. जी हाँ, पर लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. लोग 1v3 बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए. स्पॉट हो चुके हो. आई डू बिलीव इन्फॉर्मेशन स्पॉट हुए ना हुए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर वहीं पे कहीं पे खेल रहे थे एंड उसकी वजह से यहाँ पे ये रोटेट करेंगे ए साइड की तरफ. लेकिन 10 सेकंड बाकी पूरी साइड क्लियर करने के साथ साथ उनको प्लांट करना पड़ेगा. एंड एक्सकैली पैरानोया की वजह से वो ब्लाइंड हो जाएंगे, लेकिन प्लांट हो पाएगा. जी हाँ, बहुत क्लोज प्लांट होने वाला है बट रेस्क्यू मैन्यूवर काम लगेगा उनको जरूर. लुक इन द मीन टाइम 1 वर्सेस 3 क्या ये निकाल पाएंगे? The God of Mischief? Is it? क्या कुछ करतूत दिखा पाते हैं अपना? I mean, I do want to see, but एक 1 versus 3 will be pistol round. You're right, big. From main, there was just Rexy baiting with that classic and Excalibur. जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि लोग बाहर आते हैं, looks towards main, Excalibur immediately punishing. I mean, that's some cool bait and switch. जी हाँ, बेट एंड स्विच काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन स्प्लिट में अटैक पे अगर आपको अच्छी शुरुआत मिलती है देन मोमेंटम आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है. एंड एलएच जो 2-3 राउंड होते क्रूशल होते हैं क्योंकि स्प्लिट में अटैक पे राउंड निकालना वैसे ही आसान नहीं होता, बट जब भी आपको अच्छी शुरुआत मिलती है पुट्स यू इन अ गुड पोजीशन कि आप 5-6 राउंड निकाल पाए. आई डू बिलीव 6 राउंड्स ऑन अटैक इन स्प्लिट इज वेरी गुड. आप डिफेंस में आराम से खेल पाएंगे. इस बार खाली ड्यूलिस्ट को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये देखिए फ्रेंडी का सवाल किया जरूर, लेकिन इस के टेकन डाउन ट्रेड लेने के लिए कोई नहीं था उनका. आगे जो पुश करेंगे अंदर एंड डैमेज बहुत ज़्यादा लिया है रॉ फ्यूल ने वहाँ पे, लेकिन उनको हीलिंग मिल जाएगा जो अच्छी बात है. इन द मीन टाइम पुश करने वाला बॉल आएगी सेज की, लेकिन रॉ फ्यूल अभी भी इंतजार कर रहे हैं. उनको पता है बॉल पीछे से टूटी हुई है.
आराम से इंतजार करे हेड हंटर स्वीप के हाथों में ट्रेड मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट. अपने टीममेट्स का इंतजार कर रहे हैं. एंड यहाँ पे सूका वुड बी द डिफरेंस मेकर. Teleport's ready. Well, raw fuel 8 बुलेट्स हैं उनके हेड हंटर में. I don't want to risk that. जैसे ही टेलविंड बॉल्ट लेना आते हैं इमीडिएटली वो बैक ऑफ कर जाएंगे, बट सूका पुशिंग साइड एंड साथ ही साथ लिटरली होल्ड करने का मौका नहीं मिलता है. लोकी शॉट, लेकिन काफी नहीं रहेगा. There's still 3 players, तीनों के तीनों ऑन साइड एंड वेट एंटी स्विंग्स अराउंड 180 एंड लिटरली डायक्यूटे को अपने क्रॉस हेयर में पाते हैं. सो दैट्स अनदर किल एंड एनिग्मा गेमिंग शुरुआत बहुत अच्छी अटैकिंग के साथ. जी हाँ, शुरुआत काफी अच्छी होने वाली है, लेकिन अब जो गन एडवांटेज होने वाला है, वेपन्स एडवांटेज सेरेब्रस के पास होगा. हाल के लिए किसी की अगर हम बात करें, उन्होंने जो पहला किल निकाला था बहुत ज़्यादा पिवटल था एंड डैमेज भी काफ़ी अच्छा दिया था. हीलिंग ऑफ का इस्तेमाल फोर्स किया, लेकिन रॉ फ्यूल चोक पॉइंट था वहाँ पे. उनको सिर्फ एक चीज़ करनी थी, माउस 1 दबाना था, जो बखूबी किया उन्होंने. वेल वेपन्स एडवांटेज का दैट वन वे डार्क कवर एंड बाय बाय आरवीके, सी यू इन द नेक्स्ट राउंड. बट मिड अप्रोच की तलाश अभी रहेगी जरूर. दैट सेज वॉल हमने कितनी बार देखा है, लाइक जब भी स्प्लिट पे आपको डिफेंडिंग हाफ में एक चीज देखने का मौका मिलेगा. दे नेवर वॉल ऑफ मिड, दे ऑलवेज वॉल ऑफ बी हेवन, ताकि एक शॉट पॉइंट बनाया जाए. Flash could have done a lot, but IQ they're missing up the shots and Skyesports का मिशन फायदा उठाने में नजर नहीं कीप के होएवर Skyesports का ट्रेड निकाल जाएंगे and numbers favor Cerberus. I'll tell you exactly what has happened over here. जब आप ओमन का पैरानोया आपके ऊपर लगता है, आप शॉर्ट साइटेड हो जाते हो. और जब भी ब्रीच का फ्लैश पॉप होता है, एंड इफ यू आर शॉर्ट साइटेड, ब्रीच का फ्लैश इफेक्टिव नहीं रहता, बिकॉज यूजुअली आप पैरानोया की शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से वो ब्रीच का फ्लैश देख भी नहीं पाते. एंड द लेयर्स, राइट, जो लेयर्स में आपको सोचना पड़ता है इस गेम के अंदर, एंड समटाइम्स इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट, वैसी चीजें आपके लिए काम नहीं लगती है. 30 seconds left. It is what it is. Spike down B. One enemy remaining. वो भी डाउन हो जाएंगे. That is going to be an easy peasy round coming in for Cerberus. Cute. Unfortunately मारे गए वहाँ पे, but all in all Enigma अब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, so weapons advantage को equalize ज़रूर करेंगे, लेकिन जो bonus round खेला गया था उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा उन्हें. That works. Of course, and उसके साथ probably trying to go for an equalizer. अभी equalizer की भी तलाश रहेगी, but this time Enigma Gaming, देखिए weapons are on level. वो जगह पे तो अभी आप कह सकते हैं equal stakes रहेंगे, but सिर्फ एंटी के पास half shield रहेगा. Not that it matters so much, but yes, Phantom half shield पे भी आपको पता है above 30 meters range half shield पे ही डाउन किया जा सकता है. Well, but ऐसे ही वो swing करते हैं, immediately वापस fall back कर जाएंगे. कीशी what और किया जाता है, बहुत लो रहेगा. एक Skyesports gets one and it gets one as well. साथ ही साथ पूरा का पूरा साइट ओपन मिल जाएगा. मिड भी आते हुए एनिग्मा गेमिंग के कंट्रोल में. जैसे ही हैं वहां पर एंटीडोट एक और पिक निकाल के, कैन दिस बी अ फ्लॉलेस फॉर एनिग्मा गेमिंग? फ्लॉलेस निकालने के कगार पर तो है, लेकिन व्हाट आई फाइंड रियली फनी इज ये जो गन बड़ी लगाया गया योरू का है, काफी क्यूट है, बट ऑफ कोर्स ओमन खेल रहे हैं यहाँ पे. एंड योरू एक ऐसा एजेंट है जो बफ हुआ है रिसेंट पैचेस में, बट अभी भी इतना ज्यादा इस्तेमाल होते हुए हमें नहीं दिखता है. आई डू बिलीव there's a lot of room for creativity with that one, but Price, आपका क्या कहना है योरू के बारे में? Not a big fan of using it. Then definitely you can make use of your self-independent abilities. देखिए मैं मानता हूँ कि योरू as a whole, more than a team agent, it's like a self-sufficient fragger. वो तो अच्छी बात हुई ना? Yeah, of course. I mean, आपकी खुद से भी अच्छा है, आपकी team, so I'll just refrain from you because of that thing. This should do. Interesting take. But nonetheless, Enigma will come on top. Gola in his 1-3. And यहाँ पे Cerberus की बात करें हम तो of course back foot पे पैसा उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद अगर वो फोर्स करना चाहे तो कर पाएंगे, लेकिन I do believe हमें यहाँ पे एक आध जज देखने मिल सकती है. But in the meantime, बात करें Enigma के बारे में, काफ़ी अच्छा कवर जो kills निकाले इन्होंने एक एक करके methodically
पूरा राउंड जीते हैं। एंटीडोट भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव खेले थे ज़रूर, लेकिन लो की एक किल जो निकाला उसकी वजह से वो फ्लॉलेस नहीं हो पाया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी अच्छा राउंड। एनिग्मा के पास पैसा भी अच्छा खासा होने वाला है बिकॉज एक ही प्लेयर को उन्होंने वहाँ पे खोया था। एंड ये राउंड भी इनके लिए आसान सा राउंड होना चाहिए। बिल्कुल। एंड ऑन द अदर साइड देखिए, अटैकिंग हाफ में एनिग्मा हैज डन एनफ, बट डिफेंडिंग हाफ में भी यही मोमेंटम उनको चालू रखना पड़ेगा, बिकॉज वंस दे लूज दैट मोमेंटम आई थिंक एनिग्मा गेमिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हमें आती हुई नजर आती है। यूजुअली टेक्निकल पॉज दिया गया है, टेक्निकल पॉज दो ऑन वन साइड। एनिग्मा गेमिंग वेपन्स के एडवांटेज के साथ साथ दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। जब वेपन्स एडवांटेज नहीं था, दे डिड लूज वन राउंड, बट उसके इमीडिएट बाद दे जस्ट bring a hammer down. Antidote, Excali, Raw Fuel, तीनों अपने अल्ट से एक पॉइंट दूर है। आरबी के एंड को दो वॉर पॉइंट्स चाहिए। सो अल्टीमेट्स का भी एक आप कह सकते हैं हैवी फायदा मिल सकता है एनिग्मा गेमिंग को। एंड जितने ज़्यादा वो अल्ट्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे राउंड, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगे कि वो अपने नाम लिख के जाए। बट फिलहाल के लिए टेक्निकल पॉज होने वाला इंतजार करेंगे हम अनपॉज आने का। लेकिन जितने भी दर्शक देख रहे हैं ऑफकोर्स यहाँ पे हिंदी स्ट्रीम पे तो खास तौर पे एनिग्मा को सपोर्ट कर रहे होंगे, विच इज स्टेटिंग द ऑब्वियस राइट नाउ। लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द अल्ट ऑप्स। यहाँ पे लोकी की बात करें, उनके पास अल्ट अवेलेबल है, एंटी, एक्सकैली, रॉ फ्यूल, तीनों प्लेयर्स एक ऑप दूर। तो अगर ये राउंड वो हार भी जाते हैं, इट वुडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज रॉ फ्यूल अपनी अल्टीमेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, एक्सकैली बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं एंड दो गन्स और ड्रॉप कर पाएंगे। तो एनिग्मा फिलहाल के लिए ड्राइवर सीट पे है, कंट्रोल है उनके पास पूरा, ना कि पेस का सिर्फ, लेकिन इकोनॉमी का भी। Of course, and Cerberus, 3 sheriffs to play with. I wonder इस राउंड पे क्या स्ट्रैट का इस्तेमाल करना चाहेंगे Cerberus, क्योंकि देखिए Cerberus के लिए साइट होल्ड नहीं हो पा रहा है। अगर एक साइड पे अटैक आ रहा है एनिग्मा गेमिंग का, दे जस्ट रोटेटिंग, एंड उसी रोटेशन को पिछले राउंड पे तो काटते हुए नजर आए थे। स्पेशली क्रेडिट गोस टू रॉ फ्यूल। जैसे ही मिड पे आप देखिए वहां पर मूवमेंट उन्हें पता लगा, ही जस्ट शॉट्स वन प्लेयर डाउन, एंड तब मजबूर हो गए Cerberus सोचने में कि क्या मिड से अप्रोच आ गया या फिर ए मेन से ही पुश आने वाला है। बट इन द एंड वो फ्लॉलेस राउंड जरूर रोक पाए थे। एनिग्मा गेमिंग वो फ्लॉलेस सिक्योर नहीं किए, बट दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट द एंटायर स्टोरी। सिर्फ 4 ही राउंड्स हुआ है, देयर स्टिल 8 राउंड्स टू गो इस हाफ पे वो 8 राउंड्स का जो वैल्यू है वो दोनों टीम्स इक्वली उठाना चाहेंगे। बट स्प्लिट एज अ होल आई थिंक डिफेंडर्स हाफ में बहुत ज्यादा फेवरेबल रहता है। सो Cerberus डिफेंडर्स हाफ में मैक्सिमम राउंड्स ना निकाल जाना, कुछ सवाल जवाब जरूर उनको करने पड़ेंगे अपने केस पे। या काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछने होंगे उनको अपने आप को, अपनी टीम के साथ। एंड अगर ये मैच जीत के भी जाती है एनिग्मा, तो भी उनको बहुत ज़्यादा वॉर्ड रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण ये है सेकंड मैच उनके कंट्रोल में था, 2-0 होना चाहिए था उनके लिए, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी भी वो कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है कि विल दे बी एबल टू क्लोज द मैच डाउन। यहाँ पे एक ही नंबर मैटर करता है, वो है 13। जब तक आपके पास 13 राउंड्स है, it's all going to work out in your favor। but चलिए यहाँ पे पॉज खत्म होते हुए देखते हैं यहाँ पे कोई इनिशियल पिक हमें नजर आता है कि नहीं। Cerberus पूरी की पूरी कोशिश करेगी ये राउंड का फायदा उठाने के लिए, बट एक्सकैली इन द मीन टाइम आगे बढ़ते हुए। एक्सकैली को ड्यूलिस्ट पे देख के आई एम श्योर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे फैंस भी बहुत खुश होंगे, बिकॉज आपको पता है एक्सकैली का पोटेंशियल है। यहाँ पे सैचल का इस्तेमाल करके अंदर जाएंगे ज़रूर, लेकिन क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है? कोई फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल अच्छा खासा ले चुके हैं। बेकार है, स्पॉट हो जाएंगे, क्या निकाल पाएंगे अपने आप के लिए? जी नहीं, फॉल बैक करना पड़ेगा, हीलिंग ऑफ का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्राइस, लेकिन पोजीशन भी काफी अच्छी है। जी, साथ ही साथ देखिए एंटी वो चाहते हैं कि कोई भी फ्लैंक ना आए, उस फ्लैंक को ऑलरेडी एक बार डिनाई कर चुके, बट दोबारा वो फ्लैंक को डिनाई करेंगे अगेंस्ट अ डुअल कनेक्ट्स अ क्रिस्पी वन ऑन टू एंटीडोट। एक वेपन उनको मिलेगा जरूर, बट ट्रॉफी पोजीशन को स्विच ओवर करते हैं, वापस आ जाएंगे अपने राउंड की मदद से सीधा साइट के अंदर। अभी प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। एक्सकैली वेटिंग ऑन राफ्टर्स, उनको 2 एंगल्स गार्ड करना है, एक सीट रहेगा हेवन, बट नहीं एक्सपोनेंट ब्लू की स्पॉट सकते हैं टेक डाउन आरवीके, पर सूका रेक्सी को डाउन करेंगे। समय बहुत क्रूशियल रहेगा, समय का एक्सकैली गेट्स वन, गेट्स अ थर्ड फॉर हिमसेल्फ। Akashi को भी शट डाउन किया जाता है। That's the fourth for Enigma Gaming. एक्सकैली फुल ऑन यहाँ पे स्टैट पैडिंग करते हुए, ऑफ कोर्स इट डिजर्व्स ऑल दीस किल्स, ये उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन
अच्छा लग रहा है उनको बैक आउट करते हुए देख के। एंड यार मुझे मालूम था, हम हमेशा से उनकी पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, रॉ के बारे में हमेशा से बात करते हैं। एंड टू सी हिम फाइनली लिव अप टू हिज पोटेंशियल, अच्छा लगता है देख के। तो उल्टा घूम के 180 डिग्रीज घूम के उन्होंने क्लिप निकाला। यहाँ पे भी टैप कर रहे थे आराम से, पेशेंस बहुत ज़्यादा है उनके पास। एंड खूबी वो दिखाते हुए एनिग्मा के पास 4 राउंड से पैसा सेरेब्रस के पास अब आ चुका है। ऑपरेटर भी खरीदी गई है यहाँ पे। The dead op goes in. Yeah, we don't result नहीं मिला, but Rockfield and Rexy they get 2 picks for themselves. Of course, Rexy का ये जो pick था, that was a trade. Kill my allies. And immediate resurrection भी दिया जाएगा Rexy के द्वारा. So Enigma Gaming once again heavily getting the numbers in their favor. And Cerberus ऐसा नहीं लग रहा है कि it's that same Cerberus who were playing Ascent. Rishi in the meantime always gave a good block on to Loki, लेकिन जी हाँ Ascent में look आपने बोला कि Ascent लेके same Cerberus खेल रहा है, honestly no। कि शुरुआत से वो one sided affair नहीं था। Ascent में back and forth rounds जा रहे थे, यहाँ पे Cerberus especially being on the defense वो इतने round हारे, तो it's a very different story। Spike down A। Exactly, I mean that was my intention though, but देखिए अभी spike down किया गया। Enemy remaining। जितनी देर तक हो सके होल्ड किया जाए, has to back off। उनके पास कोई मौका ही नहीं। He has an op and उस op को सेव करना है भी उनका प्रायोरिटी रहेगा। उनके लिए हंट चालू हो चुका है ऑलरेडी, किया गया। Rockfield gets shot from above the top। अभी भी एक खिलाड़ी that's going to be Excali, but उनको घेरा गया। देखिए RVK के द्वारा एक और प्लेयर को डाउन किया गया एंड खुद सूका जाके अपने आप को ऐसे जगह पे पोजीशन करते हैं कि मजबूर होना पड़ेगा। दोनों साइड से पुश आने की तैयारी। देखिए एक तरफ एंटीडोट रिसीवर्स की, दूसरी तरफ एक्सकाली रहेंगे। शोल्डर पिक कर रहे हैं जरूर, ज्यादा ओवर एंटीडोट मेक श्योर कि वो ऑफ सेव करने का मौका ना मिले। एंड इट्स 5-1 ऑन द स्कोर कार्ड। जी हाँ 5-1, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में भी। सेरेब्रस के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अल्टीमेट का स्टेटस चेक करना पड़ेगा एक बार। लेकिन ऑल इन ऑल एनिग्मा यहाँ पे प्रॉपरली ड्राइवर सीट में बैठी हुई है, काफ़ी अच्छे पिक्स निकाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है उनके पास, कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बट सूगा के शॉट्स काफ़ी अच्छे कनेक्ट किए थे, बट ये वाला शॉट स्पेशली ऑन टू RVK, ये देख के मैं भी थोड़ा सही गया था। बट एंटीडोट बैकस्टैप किए उनको। एंड यहाँ पे सेरेब्रस टाइम आउट लेंगे, अपने आप के लिए ज़रूरत है इस टाइम आउट की। लेकिन एनिग्मा सोच रही होगी, एटलीस्ट दे होपिंग फॉर दिस, कि ये टाइम आउट उनका मोमेंटम ना तोड़े। For a second, Enigma Gaming, they were like, why let Suka go? Why let Suka go? And Suka was like, yeah, leave me alone or I'll take you down. But in the end, वो op ना save करने देना, it all results in a very, very depleted economy. Half shields रहेंगे, 2 राइफल्स हमें जरूर देखने का मौका मिल रहा है काशी एंड डाइकुटे की तरफ से। Suka, however, उनका ult ready. There's actually all 5 players have ultimates ready. Everyone has it. Hard to say whether Enigma will get this round or not, because जितने ज़्यादा ultimates का investment हम देख पाएंगे इस round पे, can be a huge difference maker. I'm sure Suka 2 force का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि that's the only way ये buy कुछ भी सेंस बनाता है। बट फिलहाल के लिए उनके पास हेड हंटर की सारी गोलियाँ, 2 force भी होने वाला अवेलेबल, तो आराम से खेल पाएंगे। की बात करें, what in the God's name was that raw fuel? What are you doing? ये illegal होना चाहिए, ये जो headshot मारा है illegal होना चाहिए। That's just raw fuel, right? That is just raw fuel. And सबसे ज़्यादा अगर आप किसी भी खिलाड़ी के potential की बात करते हैं, Enigma says it's always RVK and raw fuel. The young bloods, the bloodthirsty players, जिनको रोकना तो मुश्किल, उनके पीछे आना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। देखिए जैसे ही वो पीक आएगा, immediately raw fuel is like tuck, and that's the first pick. Yeah, बिल्कुल सही कहा, but when you call them bloodthirsty यार, vampire जैसे sound करते हैं, that was so cool। तीसरा पे निकाल दो अपने आप के लिए, पीछे हटेंगे जरूर। आई नो किसी दो वो भी अपने आप के लिए 2 गज निकालेंगे। इन द मीनटाइम RVK को टेक डाउन कर दिया जाएगा, 2 फोर्स का इस्तेमाल करके। सूका ए होल्ड कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे वाइपर लेके लर्क करके क्या माइंडसेट था इनका, लेकिन Cerberus is back. 30 seconds left. Rexy,
at least Rafael को heal कर दीजिए, because I want to see Rafael even go for more. You know, Rafael, he's done so much so far. Pick Nico will be denying that. Rexy gets a pick on Kishi. It reminds me of SCS. This round reminds me of SCS. They take 1 versus 2 situation and Rexy stuck all alone. The battle stage. Short step का इस्तेमाल, but Rexy is ready. He lined the pull up shot connection जरूर आएगा पहला, but दूसरे player की भी HP यहाँ पर Rexy just swinging around. You know what? He definitely is that battle stage that Enigma needs right now. Oh, absolutely. And मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस player के लिए, because जिस तरीके का रोल खेल रहे हैं ये इनके मैकेनिकल स्किल को जस्टिफाई नहीं करता है, बट जब भी उनको मौका मिला है, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है टीम को, उन्होंने स्टेप अप किया, जो काफ़ी अच्छी बात है. बात करें यहाँ पे पैरानोया आया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आराम से खेले, बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया एंड परफेक्टली रीड किया. यहाँ पे पता था उनको कि डार्क कवर आ सकता है, ठीक किया दूसरा एंगल एंड ऑफ कोर्स हेडशॉट कनेक्ट किया. तो दिखा है उनके मैकेनिकल स्किल्स कितने अच्छे, लेकिन इन द मीन रॉफिल बार-बार सेम चीज़ कर रहे हैं, बट दूसरा एंटीडोट कूद रहे. मुझे एक सेकंड लगा रॉफिल ने कूदते वो किल निकाले, बट एंटीडोट अंदर जाएंगे एंड जी हाँ निकाल पाएंगे वो किल. अभी भी 3 versus 2 अनफॉर्चुनेट जरूर है एनिग्मा के लिए, बट मैन एडवांटेज उन्हीं के पास है. But do you think these are ego peaks that Akashi is actually going for? Because देखिए हर बार same peak करना and हर बार Rockfield से shut down करना, it has to be like okay, I'm getting taken down, I'll try again. And हर बार वो नाकाम हो जाने. Enigma is just building up that huge lead and damn, they're doing a fantastic job attacking up in round. Split पे ये बनाना नामुमकिन के बराबर होता है Cerberus के against. Yes, have to definitely talk about what's there on paper. Immediately RBK sprint and RBK spots him, breaks those legs, and आखिरी player Suka fully DK'd है. By the time he walks out of that Viper split, 8 HP रहेंगे वो. Rexy is there to stab him in the back. जी हाँ, and देखिए is this funny to me honestly, क्योंकि ईगो पीक नहीं कहूँगा मैं उसको. फॉल्ट नाइन का इस्तेमाल कर रहे तो उनको पता है कि सामने वाला प्लेयर स्टंट होने वाला है, एंड उसके साथ पीक करे. पहली बार अनलकी हुए थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनको पता था वो भी अनलकी हुए, लेकिन जो दूसरी बार की अगर हम बात करें अब वो थोड़ा obviously it was a little more concerning कि वो उस तरीके से एलिमिनेट हुए. अगर इस बार वो पीक करते बीम इस तरीके से, that is when I'd be like हाँ you know what, शायद उनको ये पीक नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि फास्ट 8 आ सकता है कॉन्टैक्ट के बाद. And I'm loving the positions held down by the defenders right now. देखिए खिलाड़ी just playing on screen right आपको जायकुजे इस बार एक ही निगरानी करते हुए नजर आएंगे. Vortex खेले के पास has stopper as well. बहुत ही valuable है, but here perfectly timed that rolling thunder. Akashi, all that to stop. That out of its alley. Not a very well-matched investment, I'd say. I mean, उनको जिंदा रखा गया था, जैसे ही उनको डाइक्यूड, लेकिन उनको पता था कि कहाँ पे प्लेयर होने वाला है, उन्हें स्टैंड किया. ये जो ओपन प्लांट की बात है, यूजुअली आप ऑफ एंगल में प्लांट करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट नॉनदलेस वहाँ पे रेक्स भुगतान करेंगे उस चीज़ का. की बात करें, ऑपरेटर है जरूर उनके पास, लेकिन टेक भी करेंगे यहाँ पे, निकाल पाएंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे. इट ऑल कम्स आउट टू रॉफिल. 2 HP उनके पास, पैरानोया आएगा क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे. आजू में सेज का वॉल लगा हुआ है, जी नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन हिज फेवर. 72 अभी भी एनिग्मा ऑब्वियसली उनके पास क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा है, बट अल्ट का काउंटर अल्ट से किया रोलिंग थंडर के साथ. आई थिंक इट्स ओके, बिकॉज उनका जो शो स्टॉपर था वो मिस जरूर हुआ उस चीज़ की वजह से. एक राउंड भी आया. देखिए इकोनॉमी डाउन थी Cerberus की, इमीडिएटली वो रेजरेक्शन देके एक वेपन वापस से ऐड ऑन करवाया गया, वापस से लाया गया है वो एक वेपन, बट स्टिल अ ह्यूज स्कोर फॉर Cerberus टू वर्क ऑन. जो लीड है, जो मैसिव लीड है, उसको रोकना आसान नहीं रहेगा. एंटी ऑलवेज कम्स इन विद द अटैकिंग ऑफ. एंटी को हमने देखा है जब भी वो स्प्लिट पे आते हैं वो अटैकिंग ऑफ आएगा ही, एंड इनफैक्ट दोबारा से वो अटैकिंग ऑफ आ रहा है. लीड बन चुका है, एंटी इज लाइक ओके आई एम गोना ब्रिंग इन माय ऑफ, बट इस बार कहां पर वो ऑफ आने वाला है? इट्स गोइंग टू बी ऑन बी इनफैक्ट. सुका जस्ट होल्डिंग इट पैसिवली, थोड़ा सा साइड के बैकवर्ड्स एरिया से अभी वो अपना ऑफ लगा के बैठे हुए हैं. 7-2 on the cards. Enigma have a fantastic lead and they might just close it to 1. जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बट अगेन
ये गेम ऐसी है ना कि कुछ भी हो सकता है, इट कुड गो ईदर वे। लोकी की बात करें तो वॉल ऑफ कर दिया गया, लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास शाउटेड स्टेप है जिसकी वजह से वो अंदर आ पाएंगे फिलहाल के तो इंतजार कर इसकी बनने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन रॉ फ्यूल उनके टीममेट के साथ स्कैली के साथ रोप्स के अंदर जाएंगे। रेक्सी यहाँ पे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। Does he know? Does Rexy know? एक और प्लेयर वहाँ पे लेकिन रॉ फ्यूल स्कैली वापस आ रहे हैं। They are going to come back and see if they can make an impact over here. Stuka मिस करेंगे अपना ऑपरेटर का शॉट, बी स्प्लिट होने वाले, लेकिन दो टीम निकालेंगे वहाँ पे। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट for Enigma. Flawless. And flawless as well. Loki and Suka, they single-handedly just demolished Enigma in this round. And Enigma Gaming, जवाब चाहिए, अभी जवाब चाहिए। जो भी Enigma के फैंस हैं, देखिए, like now we all know कि जो भी हिंदी देखने आए हैं, mostly they are on Enigma Gaming fans. And वो चाहते हैं कि इसका कोई अच्छा जवाब हो। इसका अच्छा जवाब एक flawless का जवाब flawless से चाहिए या फिर एक 9-3 का स्कोर। But 9-3 again, I mean, I don't believe too much in superstitions, but 9-3 के साथ तो कहानियां जरूर रहती है। कहानियां जरूर रहती है, बट एनिग्मा ने टाइम आउट लिया है। आई थिंक अच्छा खासा टाइम आउट लिया है। दे नीडेड टू रीसेट, बिकॉज जब आप इस तरीके के एंगल से आप अब 3 प्लेयर्स खोते हो तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है डील करना इसके साथ। बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी होती है आपको कि भाई मेरा ये अप्रोच था, इस तरीके से मैं कवर एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो जस्ट टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम समटाइम्स, क्योंकि देखिए यूजुअली डीब्रीफ मैच के बाद होता है, चालू मैच में डीब्रीफ करके मतलब नहीं बनता कोई भी, लेकिन कई बार आपको ये पॉजेस की जरूरत पड़ती है रीसेट करने के लिए टू गेट थिंग्स आउट ऑफ योर सिस्टम, एंड ये पॉज मुझे लगता है उसी के लिए है। I did manage to have a chat with YB. You know, he believes in one simple thing. जब भी tag timeout आता है, he doesn't plan anything new. वो बस गलतियों को बता देते हैं कि yeah, these are the mistakes you guys are doing. Just इनको सुधारो। And Enigma उसके बाद mostly हमने देखा है tag timeouts के बाद Enigma they play really well. But इस बार एक इकोनॉमिक डेफिसिट के साथ साथ आप देखिए वेपन्स भी You want to play? Let's play. उनके पास अवेलेबल है टूर द फोर्स, एंड उसके साथ ही इज रेडी दिस टाइम, ही इज जस्ट रेडी। बट ए पे ये पुश आएगा, एक्सकैली आरवी के खिलाड़ी है और फिर आई थिंक इज होल्डिंग डाउन मिड हियर। जी हाँ, मिड से आ रहे हैं जरूर। ही इज वेरी वेरी पेशेंट। वॉल टूटते ही यहाँ पर कह सकते हैं कि रॉ फ्यूल का कहर बरसने वाला है। किशी इन द मीनटाइम यहाँ पे वॉल के पीछे इंतजार करेंगे। रेक्स एंड एक्सकैली क्रीप अप कर चुके हैं, लेकिन क्या किशी इस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे? रेक्स इज नॉट वाचिंग, बैक स्पॉट हो जाएंगे, टेक डाउन भी होने वाले हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो एक किल निकालेंगे या दूसरे निकाल पाएंगे। पेन शेल्स है उनके पास, स्पाइक भी उन्होंने उठा लिया है। स्नैकिल के साथ वो वहाँ से भाग सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़े तो, लेकिन डाइक्यूट को देखिए इंतजार करेंगे। सूखा इन द मीनटाइम ये में देख रहे हैं, बहुत स्लोली खेलना पड़ेगा, बहुत मेथोडिकली खेलना पड़ेगा, एक एक करके पिक्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये है सिर्फ इकलौता प्लेयर है एनिग्मा की तरफ जिसके पास गन है, जो अच्छी पोजीशन में जो किल निकाल सकता है, लेकिन आसान नहीं होने वाला ये। बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। एंड अगर इस सिचुएशन से कमबैक करना है एनिग्मा गेमिंग को, दे माइट जस्ट गो फॉर अ स्ट्रेट, बिकॉज़ देखिए Rest. He was already inside, but I think Jesse actually shut them down. Excali gets another, and numbers immediately देखिए इवेंचुअली हो चुका है। Excali के HP लो है जरूर। दूसरा शॉट भी यहाँ पे मिस करेंगे। एक्सकैली के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली, बिकॉज एचपी उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है। रॉ फ्यूल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉट्स मिस कर दिए, लेकिन क्या रॉ यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? जी हाँ, सर्वाइव करेंगे जरूर, लेकिन एक्सकैली देखिए कितना ज़्यादा स्मार्टली खेल रहे हैं। डिफेंडर स्पॉन की तरफ क्रीप इन कर चुके हैं, यहाँ पे टेलीपोर्ट भी कर लेंगे, पीछे हटेंगे, लेकिन लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सकैली को बेस की तरफ, वेरी स्मार्ट गेम। एक्सकैली की मैं दाद देना चाहूँगा इस राउंड के लिए। Of course, and देखिए प्लांट लेकिन it's towards the insides, तो अगर स्टिक इन किया जाता है लोकी के द्वारा, then both the players have to just come and commit। तैनात है, but मौका नहीं है लोकी के पास, समय नहीं रहेगा। He has a weapon, tries to shut down players, but जी नहीं है। Gaming from a 2v5 to a 2v2, have to give the credit to Excali and Rock Fuel। I mean, those shots missed, but still, when it's needed, तब उन्होंने वो काम करके दिखाया। Yeah, of course, we always stepped up जब टीम को जरूरत पड़ती है, लेकिन सूखा के ऊपर जो शॉट कनेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट डाइक्यूट ने भी कोशिश काफ़ी अच्छी करी।
ऑप्स देने पड़ेंगे, लेकिन एक्सकैली जिस तरीके से उन्होंने उल्टा घूम के वो किल निकाला बहुत क्रूशियल था। एंड रॉ फ्यूल ने भले 2-4 से शॉट मिस किए, लेकिन वैंडल 2 शॉट्स नहीं मिस करने वाले थे। राउंड निकाला अपनी टीम के लिए। आखिरी राउंड ये फर्स्ट हाफ का, क्या 8-4 होगा 9-3 होगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन एनिग्मा फिलहाल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। आई स्टिल थिंक मामा कि देखिए 8-4 भी अगर होता है अटैकिंग हाफ पे, दैट्स अ फैंटास्टिक स्कोर। डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप, इनफैक्ट इट्स अ हेवीली डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप, सो वो डिफेंस का फायदा रहेगा। रॉ फ्यूल है, रॉ फ्यूल ने जो अभी तक दिखाया है अटैकिंग साइड में, स्पेशली विद टूर दे फोर्स या फिर हेड हंटर से क्यों ना हो, वैंडल से क्यों ना हो, I mean, that's going to be a hard thing to beat down. Raw Fuel can just anchor down on one side, but Loki ka position, I'm loving the play here, but Excali will check that corner, but no, he doesn't in fact. But Loki moves down 2 players, and इसी बीच में Antidote, Pearson on the back of side, but he was flat, उनको कोई भी मौका नहीं मिलता रिस्पॉन्स करने का। Loki single-handedly B-Main का complete control, in fact side control भी deny करेंगे Enigma Gaming को। Raw Fuel still has that orb, manages to get a pick, Loki को shut down किया जाएगा। RVK and Raw Fuel versus an entire army of Cerberus right now. One enemy remaining. आर्मी जरूर है, लेकिन रॉ फ्यूल यहाँ पे टेक डाउन हो जाएगा। डाइक्यू ने किल निकाला। 30 seconds left. 1 versus 4 सिचुएशन में 30 seconds on the clock. स्पाइक उनके पास, लेकिन वॉल तोड़ नहीं सकते। आखिरी राउंड है, उनको जाने की जरूरत है। उनको पता है वॉल थोड़ी देर में टूटने वाले, शायद यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनको मिले। किसी के ऊपर पिक निकालेंगे, अब स्पॉट हो चुके, किसी के ऊपर फ्लैग निकालेंगे जरूर, लेकिन 15 सेकंड्स बाकी पूरी स्पाइक क्लियर करनी है उनको। ओह माय लॉर्ड, आकाशी को भी आप टेक डाउन कर दिया जाएगा। अभी शायद स्पाइक प्लांट कर पाए। 8 seconds on the clock, जल्दी करना होगा उन्हें खुद के स्नेक बाइट में जाएंगे, बट as he have time to plant the spike down. Yes indeed he does. Spike planted. करेज वीसी पे प्लेयर एंड 2 उनके ऊपर किल निकालेंगे यहाँ पे। 8-4 लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले हाफ के अंदर बैठेंगे 4 राउंड की लीड के साथ। अटैकिंग में किया है, अगर इस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाते हैं Cerberus, then Enigma have to really worry about it, because देखिए अभी तक जितनी भी बार हमने देखा है Cerberus more like playing as a unit, वो अकेले सिंगल हैंडेड जो प्लेयर्स 3s and 4s में पिक्स निकाल जा रहे थे, that was problematic for Enigma Gaming। लेकिन on the other side Enigma Gaming का मुझे एक अप्रोच इस मैप में बहुत बढ़िया लगा। एसेंट के जैसे they were not just single, like you know 1v1 duels पे कम जाके वो एक डबल पिक कर रहे थे, तो इमीडिएट ट्रेड्स भी आ रहा था Enigma Gaming की तरफ से। So I'm looking forward to a quick closure from Enigma Gaming, especially defenders आपका फायदा उठा के, but Cerberus, they're always here to deny it. Only if getting closure was just as easy prize, but it's not. It's not at all. I mean, we all know it, right? I'm not sure about you. Sorry, I'm not sure about me. But regardless, 84 स्कोर लाइन है यहाँ पे, एंड बात करें एक्सकैली एंड रॉफील के बारे में, दोनों प्लेयर्स परफॉर्म करे। आई डू बिलीव प्री शो में हमारी बात हुई थी ये 2 प्लेयर्स एक्स फैक्टर होने वाले, और ये दोनों प्लेयर्स जब भी परफॉर्म करते हैं जी, हमने देखा है कि एनिग्मा कितना ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है। आरवीके श्योर हैविंग अ रफ गेम, रेक्स एज वेल। देखिए रेक्स और एंटीडोट को मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूँ बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग विद रिगार्ड्स टू कि टीम किस तरीके से खेलेगी, क्या अप्रोच रहेगा। एंटीडोट लीड कर रहे होते हैं, रेक्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट ऑफ कोर्स किल्स अगर ज़्यादा होते हैं उनके पास तो वुड हैव बीन नाइस सर, बट फिर भी 8 राउंड्स है उनके पास, तो वो भी अटैक साइड पे बाय द वे, वो कम नहीं है। Do you see the kills on that breach? 111. That's not Akashi. I mean, literally, Akashi का फॉर्म इतना गिरता हुआ एक मैप के बाद, ब्रीच के यूटिल्स तो आप देख रहे हैं, देखिए he has 5 assists तो, so ब्रीच का यूटिलिटी यूजेज उससे पिक्स मिल रहा है, बट खुद अभी तक कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। अटैकिंग हाफ में however, ब्रीच कैन स्टेप अप अ लॉट। ये स्प्लिट है, स्प्लिट पे एक टाइम पे फ्लैश एंड डैश मेटा बहुत ज्यादा चलता था। फ्लैश एंड डैश नहीं होगा, बट फ्लैश एंड जंप हो सकता है। यू हैव अ रेस टू मेक दोस प्ले हैपन। 15 सेकंड का समय एंड वी विल बी जस्ट डाइविंग इनटू द सेकंड हाफ। जी हाँ, दूसरे हाफ की तरफ रुक करेंगे। यहाँ पे हेड हंटर की अगर हम बात करें, उसका इस्तेमाल हमें देखने मिलने वाला है। रॉफ इन द मीनटाइम हैज चोजन टू गो विद द घोस्ट, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन डार्क कवर आते हुए अर्ली ऑन इन द राउंड यहाँ पे आरवीके जिगल पीक करके प्री फायर कर रहे कि शायद एक आध पिक मिल जाए, लेकिन ही माइट एक्चुअली पे द प्राइस, यहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे। डैमेज भी लिया है उन्होंने, लेकिन स्नेक बाइट अवेलेबल है डिले करने के लिए पुश को, एंड क्या वापस वो फाइट लेना चाहेंगे ये ज़रूर देखना बनता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक ही तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है रॉ फ्यूल इन द मीन टाइम।
is going to have a headhunter as well. एक गोली है सिर्फ लेकिन उनके पास. Rofiel approach denied. Frenzy. I mean, Raze is always in the attacking half. Usually, split पे हम यही देखते हैं. I'm on the wall and he has no info. But वो info finally दिया जाएगा लोकी के द्वारा कि yeah, he's there on mid. Challenge किया जा रहा है. Kishi on the other side, he heals up. Sage available है. Daikute heals him up to its full HP. Spike plant नहीं हुआ है. 40 seconds on the clock and Enigma Gaming, they have literally no PT और रहने खिलाड़ी. RBK finally getting on the side and अभी एक full B-side commitment आने वाला है. After shock से default plant को खोलने की कोशिश. RBK immediately अपने toxic spin को deploy करेंगे. तो opposite side से यहाँ पर निगरानी करनी पड़ेगी because आप देखिए अगर एक side पे ये Viper DK करवा सकते हैं लेकिन दूसरे side पे आपको आपका जरूर connection मिलेगा. एक पिक करेगी Daikute. Loki shuts down. Excali as well. The IGL himself is left alone in a 1v4. I'm speechless, honestly. What? I'm actually genuinely speechless because what were they thinking? Snake bites उनके पास delay करने के लिए toxic screen deploy हुई थी. Sure, Rex वहाँ पे rotate करने की कोशिश कर रहे थे, but there was no backup for him. उनके लिए बिल्कुल भी help नहीं थी and I'm not sure what exactly was going through Enigma's head because वहाँ पे बिल्कुल भी उनको मदद नहीं मिली. रॉफिल की बात पे फ्रेंजी से वो मारे गए थे. एक हेड हंटर का शॉट लेके उन्होंने किल डालने की कोशिश जरूर करी, बट आई डू बिलीव यहाँ पे ट्रेड फ्रैगिंग थोड़ा बेहतर हो सकता था एनिग्मा के लिए एंड शायद अगर ट्रेड फ्रैगिंग बेहतर होता तो वो राउंड निकाल पाता अपनी टीम के लिए. But it was a gamble for Cerberus as well because उन्होंने भी literally एक blind push किया. उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, बस बैक साइड क्लियर था कि नहीं. सुका पनिशिंग एंटीडोट फॉर दैट नो स्पीक. स्पीक का रिजल्ट ये है कि अभी ट्रेंडिंग साइड में एनिग्मा गेमिंग दिक्कत में आ सकता है. Excali shot close range is going to be there and the Sheriff Master getting another. Enigma weapons नहीं है but still Cerberus को परेशानी में डाल देंगे. Last enemy remaining. Actually, 2 kills निकालेंगे. They will reduce it to a 1v3 league अभी भी. RVK मैं बहुत फनी नाम सुना था इनके लिए. I think लैंड पे सुना था मैंने किसी को बोलते हुए क्राउड में बैठ के जब चीयर कर रहे थे इनके लिए तो किसी ने उनको शेरिफ डैडी बुलाया था. Yeah. Of course. RVK कितना बेहतर खेलते इस गन के साथ हम सबको मालूम है. Possibility कम राउंड निकालने के लिए but there obviously is still a chance. Sheriff next one लेकिन दूसरा कनेक्शन नहीं मिलेगा बिल्कुल भी. Kishi surviving its HP. Shut around Cerberus के पास. Okay, now I think I need to control my nerves and my heartbeat because मामा अगर ये राउंड निकल जाता है Cerberus given me it's anyone's game again जो अब तक एनिग्मा का लग रहा था. Eco round था. I wouldn't take it to that extent. Eco round था, guns नहीं थी उनके पास, पैसा नहीं था. बाय राउंड में अगर यही चीज़ रिपीट होती है that's a different story altogether. हाल के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि ये Cerberus के हाथ में अभी भी एनिग्मा कंट्रोल में है मैच के. कॉन्फिडेंस उनके पास है, राउंड्स उनके पास है, डिफेंस में उनको सिर्फ 5 राउंड्स निकालने हैं. सो आई थिंक दे विल बी फाइन. वेल टॉकिंग अबाउट दैट अभी वेपन्स अवेलेबल है. फिर से देखिए 4 प्लेयर्स फ्रॉम एनिग्मा हु आर प्लेइंग ऑन हाफ फील्ड्स. सीधा नीचे विथ इन्वेस्टमेंट करके waiting. Spike down mid. Actually, immediate trade आएगा Kishi के द्वारा. She's massive fuel. Oh, he's so calm at the moment. बस इंतजार कर रहे हैं. Suka, he's just walking in. He's just walking into Rofiel's crosshair. In fact, weapon और लिया जाता है. Rofiel manages to get away without a scratch. And so does Suka. I mean, okay. फिलहाल के लिए सूका इंतजार कर रहे हैं. इस साइड की तरफ पेंशनर्स जाएंगे जरूर. बात तो आ चुका है लेकिन एंटीडोट ने पहला किल करा. पैरानाइज इस्तेमाल करेंगे. नजिया वन मोर डार्क. हो 2 किल्स लाइन अप करते हुए अपने आप के लिए. लेकिन नाउ एनिग्मा के पास मैन एडवांटेज. डाइक्यूट एंड लो की 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन रेक्स पीछे से आ रहे हैं फिलहाल के लिए. आई थिंक रोटेशन सुना है उन्होंने. इंफॉर्मेशन भी रिले कर देंगे. यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती जाएगी सेरेब्रस के लिए बिकॉज दोनों प्लेयर्स को रोटेट करना है एंड रेक्स ऑलरेडी तैनात हो गए यहाँ पे बैकस्टैप करने के लिए. दोनों प्लेयर्स को क्रॉस करने देंगे एंड फिर बैकस्टैप पे जाएंगे. इन्फॉर्मेशन रिले हो चुकी है. दोनों प्लेयर्स है. आरबीके की बात करें स्नेक बाइट खोल के बैठे हैं
एंड आराम से राउंड निकाल पाने चाहिए यहाँ पे, लेकिन One enemy remaining. वो टेक डाउन हो जाएंगे। Last रॉफ यूनिट player निकाला जरूर है, standing. लेकिन it is a 1 versus 1. Tycoon versus Rexy. Sage, the battle of the sages, and peek around the corner, लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए यहाँ पे। राउंड अभी भी स्लो अप के अंदर फंसे हुए, लेकिन क्या वो पीक कर पाएंगे? इसको नहीं टेकन डाउन, अनफॉर्चुनेट Enigma, लेकिन Cerberus, how I don't want to call them lucky, but let's be honest, it's 5% luck still, right? वो 1v1 Yeah, duel, absolutely. I mean दोबारा swing करना, but yeah, Enigma gaming once again. देखिए अगर उनको वो एक और पिक मिल जाता, शायद से it would have been game over, but Rexy, he was so out of information, उनको literally कोई आइडिया ही नहीं था कि दोबारा पीक आ सकता है सेम डायरेक्शन से, एंड उसका पनिशमेंट भी उन्हें भुगतना पड़ा। जी हाँ, बट वी डू हैव ए टाइम आउट कमिंग, टेक्निकल पॉज है ये, तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एनिग्मा को रीसेट करने की जरूरत है, बिकॉज जो एडवांटेज था उनके पास अटैक साइड में इतने ज्यादा राउंड्स निकाल के उन्होंने जो एडवांटेज इकट्ठा किया था, वो कहीं ना कहीं अब जाते हुए नजर आ रहा है, एंड आसान नहीं होगा मेंटली बाउंस बैक करना कम से कम प्राइस। It's still not over. I mean, Enigma Gaming अभी भी उनके पास वो डिफेंडर्स हाफ का एडवांटेज है। All they need to do is कि एक राउंड जीते, एक राउंड किसी भी हाल में Enigma Gaming को अभी लिखना पड़ेगा। That will change the entire mindset of the players. That will change the momentum of the game. And Cerberus फिर मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि alright, we were winning at a streak, लेकिन what just happened? That's a good question. What just happened? I'll tell you what happened. Cerberus फिलहाल एनिग्मा को क्लैप कर रही है। That's exactly what's happening because हर एक फाइट, हर एक डिसीजन, and of course a little bit of luck, क्योंकि देखिए रेक्स के पास परफेक्ट फ्लैंक था। All they had to do is wait it out for रेक्स का इंतजार करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरवी के अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाए थे उन्होंने कि वहाँ पे उनको फाइट लेनी पड़ी। श्योर अगर लेफ्ट साइड वाला एंगल होल्ड करते तो ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाते, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से गेम का आउटकम पूरा बदल जाता है। एक एंगल की वजह से अब मैच हार सकते हो। सो यू नेवर रियली नो व्हाट्स हैपनिंग, बट नाउ सर्बरस कॉन्फिडेंस गेन कर रही है, क्योंकि डिफेंस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राउंड्स गवाए थे, स्पेशली ऑन अ मैप लाइक स्प्लिट। डिफेंस में आपको ज़्यादा राउंड्स की ज़रूरत होती है। डिफेंडर्स आप में आप देखिए दोनों ही टीम्स ने ऐसे अभी तक डिफेंडर्स आप में जो भी किया है एनिग्मा गेमिंग ने, इट ऑल विल गो इन वेन। अगर ये इक्वलाइजर इनफैक्ट लीड आ जाता है, ये राउंड एनिग्मा के लिए जीतना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। एक्सकैली विद अ जज, रॉफ्यूल ऑन हिज हेड हंटर, 2 पीक्स है, 2 अर्ली ऑन पीक्स है। अगर रीड नहीं कर पाते सूका, दिस इज नॉट गोना गो। आई थिंक रीड कर लेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे जरूर। यहाँ पे एक्सकैली ने आगे पुश किया था, नॉट क्वाइट श्योर यहाँ पे क्या आइडिया था, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स पैसे नहीं उनके पास इतने ज्यादा। रॉ फ्यूल पीछे हटेंगे जरूर, हेड हंटर का इस्तेमाल करेंगे कोशिश करेंगे। नीड अ एंटीडोट, टेक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन इशी को नेक्स्ट टेक डाउन करेंगे। यहाँ पे उनके पास मार्शल है, अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 वर्सेस 4 अभी भी मैं कहूँगा एनिग्मा शायद राउंड निकाल सकती है, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे वो एक पिक निकाल पाए। एक तरफ he's making things hard for him. जब भी ये आखिरी के कुछ सेकंड में एग्जीक्यूट आता है, एनिग्मा गेमिंग they have to either give up side या फिर duel करेंगे Rexy and Daikute। नंबर इक्वलाइज हो चुके हैं and Roffuel भी आगे आते हैं, पिक मिलेगा जरूर। काशी getting down on Roffuel, but Rexy gets a 3K for himself and आखिरी प्लेयर लो की बचे हुए जो कि आ रहे हैं जरूर मिड से। स्पाइक प्लांटर को डाउन किया गया, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है, बट जी नहीं। Thrifty round for Enigma, and I wonder जो भी सवाल पूछते हैं रेक्सी को, लाइक व्हाट हैपेंड टू हिम, आई मीन ही शोड यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एक राउंड अगर लक बेसिस पे और व्हाटएवर टाइमिंग बेसिस पे निकाल के जाते हैं Daikute, Rexy he just makes those aim duels work for him, and a very you can say what amazing play coming in from Rexy, and एक weapons deficit round को निकालना never an easy task.
जी हाँ, इट्स नेवर एन इजी टास्क, लेकिन रेक्स ने जो शॉट्स करने के खास तौर पे जो सेज का किल था उन्होंने निकाला वो बहुत ज़्यादा पिवटल था, बट रॉफ्यूल एज वेल परफेक्ट क्रॉसर प्लेसमेंट, उन्होंने पीक जरूर किया वापस, लेकिन डबल पीक करने की जरूरत होती है। आई स्टिल बिलीव एनिग्मा नीड्स टू वर्क ऑन द ट्रेड्स एंड स्पेसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये मैच के बाद ऑफ कोर्स जब डीब्रीफ होगा तब ये चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन रॉफ्यूल की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए ऑपरेटर लेकिन एग्रेसिव पीक करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन क्या ये इनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा पता चलेगा। हमें थोड़ी देर में बूम बॉट का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा एक्शन देखने की बात करें। रेक्स बीइंग रियली एग्रेसिव, लेकिन उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे डाउन होते तो इसका सामना करना पड़ सकता था, लेकिन रोब की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। रॉफ्यूल अब इंतजार करेंगे रोब के लिए, तो वहाँ से कोई निकल के आता है कि नहीं। आराम से रेक्स, आई मीन पिछले राउंड का जो मोमेंटम था ना वो इस राउंड पे भी हमें कुछ देर के लिए एक झलक देखने का मौका मिला। डिफॉल्ट अप्रोच कमिंग इन, 3 खिलाड़ी मेन से, खिलाड़ी मिड कंट्रोल लेने की कोशिश। वेंस पे एक खिलाड़ी अगर आते हैं तो उनको मौजूद है। खिलाड़ी आ रहे हैं, ट्रेडमार्क को तोड़ा के इमीडिएटली देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा शो स्टॉपर का, बट क्या उसे पिक मिलेगा? किशी को जंप डाउन, रॉकेट चलता है काशी, किशी ब्लोज अप आरबीके, Daikuta gets 1-on-2 and it runs well. Numbers equalized and Daikuta के पास resurrection. Kishi is back, numbers अभी फेवर कर रहे हैं Cerberus को। Will this be the 8th round for Cerberus या फिर डबल डिजिट्स एंड में निकाल के जा सकते हैं? It's anybody's down. यहाँ पे पिक की जरूरत है उनको, और बहुत जल्दी पिक की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन एक और रेजरेक्शन अवेलेबल है यहाँ पे, एंटीडोट पर रेजरेक्शन मिलने वाला है। इन द मीनटाइम रॉफ्यूल ने किल निकाला है, 4v3 रीटेक होगा, लेकिन अब उनको पेस स्टेप अप करनी पड़ेगी। इतना स्लो रीटेक नहीं कर पाएंगे, समय ही नहीं बचेगा उनके पास, लेकिन क्रॉस अटैक को यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्बाद करना पड़ चुका। लोकी, किशी, तीनों प्लेयर्स एक किल निकालते हुए, वेरी अनफॉर्चुनेट, honestly very unfortunate, but एंटीडोट एक किल निकालेंगे अपने आप के लिए, but he needs to fall back. He knows यहाँ पे करना नामुमकिन है, एंड पीछे हटेंगे जरूर, पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएंगे, एंड ये 8वां राउंड आते हुए सर्वरेस की है। One more round and Enigma Gaming सोचने में मजबूर हो जाएंगे वो। I'll just get to Enigma Gaming के लिए चाहे उन्होंने कितना भी काम किया हो, the way the trading game is working for Cerberus, attacking half में at least Enigma Gaming they were doing so better, defending half में वो ट्रेड नहीं आ रहा है। अब देखिए एंटी अगर वो किशी को मे बी आधे सेकंड पहले पिक ऑफ करते देन किशी को वो पहला फ्रैग ही नहीं मिलता शो स्टॉपर से जो उनको मिला। 8-9 एक टैक्टिकल टाइम आउट लिया गया था, जिसका कुछ ही देर में एनिग्मा का ये टैक्टिकल टाइम आउट क्या कुछ रिजल्ट्स लेके आ सकता है? बाई नहीं है पूरी की पूरी एनिग्मा टीम के पास, कंप्लीट बाई नहीं रहेगा। एंटीडोट ओनली हैज दैट वैंडल जो उन्होंने सेव किया था। एक्सकैली के पास जज, लेकिन शो स्टॉपर, तोड़ दे फोर्स, साथ ही साथ फ्रॉम द शैडोज अवेलेबल है। आरवीके को अगर पे एक पिक मिल जाता है, ही विल हैव हिज बाय वाइपर्स पिट ऑनलाइन एज वेल। जी हाँ, लेकिन एनिग्मा टाइम आउट ले रहे हैं फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे डिस्कशन जरूर करेंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, बट आई थिंक यहाँ पे उनका जो अप्रोच है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, दे जस्ट नीड टू मेंटली रीसेट। एक बार रीसेट कर लेंगे, एंड इफ दे स्टॉप ओवर एक्सटेंडिंग देमसेल्व्स, आई थिंक दे विल बी फाइन, बिकॉज एक्सकैली को भी हमने देखा था जज लेके कितना आगे पुश किया था उन्होंने, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्ले नहीं था वो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो You want to play? Let's play. He played with his life. करेंगे जरूर, बट एंटीडोट ऑफ एंगल खेलते वापस टेलीपोर्ट करेंगे। पहला किल निकाला जरूर है, ही डज नॉट नीड टू रीपिक दिस। यहाँ पे उनको ओवर एक्सटेंड करके कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। रेक्स के पास वॉल जरूर है, लेकिन क्या इस्तेमाल करेंगे उस चीज का, या रीटेक ले देखेंगे। एंटीडोट स्पॉट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, अगर एंगल को होल्ड करा हो तो एंटी वुड हैव बीन टेकन डाउन फॉर श्योर, बट लाइक्यूट स्पॉट हो जाएंगे। स्लो अप डाला है उन्होंने, क्या किल मिलेगा? एंटीडोट इज गोइंग टू गो पीक ना, लाइक्यूट पीक करेंगे, लेकिन एंटीडोट वंस अगेन comes out on top. Raw fuel. What? Okay. That's also possible. उन्होंने रिस्क किया है वो मुझे पता है, but whiffing at that range is not usually expected. जाके निकाला, दूसरा निकालेंगे, शो स्टॉपर निकाल के काफी ज्यादा good reflex, काफी ज्यादा quick thinking. निकाले एक और, क्या दूसरा निकाल पाएंगे? जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सकैली वहाँ पे जज लेके बैठे होंगे क्लियर अप करने के लिए, एंड ये आएगा 10वां राउंड एनिग्मा गेमिंग के लिए। डबल डिजिट्स इन 3 राउंड्स और मेहनत करना है बस एनिग्मा गेमिंग को। दे वांट टू क्लोज इट, दे हैव टू क्लोज इट एज क्विकली एज पॉसिबल।
स्टिल 13 तक पहुंचने के लिए 12 भी पहुंचना है। 12 पे जाने के बाद आई जस्ट होप कि रुक नहीं जाए एनिग्मा गेमिंग लाइक इट हैपेंड ऑन द प्रीवियस मैच। बट ये जो शो स्टॉपर निकाला था उन्होंने जज का किल निकालने के बाद बहुत ज़्यादा पिवटल था एंड सूका अग्रेसिव खेले ज़रूर लेकिन दूसरा किल नहीं निकाल पाए। बात करें रॉ फ्यूल के पिक के बारे में जो उन्होंने मिस किया था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका क्रॉस हिल गया था वहाँ से। उन्होंने एक्सपेक्ट किया प्लेयर को नज़दीक आने में बट ही एक्चुअली ऐसा नहीं था कि कनेक्ट नहीं कर पाया। पर रॉ फ्यूल इन द मीन टाइम एक किल निकालेंगे, पीछे हट जाएंगे वो रॉन्डेवू का इस्तेमाल करके, रेक्स इन द मीन टाइम वॉल करके वो भी आराम से खेलेंगे। आई थिंक इट्स टाइम टू चिल फॉर एनिग्मा बिकॉज अर्ली पिक उनको मिल चुका है, लोकी को डैमेज भी दे चुके हैं वो लोग एंड सेज ऑलरेडी इनका डाउन है। तो एनिग्मा बस नंबर एडवांटेज खेलना है उनको एंड एज लॉन्ग एज दे कैन गेट दैट राइट विल बी ओके। बट यहाँ पे बूम बॉट आएगा एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल, पेन शेल्स का इस्तेमाल, चू का किल निकालेंगे, 2 किल निकालेंगे। आज हमारे पास हेड हैंड से 2 किल निकालना वैसे पोजीशन में is not something that should happen. लेकिन सूका अभी भी look at that snake though, that's so smart. बट देखिए ऑलरेडी रीड आ चुके हैं। देखिए ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेक्सी जो है पढ़ चुके हैं लोकी। राइट इन फैक्ट डाउन करते हुए नजर आएंगे रेक्सी को। दैट्स अ वेपन अपग्रेड फॉर हिम एज वेल। रेक्सी फील बैड फॉर हिम कि उन्होंने डिफेंडर स्पॉन में जाके वापस आए वो जरूर। टेक डाउन द स्पाइक क्लासेस तुम्हारा पीक आएगा तो खिलाड़ी को डाउन करे हेड अंडर स्विच करते हैं सूका evens up the numbers. It's going to be Suka versus Antidote. What can the IGL of Enigma Gaming do? Spike planted. For Antidote, पहला हेडशॉट कनेक्ट जरूर किया था लेकिन Suka वहाँ पे आखिरी फाइट की है। 13 एज पे सर्वाइव कर रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल राउंड था उनके लिए। हेड हंटर से 2 किल्स जो निकाले गए थे ये हेवन की तरफ that shouldn't have happened. But Enigma अब पैसा कितना उनके पास वो थोड़ी देर में हम देखेंगे लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट रीप्लेज ओवर हियर। रॉफिल ने पहला पिक निकाला, उसके बाद एक्सकैली के लिए वहां पे बच के निकला, इम्पॉसिबल हो चुका था। सूका जो 2 शॉट्स कनेक्ट किए उन्होंने, शानदार शॉट्स थे। बट रॉफिल ने भी कोशिश की थी दोनों पिक निकालने के बाद ही हैड द टाइम मे बी पुल ऑफ द हेड हंटर। शायद से ये राउंड वहीं पे क्लोज अप हो सकता था बट आई लव द वे सूका प्लेड द फाइनल राउंड। देखिए एंटीडोट उनके पास एडवांटेज था। आपको पता है अगर डिफॉल्ट प्लान से आप खड़े भी हो जाते योर हेड जस्ट पॉप्स अप एंड यू डोंट गेट अ क्लियर विजन, तो वो थोड़ा बैक ऑफ करके स्टेयर्स पे आते हैं एंड देन ही पॉप्स अप। उनको एंटीडोट का क्लियर विजन मिला, शट डाउन किया सूका ऑन 21 और रॉफ्यूल ऑन 22। आई मीन चेंबर डिफ इट्स हैपनिंग। चेंबर डिफ तो हो रहा है लेकिन स्कोर लाइन ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। कौन किसके पास कितने फ्रैग्स है, आई थिंक दैट डज नॉट रियली मैटर। यहाँ पे आपको ये सीरीज जीतना है, 13 राउंड जीतना है। बट अगर इसी तरीके से चलते रहा तो शायद वो टाइम में देखने मिल सकता है, बट दैट विल फाइंड आउट नॉनदलेस। रॉफ्यूल ऑन टॉप, सूका 21 किल्स के साथ उनके सामने, लेकिन स्कैली भी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आरवीके के लिए स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा। आकाशी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल अभी भी सिर्फ 3 किल्स है लेकिन 9 असिस्ट है उनके पास। वेल एक ए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एनिग्मा गेमिंग 2 ही वेपन्स है उनके पास, 2 राइफल्स रहेंगे। रॉफ्यूल विथ नो आर्मर, एंटी विथ फुल आर्मर, 2 शेरिफ्स एंड 1 फ्रेंडली ऑन एक्सकैल। अल्टीमेट्स की बात करेंगे, आरवीके के पास वाइपर स्पिट है। अगले राउंड पे शायद वो इन्वेस्ट करके जाए अपना वाइपर स्पिट, किसी एक साइड को कंप्लीटली चोक ऑफ कर दे, बट डार्क कवर इमीडिएट एंटी की तरफ से आएगा। कुछ देर के लिए जरूर स्लो डाउन करवाया जा सकता है। वेल टू डार्क कवर आई थिंक इट्स फ्रॉम द ऑपोजिट ओमेंस। जी नहीं, इट्स फ्रॉम एंटीडोट अलोन। जी हाँ, लेकिन फिलहाल के लग रहा है कि ये टेक होने वाला जिस तरीके से सेटअप हो रहा है जरूर। लेकिन लुक एट दिस दो, एनिग्मा कमिंग आउट ऑन टॉप ऑफ दीस फाइट्स। सूका लो के 2 प्लेयर्स जिंदा है, 1 प्लेयर ऊपर चढ़ चुका है, ओमन के ऊपर जाएंगे। जी हाँ, हेवन की तरफ रुक करेंगे अपना एंड दोनों हेवन की तरफ इंतजार करेंगे। सवाल ये बनता है इनके पास अल्टीमेट अवेलेबल जरूर है, रिपोर्ट कर सकते बी साइड पे, लेकिन क्या रेक्स बी साइड गिव अप करना चाहेंगे? आई डू बिलीव उनको आइडिया है इस चीज का, भनक लग चुकी है उनको कि ये पोटेंशियल प्ले हो सकता है, लेकिन लोग जो उनको नहीं मिलेगा। सूका इन द मीनटाइम किल निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन ट्रेड बहुत जल्द आएगा। लेकिन एक्सकैली विद फ्रेंजी, this trading is needed. It was clean. Yeah, it was clean, but this trading is needed now. देखिए ये ट्रेड हमें कुछ राउंड्स पहले देखने का मौका नहीं मिल रहा था एंड
जैसे ही एक्सकैली को डाउन करने के लिए वो पीक आता है एंड एंटी अमेजिंग टाइमिंग फॉर दैट प्लान। यही ट्रेड की मैं बात कर रहा था कि जैसे एक्सकैली को निकाला गया, रॉफ्यूल इमीडिएटली तैयार थे कि वो ट्रेड आए एंड यही ट्रेडिंग गेम प्ले अभी अगले से 2 राउंड्स तक दिखाना है आपको। ट्रेड प्लस जस्ट पैसिव प्लेज, अग्रेस करेंगे एनिग्मा इज गोना लूज अप। You want to play? Let's play. इन्वेस्टमेंट इज देयर ऑन एमीन, बट इस बार एक साइड का कंप्लीट गेट्स शट डाउन। रॉफ्यूल विद अ वेरी एग्रो पीक, मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर सर्बरस। जी हाँ, मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर सर्बरस, लेकिन रॉफ्यूल अभी भी एंगल होल्ड करके बैठे हुए हैं। ही कुड पोटेंशियली टेक अ स्ट्रे शॉट, लेकिन वो नहीं करेंगे। सू का इन द मीन रेक्स के ऊपर किल निकालेंगे, जिसकी वजह से अटेंशन स्प्लिट होने वाले। बट ये देखिए लोग ही कहाँ पे आ गए, लोग किल निकाल पाएंगे। जी हाँ, किल निकालेंगे जरूर, लेकिन एंटीडोट वहाँ पे ट्रे लेने के लिए बैठे थे। रॉफ्यूल बहुत ज्यादा नाखुश होंगे उस चीज से, लेकिन एंटीडोट ट्राइंग टू प्ले वेरी क्रीपी, बहुत ज्यादा स्नीकी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किल निकाल पाएंगे। जो what is happening? Akashi! One enemy remaining. Crazy reaction shot onto Antidote. यहाँ पे stray bullet था जरूर। You don't hit all of those shots, but when you do, बहुत ज़्यादा satisfying लगता है वो। And Excali in the meantime इकलौते player बचे इस situation में। Around resistance have lost. Excali reducing it to a 1 versus 2 price. What do you think? I mean, it's doable. Excali and he can do it, but Akashi denies. I mean, this player is bottom fragging. Come on, he had 3 kills. I can't believe it. The way he collected that sheriff click, and साथ ही साथ Excali को down करना, making sure कि Enigma Gaming don't reach map point, series point. Akashi, man, very valuable kills coming in from this guy. जी हाँ, आप सोने में तोल सकते हो उन kills को। So yeah. वो जो शेरिफ का शॉट था। Yeah, no, that was crisp. Still not match point, but देखिए यहाँ पर एक एग्रो पुश करने की तैयारी की जाती है। लेफ्ट को विंग देखिए किनेगा, इमीडिएटली पनिशमेंट आएगा। Qeon इधर साइड एवरी के साथ आता है जरूर, बट रेक्सी का ट्रेड इमीडिएटली लिया जाएगा काशी के द्वारा भी। नंबर्स फेवरिंग Cerberus right now, but weapons उनके पास available नहीं था। Blame him, however, but Excali's Painshell finds the Kashi, that could be immediately trading him off. Mama, what is happening? It was 8-4, right? Yeah, we don't talk about that. We don't talk about the past over here. It's कह सकते हैं आप कि ये ट्रेंड रहा है एनिग्मा के साथ। शुरुआत में डोमिनेट करके मिड गेम एंड गेम में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, बट एंटीडोट की बात करें, एक आध 2 शॉट्स मिस करने के बाद उन्होंने किल जरूर निकाला था, लेकिन किशी इतनी ज़्यादा स्पेस बना चुके थे तब तक कि वो ओवरऑल पॉइंटलेस। बट एक्सकैली भी जब अंदर जाने की कोशिश करी उन्होंने, ही गॉट टेकन डाउन। बट 11-11 का स्कोर, दोनों टीम्स के पास पैसा है, दोनों टीम्स के पास यूटिल है। ये राउंड डिसाइड करेगा टॉपर का इस्तेमाल एंटीडोट ने जरूर करी, रोलिंग थंडर का इस्तेमाल होगा, लेकिन ऑफ आएंगे जरूर। पैरानोया ऑलमोस्ट अवॉइड कर चुके थे, लेकिन उनको हिट करेगा। और यहाँ पे रॉ फ्यूल क्या और एग्रेशन दिखाएंगे, but you will not kill my ally. He tries to go for more, but she nahi. Suka's IQ is just double beating, speaking from that position. Still there is threat. अभी की अभी भी पैसे मौजूद है, वो ट्राई करे तो जरूर डिनाई करते हैं, और भी करेगा जरूर। इसी के साथ साथ IQ थे, he's just made things so much in favor, but Excali के position शायद तो पता नहीं था, but IQ थे, he just double swings and map point for Cerberus. It's series point for Cerberus, but it's elimination point for Enigma Gaming. जी हाँ, of course, if they end up losing this round, इनका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन Cerberus की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा कैरेक्टर दिखाया उन्होंने यहाँ पे। एंटीडोट के लिए दिक्कत ये हो गई थी कि इतना नजदीक वो खेले थे, जैसे ही शो स्टॉपर आया वो और कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कमिट किया था फाइट पे, लेकिन बीच में लगा कि शायद वो फाइट जीत पाएंगे, लेकिन डाइक्यूटे की अगर हम बात करें, उन्होंने काफी 2 इंपॉर्टेंट किल्स निकाले एक्सकैली के ऊपर। एंड उसके पहले आई बिलीव वाज आरवीके इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन सूका इन द मीनटाइम क्रीप अप करने की कोशिश करेंगे ये मेन की तरफ। एक्सकैली बहुत ज्यादा नजदीक खेल रहे हैं जस्ट लेके, एंड भी एनिग्मा पूरी की पूरी जान झोंक देगी ये राउंड के अंदर, क्योंकि उनको पता है अगर ये राउंड हारे इट्स ऑल ओवर फॉर देम। Surprisingly, there's just 2 players holding A.
Excali with the judge जो Rams control संभाल रहे हैं and RVK just swinging it from elbow. Opposite side. आवाज किया जा रहा है बीच साइड पे कमिटमेंट दिखाने की जो शायद से फेक है. Maybe they'll just rotate in the final 30 seconds. But Suka का ये जो होल्ड है, I wonder Suka कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करेंगे. क्या कोई फ्लैंक को वो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? और Excali coming in at this place, the judge is useless and Suka उसका बेस्ट फायदा उठाएंगे. RVK gets denied as well and अभी चाहे तो completely rotate कर सकते हैं but Enigma do not have the numbers. Regum comes and gets another pick but नहीं की shift को shut down करते हैं. It all comes down to Antidote, the captain, the IGL of Enigma Gaming. They are in so much trouble right now, but Loki को बहुत लोग छोड़ा जाता है. You have a जरूर and Antidote is spotted from the other side with a big brain shrouded sip, and it's Cerberus who move on forward to the loser bracket finals. Enigma Gaming का सफर यहीं पे समाप्त होता हुआ. Very well tried, but once again वो आखिरी राउंड पे क्लोज ना कर पाना did bite them in the back. जो बिल्कुल सही कहा आपने. 8-4 स्कोर लाइन था. लेट्स नॉट फॉरगेट अटैक में उन्होंने 8 राउंड निकाले थे वहां पे. दे वर इन प्रिस्टीन पोजीशन टू क्लोज इट आउट एंड येट अगेन क्लासिक एनिग्मा यहाँ पे गेम क्लोज नहीं कर पाए. वो मुझे नहीं पता उनको सेकंड हाफ में क्या हो जाता है बट वो मैचेस क्लोज नहीं कर पाए. उसकी वजह से उनका सफर का अंत यहीं पे होगा. You know, I'm heartbroken at the moment. I'm heartbroken because Enigma, the way they played map 1, map 2 उनका था. तीसरे मैप तक पुश करवाया है. Ascent पिक था Enigma Gaming का. They lost their own pick. I think कहीं ना कहीं से वो एक सिग्नल था कि Cerberus, they've almost just done it. But happy for Cerberus though because देखिए Cerberus वो डाउन हुए थे 2-1 से. Cerberus lost against their own उनके रीजन से वियतनाम से जो चैंपियन थे उनके अगेंस्ट में 3-0 के लॉस के साथ आए. एंड नाउ दे हैव अ ह्यूज चांस कि वो आगे बड़े ग्रुप स्टेजेस तक एंड जाके उन्हीं को टक्कर देते हुए नजर आए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सर? देखिए कैप्टन यहाँ पे जैसे आप बात कर रहे थे, दे आर कमिंग आउट विद द अग्रेशन ऑफ अ 3-0. ये पिछली बार बहुत सारे टीम से होते हुए हम देख रहे हैं. बट हियर फॉर एनिग्मा ऑलरेडी एक लीड था 8-4 का एंड वहां से हम देख रहे थे. आई थिंक दे शुड हैव क्लोज्ड आउट बिकॉज अटैकिंग हाफ में वो लीड बनाया था. बट आई रियली लाइक जो Cerberus, आई नीड टू गिव क्रेडिट टू देम. जिसे बैकलाइंस में देखने के लिए मौका मिला एज दे स्लो डाउन देयर गेम. वन मेन थिंग यहाँ पे Cerberus करती है कि दे डिनाई इन्फॉर्मेशन. इवन उनके पास नंबर्स नहीं है. इवन स्प्लिट इज सच अ स्मॉल मैप. वो ऐसे अंदाजा लगाते कि कहीं और खिलाड़ी जा चुके हैं और वो कहीं और दिशा में खड़े हैं. बिकॉज ऑफ विच यू कुड सी एनिग्मा के प्लेयर्स में वो दिमाग में चल रहा था, हलचल था. दे वर थिंकिंग लेफ्ट एंड राइट कि कहाँ गए वो खिलाड़ी. हैव दे गॉन टू डिफेंड द स्पॉन, हैव दे रिट्रीटेड, हैव दे स्टार्टेड रोटेटिंग. एंड वो केओस की वजह से आई थिंक जो इमीडिएट राउंड जो लास्ट 20-30 सेकंड्स में रहता है ना, वहाँ पे वो केओस की वजह से एनिग्मा आर अनेबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू बेस्ट. एंड Cerberus, they're capitalizing on it. I really like वो जो स्लो गेम यहाँ पे Cerberus खेल रही है ना, that's just brilliant. That is true, but यहाँ पे एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्लो गेम हो ना हो लेकिन रोटेशंस उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करे. ट्रेड फ्रैगिंग के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा. मैंने कहा था कि स्पेसिंग का इशू है बट चलिए इसके बारे में और चर्चा करेंगे. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ऑन द अदर साइड विल ब्रेक द गेम डाउन फॉर यू folks. From me, all the energy extra. You don't wanna see me with the hitters. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move at the bits. Boy wanna go to a bitch, nah. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the hard, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all them, who you gon' be inside. I cannot fake it, I gotta face it, I gotta do the time. You gotta wait, mate, for a great pay, make sure you're doing your job. Gotta do
with the patience. 200 every occasion, going to different locations. How they got when I need some direction. Me and Vinci go up every session. Cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do what we all in. We can slow up and you never catch us. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. You know my slimes, they came from the bottom to top. They can define us, they tryna find us. Boy, I know you with the ops. We not the same, no, you can't compare me. I don't belong in the box. Don't try to play me, no, I'm not friendly. This is everything I got. Ain't no playing around, this is no playground. It no matter, I do what I say now. I'ma go give them something to say now. Got them stuck on my back like a spray ground. CZZ don't gotta complain. I'm a shooter, got eyes in my vein. They said that I would never make it, they thought I was crazy. They said I'm insane. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Undefined for life. Oh man, what you? सॉरी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका फिर से स्वागत है एपैक चैलेंजर स्टेज 2। मेरा नाम कैप्टन प्राइस, मेरे साथ डेस्क पे जुड़ते हुए सैम एंड माम्बा सीनियर। वेल, इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर ऑल द साउथ एशियन फैंस, बट कांग्रेचुलेशंस वियतनाम एंड उनके सारे के सारे फैंस को, बिकॉज़ सर्बरस दे आर गोना फाइट इट आउट टुमारो इन द लूजर ब्रैकेट्स। Yeah, they are going to fight it out in the loser brackets, but look man, बात करेंगे हम एनिग्मा के बारे में, बिकॉज उसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था। कल भी आज भी एक दो राउंड्स की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। बट दीज आर वेरी स्मॉल मिस्टेक्स एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं फॉर अ टीम ऑफ दैट कैलिबर। ट्रस्ट मी, मैं ये जब कह रहा, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ देम, मैं बात कर रहा हूँ उनके पास कितना पोटेंशियल है और कितना ज़्यादा अच्छा वो खेल सकते हैं। बट इट इज अनफॉर्चुनेट टू सी कि बार बार 13-11-13 की स्कोर लाइन से मैच क्लोज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट, आई मीन आखिरी दम तक हम भी सोच रहे थे कहीं ना कहीं जाएगा, यहाँ पे एनिग्मा लेगी मैप पॉइंट एंड मैच पॉइंट और सीरीज पॉइंट, बट इट डिड नॉट हैपन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रैग विन्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव विन्स, ये सब आपको देखने के लिए मौका मिल रहा है। डैमेज एंड हेडशॉट बहुत क्लोज है। ऑब्जेक्टिव विन्स का 2 एडवांटेज यहाँ पे जरूर सर्बरस को मिला है, बट इन ओवरऑल पिक्चर एंड प्रेजेंटेशन अगर आप बात करेंगे दोनों टीम्स के बीच में, इट वाज जस्ट क्विक स्विचेस अप कमिंग थ्रू। आपने जरूर जिक्र भी किया था, एनिग्मा की तरफ से भी ट्रेड गेम देखने के लिए मौका मिल रहा था, बट सर्बरस की तरफ से जो ट्रेड गेम देखने के लिए मौका मिल रहा था, आई मीन स्पेशली व्हेन दे वर अ मैन डाउन, तब वो साथ में पुश कर रहे थे एंड दे वर ऑलवेज कैपिटलाइजिंग ऑन 2 पिक्स एंड देन फॉलिंग डाउन। एंड वो आखिरी राउंड में जहाँ पे वो ए से पूरा रोटेट करके आखिरी 2 प्लेयर जो थे, सुका एज वेल डाइक्यूट एज वेल एज लोकी, ये दोनों साथ में स्विंग आउट किए फ्रॉम द पिलर टुवर्ड्स द रोप्स एट बी साइड, एंड दैट्स वेयर आई थिंक वहाँ पे पूरा राउंड बदल गया एंड एनिग्मा कुड नॉट फाइट द कंट्रोल। But I'll tell you, I still believe in Enigma Gaming because देखिए Enigma Gaming फॉर्म हुए कितना टाइम हुआ है, like this roster of Enigma Gaming, it's barely almost a year old, like पिछले year सितंबर में ये roster बना हुआ था and उसके बाद जाके 3 more months till we get to September, but let's just say कि Enigma Gaming, if they've done this in 9 months, reaching the international stage and in fact giving a hard run to the best teams in their group, ये जताता है कि what's the true potential of Enigma Gaming compared to any other team, compared to कोई भी और टीम जो पहले गई है इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने अपने आप को। स्पेशली अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी गेमिंग, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की वेलोसिटी गेमिंग, they didn't even make it, but yeah, it was an amazing run which Enigma Gaming had, but yeah, it all comes to an end today. Yeah, it all comes to an end today, but कोशिश बहुत अच्छी करी थी उन्होंने, they played their hearts out, but sadly it just wasn't enough। जिस तरीके से उन्होंने खेला उस हिसाब से वो गेम क्लोज नहीं कर पाए, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से इंडियन टीम ने अभी खेला है यहाँ पे, खासतौर पे आप एनिग्मा की बात करें, इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो, शुरुआत में हम देखते थे कि इंडियन टीम्स बाहर जाती थी, डोमिनेट होके आती थी, लेकिन अब कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कोई मैचेस में डोमिनेट खुद कह रहे, सिंगल डिजिट मैप पुल ऑफ कर रहे हैं।
against some of the best teams in the region. आप बात करें मेड इन थाईलैंड के बारे में भी सिंगल डिजिट जीता था उन्होंने सेम, तो पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, इंप्रूवमेंट भी नजर आ रही है, एंड आई डू बिलीव इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब इंडियन टीम्स बाहर के रीजन में शाइन आउट करेंगे। आई एग्री विद यू। देखिए आज के दिन में भी वो सिंगल डिजिट विन था 13-7 का हेवन के ऊपर, जहाँ पे वो कल मात मिला था उनको। और ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, ये एनिग्मा का फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन है ऑन ग्लोबल स्टेज ऑन APAC चैलेंजेस, सो आई थिंक यस फॉर द स्टार्ट इट हैज बीन गुड। Whenever somebody goes out of a competition जरूर बहुत बुरा लगता है, बट अगेन जैसे आपने बताया इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, की एक्सपीरियंस गेन करने के बाद और भी कितना बेहतर परफॉर्म करती है। सो एनिग्मा नाउ दैट दे हैव हैड अ टेस्ट ऑफ दिस ग्लोबल स्टेज, एक और बार बहुत भूख के साथ आएंगे, एट दैट टाइम दे विल बी इवन मोर डोमिनेटिंग। Of course, but let's not forget कि अभी भी काफी मुकाबले बाकी है। APAC, this is just the play-ins. MVP is going to be Stuka from Cerberus Esports, 314 ACS, 27 kills. I mean, great play. 25.5% headshot percentage, first blood, 20.8. It's a great number. 4909 damage per match. वो भी average basis. That's a lot of damage. Those are some big numbers, and of course, blood percentage की बात करें, I think that's a very good number given the fact कि वो चेंबर खेले थे यहाँ पे। बात करें ACS के बारे में, 314 का ACS, 27 kills and 1.9 का kill death assist ratio, तो वंडरफुल नंबर्स हो गया। खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस के साथ, बट ऑफ कोर्स इसको और स्टेप अप करना पड़ेगा इनको अगर वो जाना चाहते हैं अपर ब्रैकेट में, एंड इफ दे वांट टू survive in this tournament, and not to survive, जीतने के लिए आती है सारी की सारी टीम्स यहाँ पे, not just to survive। तो प्राइस, लूसिफर, I do believe यहाँ पे जितनी भी टीम्स आई है कोशिश जरूर करेंगे। अनफॉर्चुनेट था एनिग्मा के लिए, बट बिफोर वी गो अवे, लूसिफर, एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स? I don't have anything as such कि देखिए माम्बा, as the run as we said already, यहाँ पे जो एनिग्मा को सीखना था, I think they've got a chance about it, and अभी भी देखिए जो runs आपने भी बताया, their maps were not close off, it was always that बहुत close cutter, it was always close when they were battling it out, and उसके वजह से जो भी battle था, I don't feel like they've not delivered, but जी हाँ वो जरूर somewhere we'll be feeling कि और भी ज़्यादा देखने के लिए मौका चाहिए था माम्बा। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बट नॉनदलेस लेडीज एंड जेंटलमैन आज के लिए बस इतना ही, लेकिन भूलिएगा मत 15 तारीख को हम वापस आएंगे आपके पास, एंड ऑफ कोर्स देखिए और मैचेस होने वाले, बट एक और टीम हमारे रीजन से खेलने वाली है, वो है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जिसको हम चीयर करेंगे, बट ऑफ कोर्स अंटिल देन इट्स गोइंग टू बी गुड बाय एंड होप यू गाइस हैव फन। See ya. One of the rising stars of Hong Kong, Taiwan. We've got the Baby Blue, 8 Lua, Float QQ, Itao, and Bea 2.